of on the Australian side? Well, I guess it's 4 fast bowlers. It's an England pitch, so English pitch are always good for the fast bowlers. And Indian batsmen have been playing a lot of spin bowling lately with the PL and stuff. So when the change happens with the pitch, I think the fast bowlers will be making a huge impact. I don't think the batsmen are going to make any impact, but all the 4 fast bowlers they have in the squad are really the big impacts. Yeah, Warner has not been doing very much, has he? Yeah, but you never know. He's a big match player. He can start playing well in any situation. I think also Steve Smith is going to be crucial. He loves playing against India and also at Oval. So how we are going to contain him is going to be very crucial today. So Warner is not been in form, but he loves playing against India and loves playing in the much-awaited World Test Championship finals at the Oval Stadium in London. India will be hoping to put their best foot forward after losing the Test final championship last time around against New Zealand in England. Now, Rohit Sharma will have a tough task at his hand while deciding the final playing 11. Meanwhile, Australia have their plans clear in terms of the playing 11. India, however, have not won an ICC trophy in the last 10 years, and Rohit Sharma will be eager to win his first as captain. Pat Cummins' men will also look to avenge the loss of the Border Gavaskar trophy and win the test match. So let's see what's in store. प्लेयरों को पता है, सबको पता है कि इंडिया ने कब जीता है, कब नहीं जीता है, तो उसके बारे में बार-बार सोचना आई डोंट थिंक जायज है. यू हैव टू फोकस ऑन कि अभी क्या सिचुएशन है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं. तो सारे प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ का पूरा ध्यान इसी चीज में है कि हम इस मैच में कैसे अच्छा कर सकते हैं और जीत सकते हैं. Weather's been pretty nice all this week and it looks pretty good this week. So yeah, a bit of a cloudy morning. We've been really happy with our prep. We've been here about 10 days now. Had some really good training. So yeah, there's guys that have been playing quite a bit over here and other guys who have come in fresh, but we all feel ready. No, not at all. I mean, we don't feel any pressure in terms of, trying to win an ICC trophy. Of course, it would be nice to do it. It would be certainly nice to be able to win an ICC tournament. But also in the context of things, you look at this and you see this is the culmination of 2 years of work. It's a culmination of a lot of success that gets you here. So there's a lot of positives to take from that, to see where you stand in the table. Winning series in Australia, drawing series here, being very competitive everywhere that this team has played in the world over the last 5 or 6 years. I think those are things that will never change just because you have or you don't have an ICC trophy. That's really the bigger picture. Now, we are also opening our phone lines. This is the WTC Final 2023, and we are asking, will India be able to end its decade-long jinx? Call us. Share in your views. We await your responses right here on CNN News 18. Meanwhile, let me also bring in my colleague Shivani Gupta, who's joining us live from the CNN News 18 newsroom. Shivani, what's in store as far as this big match between India and Australia is concerned? Well, it's going to be a cracker of a match. This is a championship finale. The WTC cycle of 2 years culminating in a winner-take-all kind of a battle. This isn't a best of 3 or a best of 5 kind of a series. It's one-off match, test match. And you have to bring in that kind of intensity when you're playing in that one-off match, because this is not something that you can plan like a series that you would ordinarily do. And there's a lot of backdrop to an India-Australia rivalry. These two are the top 2 teams in the test arena as it stands today. The Indian team, of course, was in the inaugural final 2 years ago as well, which they lost to New Zealand. Possibly a few learnings from that. I personally felt that they gave in a little bit too soon, especially on the final day in that match. There's been a lot of question marks over the Indian team. In various formats, different question marks over the Indian team. We've seen them not really win an ICC trophy for as long as 10 years now. The last time they won a big trophy was in 2013 Champions Trophy. That was under Mahendra Singh Dhoni as a captain. So there's a lot of time that has gone by. And I think Rohit Sharma would be very keen to get his hands, become the next captain to win an ICC trophy for the Indian team. That's something that has been a long time coming. A lot of eyes will be on the kind of intensity the Indian players bring in, because they're just coming off a 2 grueling IPL.
Whether they look jaded or not is something, a question that only the first session or two will tell us. The other big thing to watch out for is the toss, which is going to happen very soon, and that's going to decide who takes the first shot as far as batting is concerned in these conditions. My colleague Srini is also joining us from the Oval in London. Srini, what is it looking like? As always in London, the weather turns overcast very quickly, so it will be possibly a little bit of play of sun and shadow. But what does it look like overall as far as the conditions are concerned? Srinivas, can you hear me? Hear you. I can hear you. Go ahead. So every day, if you're looking at the weather patterns here, it's around 2 to 2:30 p.m. local time when the sun begins to come out, and it looks like that's going to be the case today also. But right now, as I speak, it's a little warmer than it was yesterday, and from what I understand from the local, kind of weather authorities, that they're speaking, what the predictions are, it's going to be a warm couple of days coming up. So the sun is going to be out, and that's really a good sign for the test match. I think it's also a good sign for the Indian bowling attack if we go to spinners. We've got some updates coming in. India have won the toss, so I think that's a good start to this one-off test battle. They've opted to bowl first. They want to give their bowlers the first crack on this pitch, because it is going to be the first few sessions possibly that are going to be the juiciest for Indian fast bowlers. Right. I think nobody wants to bat first in overcast conditions. I think that's more or less a given, and I'm not surprised. I'm not surprised with India's decision. The playing 11 for India is concerned was whether they go in with 4 seamers or 3 seamers plus 2, and who that third seamer is going to be. So we're just awaiting that update also coming in. But it's a good beginning for the Indian team. How's as they say, Srini, how's the Josh been in the run-up to the one-off test match winner test? Because we've not really had a lot of time in England with this test match. All right. Look like we'll go back to Srini in just a bit, but let me just take a quick check over the playing 11 as well. So we've got the Indian playing 11 that has come out. So the playing 11 actually includes 4 pacers. So India have gone in with Mohammad Siraj, Mohammad Shami, Umesh Yadav and Shardul Thakur. There is Ravindra Jadeja, who's the all-rounder and the spin option. There is KS Bharat as the wicket keeper. And of course, the top 5 of the Indian batting lineup kind of select themselves. There's Rohit Sharma and Shubman Gill at the top, Virat Kohli, Cheteshwar Pujara and Ajinkya Rahane. So the big update that's coming in right now is that India is backing its seamers in these conditions. There was some sort of an assessment earlier, Greha, that, because the weather is going to be maybe not as overcast as England is known for, and this is the oval pitch, that maybe India would like to go with 2 spinners. Ashwin also brings in some sort of a batting depth. But what the Indian team has decided is that they'll bank only on Ravindra Jadeja as the all-rounder spin option. Shardul Thakur, Umesh Yadav both make it to the playing 11, along, of course, with Mohammad Shami and Mohammad Siraj, who are our 2 main our pace bowlers. My colleague Sanjay Suri is also joining us from the Oval. Sanjay, good news coming in first up. India has won the toss. That's almost considered half the battle won in these conditions. Rohit Sharma is backing his bowlers to damage the Australian top order. And they've also gone in 4 seamers for this test match. That doesn't often happen. Well, this is in line with anticipated wisdom under the circumstances. It's quite a cold day. The air does feel a bit heavy. There's a bit of a breeze. This is not the best day for batting. And there was some concern that if India were to be batting and facing the Australian fast bowlers in these conditions, then in the first session or the first half of the day, there could be a little bit of difficulty.
but this gives the Indian bowlers a chance to have a crack, and the Indian bowlers are quite penetrating and accurate, and they're likely to do quite well in these conditions, and it does look quite promising. Yeah, so as you said, in these conditions, I think neither captain would have possibly wanted to bat first. Conventionally, you could argue that in a test match, you want your batsman first and get the ball rolling and get some runs on board and put pressure on the other side. But because of the conditions, and there's about 6 millimeter grass on the track as well that is being used for this test match. So these are to be seen friendly conditions, swing friendly conditions, and that's why the captain who won the toss, which is Rohit Sharma from India, has decided to bowl first, and that's also because the Indian team is going with their four-seamers, so they want to give everybody a crack. How's the atmosphere like around you, Sanjay? You were speaking to a lot of fans earlier. What do they say about this, the toss and everything, and how confident are they that the Indian team can do it this time around? Well, everyone is preparing their lungs to shout for the first wicket to fall and to do that 10 times over in the shortest possible span. And there is a great faith in the Indian bowlers. A lot of people have been carrying pictures of Sami and the Indian bowlers, and that is a bit unusual. Everyone usually has, the Kohli as their hero. But the Indian fast bowlers have now become heroes, and there is great faith that they will, under the circumstances and these conditions, exploit them to advantage and be able to penetrate the Australian batting and get some early wickets in. Sanjay, stay with me. I want to quickly go across to my colleague Srini once again as well. So Srini, not only has Rohit Sharma won the toss and elected to bowl, it is also very clear the Indian team is backing its seamers to do the job and trouble the Australian batting lineup. They don't want to add more batting depth with an Ashwin, for example. They're confident top 6 should deliver, and the rest will be up to the seamers in this match. Yeah, that's correct. And even Shardul, for that matter, actually brings a lot from a batting standpoint. Sure. So this is again quite a bit about strengthening your batsman, one wicket shot, combination, right? The good thing is, I think, what the Indian team has managed to do is get the toss coin in their favor and elect to field first, which means, given the conditions in the first 3 hours, they get to kind of put much more pressure on the Aussies starting early on. I think that's good. That's advantage India. So what do you make, Vishrini, before I let you go, what do you make of this strategy by the Indian team to go ahead with the four seamers? Obviously, Rohit Sharma and Rahul Dravid weren't going to give you a hint in the run-up. But what is it that you think convinced them? Was it the final look at the pitch and seeing that 6 millimeters of grass on it still? Yes, it is the pitch, the greenish tinge on the pitch. I think it convinced them to go in with an extra seamer and somebody who could probably, kind of get a line going. I think what's going to be important here, especially with the wind around, is going to be discipline. You got to kind of keep pitching one line. And I think Shardul has shown in the past that he can do it with the new ball, with the old ball. And I think that's what prompted them to go with that extra seamer in Shardul. And the fact that he can bat, when the conditions he's out, it's going to be in favor of the team. And, speaking of both Shardul Thakur and Umesh Yadav, there's been a lot of pressure on them because we know what Mohammad Shami is coming off as far as the IPL is concerned. Siraj has also done reasonably well. But, these two have a lot of pressure suddenly being put into this such pressure cooker situation. और आई थिंक विकेट टेकर साबित हो सकते हैं इंडिया को इनसे थोड़ा खास खतरा हो सकता है सेकेंड ओवर शुरू हो चुका है मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहे हैं एंड यहां पर भी उस्मान ख्वाजा को काफी दिक्कत हो रही है उनके बॉल्स फेस करने में across the stump bowl कर रहे हैं. He's a specialist when it comes to that form of bowling attack in tests, and he can prove to be quite a handful for the left-hand batters. काफी रिलैक्स लग रहे हैं दोनों टीम्स, गिवन द फैक्ट दैट स्पेशली टीम इंडिया जहां पे एटलीस्ट 5 प्लेयर्स आईपीएल फाइनल खेल के मुश्किल से एक हफ्ते पहले इंग्लैंड में लैंड हुए हैं. Yes, absolutely. I think
आईपीएल से यहाँ सीधे आना एक बिट ऑफ चैलेंज भी हो सकता है, बिकॉज आप एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट खेल रहे थे और टेस्ट एक एब्सोल्युटली एक अलग ही फॉर्मेट है. बट आई थिंक these practice sessions, these warm up games, I think I'm sure इंडियन बैटर्स ने, इंडियन बॉलर्स ने अपने आप को उन कंडीशंस पे डाला होगा. और यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत फर्क है. आई थिंक 13 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है. बट व्हाट सरप्राइजिंग शैलेश इज द फैक्ट दैट कि दोनों टीम ने कोई खास वार्म अप गेम खेली नहीं है, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया के वो भी आईपीएल खेल रहे थे, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के जो आए हैं वो एशेस फोकस में रख के इंग्लैंड में आए हैं. एशेस व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट 1 वीक आफ्टर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनलिस्ट ओवर. तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है. ऐसा मुझे कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा था कि दोनों टीम, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट प्लेइंग द फाइनल बिकॉज ऑफ द वे उनका जो शेड्यूल बना हुआ है. मगर यहाँ पे जिस तरह भी मैं देख रहा हूँ, द काइंड ऑफ बॉलिंग दैट इज बीइंग डन बाय सिराज एंड शमी, क्लियरली वो जो एक्सपीरियंस इन लोगों ने इंडिया ने गेन किया है पिछले 2 साल में, जहाँ पे अवे कंडीशंस में ये काफी डोमिनेंट रहे हैं, वो अभी दिख रहा है बॉलिंग में. बिल्कुल. आई थिंक ये एक हमारे लिए प्लेजेंट सरप्राइज है. पिछले कई सालों से जो हमारे बॉलर्स जो पहले ओवरसीज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे, आई थिंक बिकॉज ऑफ द मल्टीपल टूर्नामेंट्स व्हिच आर बीइंग हेल्ड नाउ, हमारे बॉलर्स का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टीम, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंक्रीज हुआ है. 2 मेडन ओवर्स खत्म हुए हैं अभी, कोई रन ऑस्ट्रेलियन बैटर्स नहीं ले पाए हैं अभी तक. और बॉल अच्छा स्विंग कर रहा है. सिराज की लाइन ऑफ लेंथ बहुत ही शानदार थी. एक भी बॉल आई थिंक उनको नहीं मिल पाई ख्वाजा को कि वो हिट कर पाए. एंड इट्स नॉट जस्ट द लाइन एंड लेंथ. अगर हम स्पीड्स भी देखेंगे तो सिराज हैज बीन क्लॉकिंग ओवर 140 on couple of occasions in this maiden over that he has just bowled to Usman Khwaja. And काफी दोनों bowlers Shami and Siraj काफी फॉर्म में लग रहे हैं. They are not letting an inch to any of these batsmen. The line and length that they are following is crisp और एकदम बढ़िया तरीके से ये लोग जा रहे हैं. अभी थर्ड ओवर स्टार्ट हुआ है. मोहम्मद शमी हैज bowled the first ball of the third over, a slight misfield, but no runs conceded there. अभी थोड़ी देर पहले कैमरा पर्सन ने आर अश्विन की तरफ फ्रेम अपना काटा था. शैलेश, आर यू सरप्राइज कि रविंद्र जडेजा को सिलेक्ट किया है आर अश्विन के जगह? नहीं, आई थिंक आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस डिसीजन, बिकॉज जडेजा ने बैटिंग से अपना मेटल प्रूव किया है. आई थिंक बैटिंग में कहीं ना कहीं अश्विन थोड़ा सा लैक करते हैं व्हेन कंपेयर टू जडेजा. और जडेजा एक जबरदस्त स्पिनर तो है ही. आई थिंक उनकी एबिलिटी टू बोल हिज ओवर्स वेरी फास्ट. ओ, ये चांस था आई थिंक एक कैच का, बट जल्दी ड्रॉप हो गई बॉल. मुझे लग रहा है कि वो थाई पैड से लग के गई है शैलेश टुवर्ड्स द स्लिप, इसलिए वो ज्यादा ज्यादा फ्लाइट नहीं ले पाई है. अभी रिप्ले चल रहा है, रिप्ले में कंफर्म हो जाएगा वेदर एनी बैट वाज इन्वॉल्व्ड. इट सीम्स इट वाज स्ट्रेट ऑफ द थाई पैड, क्योंकि जिस तरह बॉल विराट कोहली के पास जो स्लिप में खड़े थे, जो विराट कोहली के पास जिस तरह से बहुत जल्दी टिप्पा खा के पहुंची है, उससे पता लग रहा है कि there was no bat involved in the entire exchange. Australia is still trying to get its first runs on the board. 15 बॉल हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने एक रन भी स्कोर नहीं किया है. शैलेश. यस, आई थिंक बोथ आर पेसर्स, शामी एंड सिराज. बहुत डिफिकल्ट है इनको भी स्कोर नहीं किया है. शैलेश. यस, आई थिंक बोथ आर पेसर्स, शामी एंड सिराज. बहुत डिफिकल्ट है इनको
Yes, I think both are pacers, Shami and Siraj. बहुत difficult है इनको किया है. Yes, I think both are pacers, Shami and Siraj. बहुत difficult है इनको वेरी एक्टिवली जो रूट भी इनको ढंग से खेल नहीं पाए. हाँ, वो लास्ट मैच तो हार गई थी जिसकी वजह से वो सीरीज हो गया था. बट द फर्स्ट थ्री मैचेस the way he had at the batting lineup was quite brilliant. Is he gone? He is gone. Usman Khwaja is the first victim of the day. Mohammad Siraj sticking to that unbelievable line and length that he keeps bowling, that probing line and length going across the stumps. And Usman Khwaja tried to negotiate that and he is caught behind. Usman Khwaja is now taking that long road back to the pavilion. Siraj has taken India's first wicket in WTC final. Australia are one down for 2 runs. and Usman Khwaja departs with 0 runs on board. Amazing outswinger by Siraj. Terrific catch there. No miscalculations. Just a great delivery. He couldn't resist. Absolutely. और श्रीकर भरत को कोई दिक्कत नहीं हुई वो बॉल गैदर करने में. इट वाज एट द राइट हाइट. नो मिस्टेक्स मेड ऑल राउंड. आई थिंक अब नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीवन स्मिथ आने वाले हैं एंड मेरे हिसाब से ही इज गोइंग टू बी द डेंजर मैन फॉर इंडिया. Absolutely. स्मिथ का जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अगेंस्ट ऑल दी कंट्रीज, स्पेशली इंडिया. ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही कॉन्फिडेंट बैट्समैन हैं. आई थिंक टीम लीड भी कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की, और डेफिनेटली इंडिया को एक अर्ली विकेट चाहिए होगा स्मिथ का. हम नहीं सह सकते कि वो बहुत लंबे समय तक रीच पर रहे. बिल्कुल सही कह रहे हो शैलेश. इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की खासियत अभी ऐसी है कि even though they have somebody like Steve Smith, at the same time उनके पास मानस लाबुशान में भी एक ऐसा प्लेयर है जो जिनकी कंपैरिजन हम चेतेश्वर पुजारा के साथ कर सकते हैं. वो काफी देर क्रीज में टिके रह सकते हैं विदाउट स्कोरिंग. ही इज नोन टू जस्ट टायर आउट बॉलर्स. सो अगर मानस लाबुशान भी अगर अभी आते हैं
that also could prove to be quite a handful for the Indian bowlers. But मुझे लग रहा है कि Indian bowling का जो strategy है in this opening, it's been spot on. They have stuck to a plan of how they are going to target each and every batsman. Even जब डेविड वार्नर की तरफ मोहम्मद शमी बॉल कर रहे थे, पूरी सारी डिलीवरीज के बॉडी की तरफ एंगल थी, कोई उनको ज्यादा रूम नहीं दिया जा रहा था मनूवर करने के लिए. Even Mohammad Siraj, the way he was bowling to Usman Khwaja, the whole strategy was set कि वो क्या लाइन क्या लेंथ बॉल करेंगे. कहीं भी एक भी ऐसा डिलीवरी नहीं डाला है शैलेश जो लेग साइड की तरफ जा रही है. एंड मानुस लाबुशान इज टेकिंग द क्रीज राइट नाउ. द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन बेस्ट टेस्ट बैट्समैन हैज कम टू द क्रीज. बिल्कुल, आई थिंक स्ट्रैटेजी यही है कि आप 3 से 4 बॉल बिल्कुल स्टंप्स पे, पैड पे, टो पे रखें, और देन यू नीड वन क्लासिक आउट स्विंगर. बैट्समैन रेजिस्ट कर ही नहीं सकता कि उसमें बैट ना लगाए, एंड व्हाट यू नीड इज एन एज एंड अ गुड पेयर ऑफ हैंड्स. Exactly. And a player like Usman Khwaja, who is known to attack deliveries, as you said, as you rightly said, Shailesh, वो resist नहीं कर पाए. उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, मगर हमने ये अभी तक तो देखा है कि मोहम्मद सिराज को वो बिल्कुल भी टैकल नहीं कर पा रहे. Now Mohammad Siraj is going to bowl to a right-handed Manus Labuschagne, and he has opened his account. He has got the first 2 runs of his innings in the WTC final. There was a bit of a fumble at the boundary ropes by Mohammad Shami, because of which Manus Labuschagne was able to come back for the second. डर इसी का ही है शैलेश कि अगर इनका कोई भी एक प्लेयर चल जाए या कोई भी एक प्लेयर टिक जाए, तो it becomes very difficult for the Indian bowlers to get things going. Absolutely, I think this is the beauty of the test game. Idea बैटर के दिमाग में हमेशा यही होता है कि आज का पूरा दिन क्रीज पे रहना है, और आई थिंक बॉलिंग साइड के लिए यही है कि कितना जल्दी हम चलता कर सके बैट्समैन को. एंड इसके साथ चौथा ओवर खत्म हो चुका है. This was Mohammad over. Australia is now at 4 for 1. David Warner and Manus Labuschagne both with 2 runs apiece at the crease right now. Usman Khwaja is the one who was caught behind this over, the first Australian victim of the day, thanks to that terrific delivery by Mohammad Siraj. And अभी ये देखना पड़ेगा शैलेश कि अगले 10 या 15 ओवर में ऑस्ट्रेलिया क्या करती है, बिकॉज इंडिया ने तो अपने इंटेंशंस बहुत क्लियर कर दिए हैं that they are going to bowl a particular line and length, and they are going to make sure that they are not going to give any opening to the Australian batsmen. In swinging ball by Mohammad Shami in the first ball of the 5th over of this game, and David Warner had trouble dealing with it. There was a appeal for LBW. The umpire has turned it down, and the DRS timer is all ticking away as Rohit Sharma does not seem to be interested in calling for an appeal. आई थिंक एक बहुत अच्छी स्विंगर थी, आई थिंक लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, इसीलिए अंपायर ने उस पर ध्यान नहीं दिया. इवन शर्मा वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट नहीं, है विराट कोहली के रिएक्शन से साफ पता चल रहा है दैट दे न्यू ये लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, इसीलिए किसी ने डीआरएस की तरफ नहीं गए. एंड देयर वाज अ स्लाइट कंफ्यूजन अगेन देयर, बट रन्स कंसीड नहीं हुए उस बॉल पे. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रैटेजी आपने एडविन जो अभी बोला, वो यही है कि किसी तरीके से बिना विकेट खोए पूरा दिन खड़े रह के बैटिंग करनी. दैट इज व्हाट इज वेरी क्रूशियल फॉर द ऑस्ट्रेलियन साइड राइट नाउ, एंड वी नीड 2 and 3 क्विक डिसमिसल्स फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव. Exactly, क्योंकि अभी धूप भी बाहर निकल रही है, so very soon that moisture on the pitch is going to get evaporated. Pitch काफी ड्राई हो जाएगी, बैटिंग के लिए काफी. Oh, excellent shot by David Warner. I think this is going to be the first boundary of the day. No, but that ball was cut off by Umesh Yadav, who was chasing it down, and Australia have managed to, David Warner has managed to score 3 runs off that shot.
from Mohammad Shami, and it's 7-1 right now. काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये बैटल बिटवीन मोहम्मद शमी एंड डेविड वॉर्नर, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है मोहम्मद शमी उनको काफी तंग कर रहे थे। पहले के 2 ओवर में वो निगोशिएट बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे डेविड वॉर्नर, बट अब लग रहा है कि डेविड वॉर्नर को भी समझ आ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मोहम्मद शमीज लाइन एंड लेंथ, कंडीशंस उनको थोड़े बेहतर समझ आ रहे हैं। इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी शैलेश की मानुस लाबशान और मोहम्मद शमी का कैसा टक्कर होगा इस मैच में। आई थिंक ये इस मैच का सबसे बड़ा हाई पॉइंट होगा, बिकॉज विथ देयर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस दोनों ने एक दूसरे का गेम बहुत अच्छे से रीड किया हुआ है। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन बैटर की क्लियर स्ट्रैटेजी होगी एटलीस्ट फॉर दीज टू बॉलर्स कि कैसे इनको विकेट नहीं देना है। दे माइट नॉट वांट कि बहुत रन्स ना आए इन ओवर्स में, बिकॉज एक पॉइंट के बाद द बॉलिंग पैटर्न हैज टू चेंज। वी विल हैव टू गो टू उमेश यादव, देन विल हैव टू गो टू जडेजा। तो आई थिंक रन से ज्यादा इस वक्त विकेट बचाना जरूरी है ऑस्ट्रेलियन साइड के लिए। एग्जैक्टली इसलिए अगले 10 ओवर में अगर इंडिया कुछ कर सकती है तो दैट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस गेम फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, बिकॉज अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, धूप निकली है, द पिच विल गेट ड्राई, एंड the longer it is sunny, it becomes much more easier to bat on. Oh, that was a slight fumble by KS Bharat. 1 रन मिलेगा यहाँ पे मानुस लाबुशान को। सिंपल सा टेक था। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि वो वहां पे ऐसे फंबल कर गए, बट नो सीरियस डैमेज डन। ऑस्ट्रेलिया इज 8 for 1 डाउन। बाउंस भी ऑकवर्ड नहीं थी, काफी साफ तरीके से आया था। बट हाँ, ये एक बात है शैलेश अबाउट इंग्लिश पिचेस विच आई डोंट थिंक any of our wicket keepers who are there in the squad right now are very familiar with. Unlike most other pitches, जब बॉल स्टंप्स को क्रॉस कर जाती है तो काफी वॉबल करती है, especially given the distance at which the stump and the wicket keeper are. काफी वॉबल कर जाती है और वो बहुत कम विकेट कीपर्स या काफी एक्सपीरियंस विकेट कीपर्स ही इस वॉबल को संभाल पाते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ हियर विद केएस भरत। राइट, सो बेसिकली थोड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं। ऑल्दो ट्रेनिंग सेशंस में आई थिंक ये सब चीजें कवर होती हैं जो आपने बोली, और बट स्लोली एंड जब तक ये कुछ और गेम्स खेलेंगे आई एम श्योर ये सब चीजें इनके इसमें आ जाएंगी गेम में। और ये बॉल कलेक्शन एमएस धोनी का हमने देखा है इतने सालों तक, विच वाज इम्पेक्केबल। एब्सोल्युटली। और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं विकेट कीपर से वो बहुत हाई हैं बिकॉज ऑफ एमएसडी। और केएस भरत को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आई थिंक। इनफैक्ट काफी बड़ा डिबेट चला था कि क्या केएस भरत को सिलेक्ट करना चाहिए या ईशान किशन को। फॉर्मर प्लेयर्स, फॉर्मर सिलेक्टर्स, एवरीबडी हैड मिक्स्ड रिएक्शंस टू हु शुड बी सिलेक्टेड, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी के हिसाब से देखा जाए, फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए, तो ईशान किशन, अ यंग swashbuckling batsman who is also not a bad wicket keeper, was going to be everybody's choice. But since this is a one-off final, they wanted the most experienced person to be behind the stumps, and उस मामले में श्रीकर भरत और ईशान किशन के बीच में चॉइस बहुत ही क्लियर था। श्रीकर भरत has a much better track record as a test wicket keeper. In fact, पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में, इनफैक्ट द टेस्ट मैच which was played against Australia, उसमें श्रीकर भरत ही विकेट कीपर थे। मगर हाँ, इंडियन कंडीशंस एंड लाइक आई सेड इंग्लिश कंडीशंस जहाँ पे लेट स्विंग का बहुत इशू रहता है, दैट इज समथिंग दैट ही विल हैव टू कोप विद। Maybe he will be better if he is standing when he gets to stand closer to the stumps for the likes of Shardul Thakur, या जब रविंद्र जडेजा बॉलिंग के लिए आएंगे तब उनके लिए शायद थोड़ा आसान होगा। ओ, आई होप दोज आर डेकोरेटिव umbrellas, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपनी छतरियां बाहर निकाल रहे हैं। आई थिंक वो डायरेक्ट सनलाइट को से बचने के लिए है, रेन्स का आई थिंक सीन नहीं है वहाँ पे।
बट कंडीशंस इस तरह ओवरकास्ट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है. एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टॉइड जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ने को मिला, शैलेश, ओवल में 104 टेस्ट मैच, ये शायद 105वां टेस्ट मैच है जो ओवल होस्ट कर रहा है, मगर ओवल हैज नेवर, it was a flash by David Warner and he has hit that ball for a boundary to the point area, to the third man area, in fact. Wow. So this is the first boundary for Australia after almost in the sixth over. This is of Mohammad Siraj's bowling that David Warner has been able to score that boundary. The first boundary coming for Australia, welcome boundary. और जिस तरह ये शॉट खेला था शैलेश, काफी अग्रेसिव था. इट वाज नथिंग लाइक, excellent response by Mohammad Siraj. Excellent comeback ball, I would say. I think वो बॉल जो डेविड वार्नर ने मारी बाउंड्री पे, आई थिंक उन्होंने पहले ही रीड कर लिया था वो बॉल, एंड he just had to put his bat, and there was no fielder there. He knew it, and it was a clear boundary. I think 3 या 4 फीट और आगे होता तो 6 होता. Exactly. बट ये जो रिप्लाई जो था मोहम्मद सिराज का, द वेरी नेक्स्ट बॉल, ऑलमोस्ट विकेट टेकिंग डिलीवरी. आई थिंक यहां पर भी एक अलग बैटल शुरू हो रही है बिटवीन मोहम्मद सिराज एंड द ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन. Yes, I think this is the beauty of Siraj. आप 2-3 चौके नहीं मार सकते. He will shock you, he will surprise you. He has a comeback ball in his mind. He knew कि कौन से उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कहाँ पे बॉल नहीं डालनी, कहाँ पे बॉल डालनी चाहिए, कहाँ पे वो थोड़ा सा लालच देके कैच निकलवा सकते हैं. So the batter, whoever is batting, उनके दिमाग में भी ये बात रहती है कि सिराज के साथ आप बहुत ज्यादा फ्रीडम बहुत लाइटली नहीं ले सकते हो. Excellent shot by David Warner again. बट ये बॉल, ये डिलीवरी भी, ये बॉल भी काफी तेज नहीं ट्रैवल कर पा रही है. मुझे लग रहा है कि आउटफील्ड काफी स्लो है ओवल में, बिकॉज उमेश यादव वाज एबल टू चेस डाउन दैट बॉल इवन दो ऑस्ट्रेलिया वाज एबल टू स्कोर 3 runs off that delivery. They are right now at 16 for 1, if I'm not mistaken, at the end of the sixth over. Yes, 16 for 1. Mohammad Siraj has conceded, suddenly he has conceded 10 runs, and all the 10 runs have come in this one over. So 9 runs, sorry, have come in this over of Mohammad Siraj. तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, स्पेशली डेविड वार्नर को कहीं ना कहीं कुछ आइडिया तो मिल रहा है कि इंडियन पेसर्स, इंडियन सीमर्स को कैसे इस कंडीशन में टैकल करना चाहिए. काफी जल्दी उन्होंने समझ लिया है. Yes, वार्नर बहुत ही शार्प प्लेयर है, इतने सालों का एक्सपीरियंस होने, मोर देन अ डेकेड ऑफ प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है समझना. और एक और बात वार्नर के साथ है, मैं कई बार उनको ऑस्ट्रेलिया का वीरेंद्र सहवाग कहता हूँ. ही कैनॉट, यू कैनॉट स्टॉप डेविड वार्नर फॉर लॉन्ग. वो बहुत रुक के नहीं खेल सकते. ही हैज हिज शॉट्स, ही विल प्ले. वो बहुत रुका हुआ गेम नहीं खेल सकते. रन अ बॉल की ऑलमोस्ट एवरेज से वो खेलते हैं. और when Warner is on strike, you will expect some boundaries, even if it's a test match. Exactly. And I think abhi, even when Usman Khwaja was batting with him, David Warner looked a much more settled player, somebody who was able to negotiate the initial seam and swing of the Indian pacers. और अभी वो और ज्यादा स्टेबल लग रहे हैं इन द वे ही इज बैटिंग. मानस लाबुशान को अभी तक इंडियन बॉलर्स ने इतना ज्यादा टेस्ट नहीं किया है, बट इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ मानस लाबुशान टेक्स ऑन द लाइक्स ऑफ मोहम्मद शमी. एंड दैट वाज अ वेरी वेल बोल्ड डिलीवरी. इनसाइड एज लगी है, मगर नो हार्म डन फॉर ऑस्ट्रेलिया. इनफैक्ट दे स्कोर अनदर रन. It's 17 for 1 at 6.3 overs for Australia. I think Team India needs to change its strategy a little bit.
as far as these two players are concerned, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी 7वां ओवर चल रहा है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन बॉलर बैट्समैन को समझ आ गया है कि सिराज और शमी को कैसे डील करना है, एटलीस्ट इन दिस इनिशियल स्टेजेस। जल्दी आई थिंक मुझे लगता है कि हम बॉलिंग चेंज देखेंगे। आई एम श्योर शमी इसके बाद एक ब्रेक लेंगे बॉलिंग से और मे बी उमेश यादव को अटैक पे लाया जाएगा, बिकॉज हमें शार्दुल भी है हमारे पास जो कि अगेन एक पेस बॉलर है, उनके पास भी वेरिएशंस हैं और जल्दी आई एम श्योर ये बॉलिंग अटैक चेंज होगा। मे बी सिराज का एक ओवर और उसके बाद ये चेंज हो जाए। भी मोहम्मद शमी के बॉल को ऑफसाइड में खेलने की कोशिश करी थी मार्नस लाबुशान ने, एंड इट वाज ब्रिलियंटली स्टॉप्ड बाय कैप्टन शर्मा. It is going to be very interesting to see how Australia is going to manage to negotiate this earlier onslaught. Oh, in swinger by Mohammad Shami, and that was very close. मगर हाइट की वजह से टीम इंडिया ने एलबीडब्ल्यू के लिए अपील नहीं किया है, तो मारूफ लाबुशान बच गए वहां पे, मगर बहुत ही बढ़िया बॉल. हाँ, आई थिंक उनको समझ में नहीं आई बॉल कि बॉल कहाँ निकल गई. बैट नीचे भी नहीं किया उन्होंने. आई थिंक ही वाज नॉट ट्राइंग टू प्ले इट, बट द बॉल केम इन, पैर बीच में आ गया एंड ही मस्ट बी डिसअपॉइंटेड आई थिंक द वे ही रेड द बॉल. अगेन अ वेरी टाइट डिलीवरी बाय शामी. लाइन अगर आप देखो इनकी, एब्सोल्युटली ऑन द स्टंप्स. Exactly, like on the stumps and giving very little chance for the batsmen to move around or to get any room to play their shots. क्योंकि ये हमने शुरू में डेविड वॉर्नर के साथ देखा था. अभी मार्नस लाबुशान is trying to figure out how he is going to deal with मोहम्मद शमी, because जिस तरह मोहम्मद शमी ने पिछले 2 या 3 बॉल डिलीवर किए हैं, it doesn't look like Manas Labuschagne has able to figure out how he plays, and he managed to score that one run of the last ball of the 7th over. It's 18 for 1 Australia at the end of the 7th over. क्या आपको लग रहा है शैलेश कि there will be a bowling change for India, कि उमेश यादव या शार्दुल ठाकुर को एक ओवर दिया जाएगा? आई एम श्योर देयर विल बी बॉलिंग चेंज. मे बी मैंने जैसे कहा सिराज का शायद एक ओवर हो सकता है, बिकॉज शामी ने ओपन किया था बॉलिंग अटैक, तो एक सिराज का ओवर हम और देख सकते हैं, बट उसके बाद तो डेफिनेटली होगा. ये जो लास्ट रन इनफैक्ट इन्होंने लिया, देयर वाज अ बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्वड. आई थिंक वार्नर बहुत खुश भी नहीं थे उस रन से, बिकॉज देयर वाज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन द टू बैटर्स, और आई थिंक वार्नर कुछ समझा भी रहे थे. मुझे लग रहा है कि मानस लाबुशान को ज्यादा डिलीवरीज फेस करने का मन कर रहा है, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम सिंस ही केम टू द क्रीज, डेविड वॉर्नर ने ही मेजॉरिटी ऑफ द डिलीवरीज फेस करे थे, बिकॉज एट द इनिशियल फ्यू ओवर्स बोथ डेविड वॉर्नर एंड उस्मान ख्वाजा को ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स फेस करने को मिले. बट अभी आई थिंक मानस लाबुशान हैज फिगर, ओह व्हाट अ बॉल, गुड लेंथ डिलीवरी दैट जस्ट रोज अप फ्रॉम नोवेयर. This was Mohammad Siraj bowling in the first delivery of the 8th over at Marnus Labuschagne, and it was an awkward bounce that has hit Labuschagne on his fingers. काफी surprising, Shailesh. Yes, बिल्कुल. आई थिंक वो लाइन और लेंथ गैदर ही नहीं कर पाए बैट्समैन, और इट हैज हिट हिज फिंगर्स. आई थिंक बैट एकदम छूट गया उनके हाथ से. I think he's in great pain right now, and ऑस्ट्रेलिया के लिए slightly difficult time. थोड़ा I think ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को थोड़ा समझना होगा इस पेस को सिराज के, बिकॉज 140 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की पेस पे बॉलिंग हो रही है, एंड बैट्समैन हैड नो आइडिया कि वो क्या डील कर रहे हैं.
एग्जैक्टली यू आर राइट शैलेश, काफी दिक्कत हो रही है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को वो इनिशियल फ्यू डिलीवरी समझने में. आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई मानस लाबुशान ने वो लास्ट रन लिया था. काफी रिस्क था, आप सही बता रहे थे, काफी रिस्क था उस लास्ट रन में, मगर उन्होंने तभी वो रिस्क ले लिया बिकॉज आई थिंक लाबुशान वांट्स टू फेस मोर डिलीवरीज फ्रॉम शमी एंड सिराज टू बेटर अंडरस्टैंड कि ये इंडियन बॉलर्स को वो आगे जाके कैसे टैकल करे, क्योंकि दे हैव टू फेस इनफ एंड मोर डिलीवरीज, दे हैव टू preserve the wickets for as many overs as they can in this opening onslaught of the match. क्योंकि अगर अभी इन्होंने वो फाउंडेशन सेट नहीं किया है, it will be too much of an effort for the next set of batsmen who will come in. Even though you have the likes of Steven Smith, Travis Head, जो ऐसे कंडीशंस में काफी बढ़िया बैटिंग करते हैं शैलेश, मगर वो अगर ऐसी एक सिचुएशन में आए जहां पर उनके विकेट्स काफी जल्दी गिर चुके हैं या विकेट्स ऐसे टाइम पे गिरे हैं जब ज्यादा स्कोर नहीं हुआ है, वो एक अलग प्रेशर पड़ जाता है बैट्समैन में. Yes, I think 50 overs would be a target जहां पे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स देखेंगे कि वो नेक्स्ट विकेट ना लूज कर पाए, 50 ओवर्स तक वो कोई विकेट ना लूज कर पाए. और बिकॉज राइट नाउ अगर सेकंड डाउन थर्ड डाउन बैटर इन होता है तो इट इज अ लॉन्ग डे फॉर हिम. बहुत बहुत बैटिंग उसको करनी होगी एंड डेफिनेटली प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. काफ़ी चोट है उनके इस हैंड में, अभी भी वो कुछ अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं, बट ही इज रेडी टू फेस द सेकंड डिलीवरी ऑफ सिराज's 8th over. Exactly. Manus Labuschagne was completely surprised by that good length delivery which just exploded off the pitch onto his hands. And Mohammad Siraj does not seem to be relenting. He's still coming in at that 140k per hour mark, and he is not letting Manus Labuschagne have any room. Even this last delivery that he faced, it was practically edged on to the third slip, if I'm not mistaken. And Manus Labuschagne took that hit to his hand and is not looking very comfortable standing in the crease. But yeah, but you never know about this man. Like I said, he has been compared to the likes of Cheteshwar Pujara, and there you go. A bit of a small error as far as Siraj's length was concerned, and Labuschagne had managed to tuck that ball away for 3 runs. Australia are now at 21 runs for the loss of 1 wicket in 7.3 overs. Run rate just about 2.5 per over. Yes, I think जैसा आपने पहले बोला, आउटफील्ड थोड़ा स्लो है, बॉल उतनी फास्ट जा नहीं रहा है, एंड दैट इज द रीजन ये रन भाग के रन ले पा रहे हैं. बाउंड्री तो कंसीड नहीं हो रही है, बट हमें बहुत बार 3 रन्स स्कोर होते हुए दिख रहे हैं. Exactly. अभी हमने फ्रेम में देखा स्टीवन स्मिथ who is padded up and ready, but वो कब आएंगे फील्ड में ये तो आई थिंक अभी मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के हाथ में ही है. Both these bowlers have managed to keep the Australian batting silent, but the Australian batters, to give credit, especially to David Warner, वो काफी डिफेंसिव भी रहे हैं, मगर जहां उनको अग्रेशन दिखाना है वो अग्रेसिव भी हुए हैं. Whether it be मोहम्मद सिराज, whether it be मोहम्मद शमी, इन दोनों प्लेयर्स को, इन दोनों बॉलर्स को इन्होंने काफी अच्छी तरीके से अभी तक डील किया है. शैलेश. यस, आई थिंक दोनों हमारे बेस्ट बॉलर्स हैं. इंडिया की होप है फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स एज फार एज पेस बॉलिंग इज कंसर्न. और जितनी बॉलें ये खेलेंगे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, उतना आई थिंक ये कॉन्फिडेंट होंगे इन दोनों बॉलर्स को खेलने के लिए. अपार्ट फ्रॉम द 3 रन्स व्हिच वर स्कोर्ड ऑन द थर्ड बॉल, अभी उसके अलावा सारी डॉट डिलीवरीज हैं. अगेन अ वेरी गुड लेंथ बॉल, वेरी गुड लाइन, एकदम विकेट्स पे. सिराज थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, एज लग के पीछे भेजना चाहते थे उस बॉल को, बट he's actually eyeing for that wicket. His aim is to get that wicket. Absolutely. Like अभी among these two players सबसे important wicket जो है मेरे हिसाब से वो तो डेविड वार्नर का ही होगा, क्योंकि Manus Labuschagne is not known as somebody who is going to score very quickly. He can bat long. He can bat very, very long. That's one of his
biggest traits. But इन दोनों के बीच में अगर किसी को अगर हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डेंजर मैन कौन है, वो तो डेफिनेटली डेविड वार्नर है. इवन दो ही इज 36 years old, he is still somebody who can take the match away from the opposition regardless of the format. अभी जो आईपीएल खत्म हुआ है उसमें हमने देखा इन मोर देन अ फ्यू गेम्स फॉर द दिल्ली कैपिटल्स, डेविड वार्नर ने ही अकेले खड़े होके स्कोर किया था. there were a few games where he even managed to take them all the way across the finish line all himself. And it seems that confidence, that run of play that David Warner got in the IPL has rubbed off on him, and he looks very comfortable in facing the Indian Pacers in these opening few overs of the World Test Championship final. Yes, I think इन दोनों बॉलर्स को, इनफैक्ट इन सारे इंडियन बॉलर्स को आईपीएल के दौरान वार्नर ने बहुत अच्छे से खेला है और उनके लगभग सभी ट्रिक्स वो जानते हैं. इट्स जस्ट द प्रिपरेशन ऑफ द पिच व्हिच इज न्यू टू हिम, एंड वंस ही पासेस दैट 10 ओवर मार्क, जहां उन्होंने कुछ 50-60 बॉल्स खेल ली, देन his actual play begins, because you cannot stop Warner from making runs. However good the bowling attack is, either he'll lose his wicket or he will make runs. Exactly. I think India is still persisting with its top two bowlers, क्योंकि this is the 9th over that has started and अभी तक मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ही बॉलिंग कर रहे हैं. अभी एक छोटा एनालिसिस चल रहा है of how Mohammad Siraj managed to keep Usman Khwaja grounded in his crease while he was bowling that over in which he picked up his wicket. And उन्होंने वो सेम कंपैरिजन चलाया था मानस लाबुशान के लिए, और आप देख रहे थे कि मानस लाबुशान का फुटवर्क काफी बेहतर था उस्मान ख्वाजा से, and that is one of the reasons why he is able to negotiate a lot of the tricky deliveries that are being bowled by Shami and Siraj. Yes, I think ये comparison अभी भी चल ही रहा है, and ultimately Siraj got the wicket of Usman Khwaja, and मानुस अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, and Exactly. Manas abhi bhi batting कर ही रहे हैं, and he has been a lot more stable in the way he has approached both Mohammad Shami and Mohammad Siraj. काफी देख के, काफी संभल के ये अपने डिलीवरीज खेल रहे हैं, and it does seem like it is going to get a little difficult for the Indian bowlers to get a wicket here as early as they would have loved to. Three dot balls in the 9th over by Shami. Fantastic delivery. नाइन्थ ओवर बॉल कर रहे हैं मोहम्मद शामी. 21 रन्स हुए हैं ऑस्ट्रेलियन साइड के. उस्मान ख्वाजा इज द ओनली विकेट टिल नाउ. हमने हमारे YouTube पेज में एक पोल लगाया था शैलेश. The question that we asked our viewers and subscribers is, who do you think will be the main bowler for Team India? Will it be Mohammad Shami, Umesh Yadav, Mohammad Siraj और रविंद्र जडेजा? अभी तक ऑलमोस्ट 350 वोट्स आ चुके हैं. Oh, that was a close one. I think Manas Labuschagne was just left admiring his shot, because when he played that shot, he tried to use soft hands. The ball pitched between his legs and it went behind, and he did not realize that the ball had gone to the stumps. Unfortunately, it angled away from the wicket. नहीं तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विकेट होता शैलेश. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. उनको आइडिया ही नहीं था कि बॉल कहां चलेगी, एंड वो देख ही नहीं रहे थे. आइडिया तो दूर की बात है, वो देख ही नहीं रहे थे. He was admiring his shot, the defense that he had managed to mount against Mohammad Shami.
And I think suddenly he woke up, he realized कि ball तो निकल गई boss. Oh, that rare delivery जो मोहम्मद शमी बोल करते हैं, जो उन्होंने मानुस लाबुशान के पैरों में डाल दिया था, but just one run has been scored. So this is the end of the 9th over. Australia is now at 22 for the loss of just one wicket. शैलेश, आपको क्या लग रहा है अभी? We are in the 9th over right now. काफी हमने देख लिया है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है. व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट ऑस्ट्रेलिया इज ट्राइंग टू एम्प्लॉय? आपको क्या लग रहा है कि अभी अपर हैंड किसके पास है? I guess upper hand इंडिया के पास है. टेस्ट मैच में अंडर 10 ओवर्स पहला विकेट, वो भी उस्मान ख्वाजा, हु कुड बी अ डेंजर मैन अगर वो चल जाएं, तो अपर हैंड डेफिनेटली इंडिया के पास है इस वक्त. और जिस तरह से बॉलिंग हम देख रहे हैं फ्रॉम द टू पेसर्स वी हैव, इट इज अमेजिंग. बिल्कुल रूम नहीं दे रहे हैं बैट्समैन को खेलने का. लाइन और लेंथ एब्सोल्युटली बैंग ऑन है. और कहीं ना कहीं बैट्समैन अभी भी अपनी रिदम ढूंढ रहे हैं. कुछ हद तक वार्नर को मिल गई है, बट द सेकंड बैटर इज डेफिनेटली लुकिंग फॉर दी. एंड ये बॉल आपने देखा अभी, ये बॉल जो अभी सिराज ने बॉल किया, दिस इज द फर्स्ट बॉल ऑफ द 9th ओवर. डिड यू सी द बाउंस? बॉल बाउंस ही नहीं करी है. लाइक श्रीकर भरत हैड टू बी ऑन हिज नीज टू कलेक्ट इट. और ये 85 माइल्स पर आवर की बॉल थी शैलेश. लाइक ऑलरेडी इट सीम्स दैट पिच में कुछ ना कुछ तो है फर्क, कि जिसकी वजह से बॉल अच्छे से बाउंस भी नहीं कर रही है. इट वाज अ गुड लेंथ डिलीवरी which Srikar Bharat had to kneel down to collect, and still the ball bounced in front of him. Yes, definitely. ये बॉल कैरी नहीं हुई पीछे तक. और कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर है पिच का. अभी हमने थोड़ी देर पहले, कुछ ओवर्स पहले, अमेजिंग बाउंसर्स देखे थे दोनों बॉलर से. एक बाउंसर डाला था उन्होंने अपने ओवर्स में. और अगेन यहाँ पे बॉल विकेट कीपर तक कैरी भी नहीं हुई. सो दिस अनइवन बाउंस, ये सभी चीजें बैट्समैन के लिए लाइफ डिफिकल्ट बनाती हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ही हैज टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू प्ले द बॉल और ही वांट्स टू लीव इट. Another ball. What is happening? 140 की स्पीड में ये बॉल डाली गई थी. गुड लेंथ डिलीवरी, and it did not bounce at all. It did not bounce at all. It was very surprising कि ये बॉल इतनी कम बाउंस खाके विकेटकीपर के पास गई है. There were many who were saying that since this game is taking place in England at the Oval, there will be good bounce, there'll be good amount of seam. We saw a lot of that in the initial few overs, but oh, what a ball. Mohammad Siraj right now is on fire. This ball just missing the edge of Manas Labuschagn's bat. Mohammad Siraj is bowling right arm over the wicket, and a right-handed Manas Labuschagne was not able to negotiate that delivery at all. We had put out a poll this morning on our YouTube page where we have clocked almost 600 votes so far. We had asked the question to our viewers and subscribers, who do you think will be the main bowler for Team India? Will it be Mohammad Shami, Umesh Yadav, Mohammad Siraj, or Ravindra Jadeja? 45% have voted for Mohammad Shami and just about 37% for Mohammad Siraj. And ladies and gentlemen, I can tell you this, that uptick in Mohammad Siraj's number has come over as the match progressed, because the way he has been bowling these last few deliveries, it has been just magical. Some of the balls that he delivered, those surprise bouncers that just exploded off the pitch, it is definitely creating a lot of issues for the Australian batsmen. And credit to the Australian batsmen, they have managed to negotiate these deliveries quite well. 9.4 overs, 22 for 1 is where Australia stands right now. Mohammad Siraj is still steaming in with those 140 kilometer per hour deliveries. Mohammad Shami has been a touch slower than Mohammad Siraj, but he has been on the money.
as far as most of his deliveries are concerned. He troubled David Warner a lot initially, but I think David Warner eventually, given his experience of playing against Mohammad Shami across formats in various different teams, in IPL, in ODIs, T20s, even Test match over the last few years, was able to start to negotiate him pretty well. But Mohammad Siraj has been proven is proving to be quite a handful. The way he managed to stifle. Oh, what a delivery! What a delivery! An appeal has been made. The umpire has refused, and it seems Rohit Sharma is not at all interested in going upstairs. So, as it stands at the end of the 10th over, Australia is 22 for 1. David Warner is at 13 of 25 deliveries. Manas Labuschagne has scored 8 of 25 deliveries. We are getting enough and more comments on our YouTube page right now. A lot of people are asking why we are not showing the match. Match dikhao na, ye bak bak band karo is what one of our subscribers have written to us. Well, this is a YouTube stream to give you live commentary and a live scorecard update as far as the World Test Championship final is concerned between India and Australia. So I'm sorry, we will not be able to show you any match footage here, but we will be getting you all the latest updates that we are getting from the Oval in England, where this match is being played. The second WTC final being played between India and Australia. India managing to make their mark in the WTC final for a second time after New Zealand, who were the winners of the inaugural edition, managed to hold back Sri Lanka in the opening test match of their series. This was right after India had managed to register a series win against Australia, who topped the table for this season's WTC. For this season's WTC's WTC points table, sorry. So it was quite an interesting match. Like, till the last series of that calendar, we did not know whether India and Australia are going to play, but here we are, two of the world's best teams facing off against each other, the world's best batsmen, the world's best bowlers, all coming at the Oval, all gathered at the Oval, and that battle is on right now. It was a fairly wide delivery by Mohammad Shami, and David Warner was in half a mind to play it. He did have a swing at it, but no damage done at both ends. A lot of our comments are also coming in for Mohammad Siraj. Bimbadhara is saying that Siraj will take one more wicket. Cricket Op is very much agreeing with Bimbadhara, and it seems that even Team India is realizing that yes, Mohammad Siraj is their pick among the two bowlers who are running into the Australian bowlers right now. Mohammad Shami has been keeping it very tight, but I think he is becoming a little too predictable for the Australian batsman. David Warner has managed to figure out how to deal with the deliveries that Mohammad Shami has been firing off at him. Manas Labuschagne has had his hands full with Mohammad Siraj. So that is a battle. That's another battle that is brewing up in the middle as far as the Indian bowlers and the Australian batsmen are concerned. Mohammad Siraj getting the opening wicket of Usman Khwaja with that terrific ball that went across the stumps. And there you go. This is the David Warner that Australia wants to see. A smack, a pull across, and he has scored his and Australia's second boundary of this game. A good length delivery. I would say the length was off. I don't know whether Mohammad Shami was trying to bowl a bouncer, but this was well shot for David Warner to line up that stroke for a 4.
So after 4 terrific deliveries, Mohammad Shami errs to give David Warner that boundary, which he managed to smack without too much of an effort. And David Warner lets the ball play on at the end of the 11th over. Australia now at 26 for 1. David Warner clearly the aggressor between the two players who are there in the middle right now. Again, I would like to go back to some of the comments that we are getting on our YouTube page. Clearly, a lot of Indian supporters have tuned in to this live broadcast. A lot of them are saying that India will win. And a lot of support for Mohammad Siraj also coming in. काफी इंटरेस्टिंग रहा है ये मैच अगर हम देखेंगे तो, क्योंकि जिस तरह इंडियन प्लेयर्स ने इंडियन बॉलर्स ने ये शुरुआत करी है, बढ़िया शुरुआत दी है टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. ऑस्ट्रेलियन बैटर्स भी काफी पीछे नहीं है. डेविड वार्नर काफी अग्रेसिव रहे हैं इन द वे ही हैज फेस्ड ऑफ अगेंस्ट मोहम्मद सिराज एंड मोहम्मद शमी, मगर इंडिया को वो एक इंपॉर्टेंट विकेट मिल गया था ऑफ इन फॉर्म उस्मान ख्वाजा. मोहम्मद सिराज इज गोइंग टू कंटिन्यू to bowl. This is his 6th over on the trot, and he is bowling to Manus Labuschagne, with whom he has had quite a battle in this game so far. मोहम्मद सिराज को फेस करने में काफी दिक्कत हो रही है मानुस लाबुशान को. वो 2 ओवर पहले आप जो टीवी में देख पा रहे हैं ये मैच, एक ऐसा गुड लेंथ बॉल आया था मानुस लाबुशान की तरफ जो मोहम्मद सिराज ने बॉल किया था, जिसका बाउंस काफी ऑकवर्ड था और उनके हाथ में लगी थी बॉल सीधी. एंड कुछ उनको थोड़ा मेडिकल अटेंशन देना पड़ा था, क्योंकि वो जिस स्पीड में वो बॉल टकराई थी मानुस लाबुशान के हाथों से, ऐसा लग रहा था कि वो काफी गंभीर तरीके से इंजर्ड थे, क्योंकि देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरवल दैट वाज गिवन so that Manus Labuschagne could have his hand tended to by the Australian physios. Labuschagne keeping it very simple as he is facing an in for Mohammad Siraj, who has been just firing it in at 140 clicks per hour very regularly. He has been faster. He has been much more faster than Mohammad Shami, and has been looking far more threatening than his older bowling partner at the other end. It's 11.3 overs. Australia are 26 for 1 at a run rate of just 2.26. They lost Usman Khwaja for a not. Manus Labuschagne and David Warner are there on the crease right now, and it seems that, very well fielded. This is, I am guessing, Shardul Thakur. Manus Labuschagne managing to tuck away that delivery, that full-length delivery by Mohammad Siraj for 3 runs. The outfield at the Oval has been very slow, and I think this is something that is going to benefit the Indian players a lot, because it is a fairly big ground, and Indian players are not known to go for big shots while they are playing the red ball game, because India over the last few years has been known to give a very conservative approach to test match when they are batting, even though the bowling has improved by leaps and bounds. Is that a drop? No, it's not a drop. But yes, that wobble that comes after the ball crosses the wicket is something that has been troubling Srikar Bharat quite a lot in this game. This is the second time that we are seeing him drop a ball that has come at a good length. That late wobble
which English pitches are known for, is something that he needs to get accustomed to very quickly, because there is definitely going to be some sort of a result as far as this match is concerned, because we know that both Indian and Australian players are very aggressive, and at some point they will chase down a result. At the end of the 12th over, drinks break has been called for, and as the scoreboard says, it is 29 for 1 Australia. David Warner and Marnus Labuschagne are there at the crease. David Warner 17 of 33, Marnus Labuschagne 11 of 29. Mohammad Siraj has been the wicket taker for India. He has bowled 6 overs, bowled 2 maidens, conceded 16 runs, and picked up that wicket of Usman Khwaja. And then you have Mohammad Shami, who has bowled the same number of overs, I think just 1 maiden and no wickets yet.
नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। मेरा नाम रॉबिन। अभी जो मैच चल रहा है आप देख रहे हैं, काफी रोमांचक मैच चल रहा है। WTC फाइनल, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। शार्दुल ठाकुर को बॉल थमाई गई है, पहली बॉल डॉट निकली है, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, अच्छी लाइन के साथ बॉल डाली उन्होंने। अभी तक वार्नर 38 पर 21 रन बनाए हैं। उनके साथ लघु शमी है जो 31 पर 12 पर खेल रहे हैं। हमारे साथ काफी दर्शक जुड़े हुए हैं, जैसे मिथिलेश जी, करण। तो अपने सभी दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आज के मैच में या 5 दिन चलने वाले मैच में कौन सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल बॉलर रहेगा? मोहम्मद शामी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा। वैसे अभी तक के पोल में शामी जी 44% से आगे चल रहे हैं और हमारी लगातार वोटिंग चल रही है। 1875 के आसपास वोट चले गए हैं। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा वोट्स डाले जाएं। मिथिलेश कुमार जी कह रहे हैं हमारा नाम भी मत बोलिए। जी मिथिलेश जी, आप बताएं कि आप किस बॉलर को आज देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा दे वो आज, और अगले 5 दिन आप किसकी तरफ देखना चाहेंगे? आज हमारे सीमर्स बॉलर ने बहुत अच्छी बॉल डाली है, ये हम देख रहे हैं। और सिराज ने आज बहुत ही खतरनाक बॉलिंग कराई है। ख्वाजा को समझ में ही नहीं आई बॉल, और 10 बॉलों पर 0 रन बनाकर वो आउट कर दिए गए। और शार्दुल ठाकुर, ओहो क्या शानदार बॉल, आउट स्विंग बॉल डाल रहे हैं, बिल्कुल एकदम जबरदस्त लाइन पर टप्पा डालते हुए, और कोई जवाब नहीं लबूशने के पास उनकी बॉलिंग के लिए। और अगर इसी तरह से इंडियन बॉलर्स ने अपना प्रदर्शन रखा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुश्किल होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अपने ही होम ग्राउंड पर उनको प्रॉब्लम होने वाली है। मिथिलेश जी कह रहे हैं शामी है उनके फेवरेट बॉलर। सुमित सोनी जी कह रहे हैं रविंद्र जडेजा। ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सब जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम सब मैच का मजा ले पाएंगे। बहुत अच्छी बॉल, अगली बॉल फिर से लाइन पे थी मगर स्ट्रेट ड्राइव किया है उसको लबूशने ने, और बाउंड्री तरफ जाती हुई बॉल। देखना होगा कि उसको रोक पाएंगे नहीं, मगर 4 रन मिलेंगे यहाँ पर लबूशने को। लबूशने अच्छी बल्लेबाज हैं, वन डाउन पर आते हैं। यहाँ पर शार्दुल को पहले ही ओवर में एक चौका मिला है 5वीं बॉल पर। अच्छी तरह से उन्होंने ड्राइव किया उसको स्ट्रेट ड्राइव की तरफ, और कोई भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। और एक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं ऐसा जो अमेजिंग पेस अटैक 150 प्लस, और सोनी है जो कहें कि हम भी जुड़ गए हैं, हमारा भी नाम आना चाहिए। कई सारे ऐसे ही यहाँ पर पीस सेंटर वो कह रहे हैं मोहम्मद सिराज उनके फेवरेट रहेंगे। इसी तरह सभी हमारे दर्शक जुड़े रहे हैं तो बहुत मजा आया हमें इस मैच का। और जैसा कि हम पा रहे हैं काफी अच्छा मैच रहा है अभी तक इंडिया के लिए, क्योंकि अच्छे सीम बॉलर्स ने अच्छी बॉल डाली है। किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन के पास कोई मौका नहीं दिया गया है ज़्यादा। और इसी तरह से अगर इंडियन बॉलर्स, इंडियन सीमर्स, इंडियन स्पिनर, आगे आने वाले टाइम में स्पिनर भी यूज़ होंगे, और इसी तरीके से और इसी लय में बॉल डाली तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखने वाली बात रहेगी आगे। अभी 4 दिन और हैं आज के दिन के अलावा, और अभी जस्ट मैच शुरू ही हुआ है। अभी कहना बहुत ही जल्दी होगा कि किस तरफ मैच जाता है। अभी तो इस टुडे आज के दिन के लिए 14 ही ओवर हुए हैं। ये उमेश यादव बॉल कराते हुए, और बहुत ही अच्छी बॉल थी और अच्छा शॉट था, मगर बहुत ही शानदार फील्डिंग वहाँ पर, कोई रन नहीं। उमेश यादव ने थोड़ा लेंथ पर बॉल डाली और उसको उन्होंने कवर ड्राइव की तरफ खेला, मगर बहुत ही शानदार फील्डिंग की चेतेश्वर पुजारा ने, कोई रन नहीं। अच्छी पेस के साथ बॉल डाल रहे हैं हमारे स्पिनर और पेसर, और यही मेरे को लग रहा है कि इंडियन पेसर बिल्कुल तैयार हैं। और जिस हिसाब से और जिस लय में बॉल डाल रहे हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ परेशानी होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के लिए। वार्नर खेलेंगे अगली बॉल उमेश यादव की,
अच्छी बॉल थी, अच्छा ड्राइव और मेरे को लगता है 4 रन और कट कर दिया और 4 रन, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। अब मेरे को लग रहा है अपनी गति चेंज करेंगे क्योंकि है फंदे है, थोड़ा सा इनको बना के चलना पड़ेगा अगर इंडिया को टफ है। हमारे साथ यहाँ पर हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा वोट करें और अपना बॉलर चुने कि जो इस पूरे WTC में अपना कमाल दिखाएगा और उसका जवाब किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं होगा, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के पास एज ऑफ नाउ। और अभी तक हमारे पास 2100 से ज़्यादा वोट्स आ चुके हैं, जिसमें अभी तक मोहम्मद शामी लीड कर रहे हैं और मोहम्मद सिराज सेकंड पे हैं, थर्ड हमारे पास रविंद्र जडेजा हैं और चौथे विकल्प हमारे पास उमेश यादव है एज ऑफ नाउ। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक तो हमारे सारे इंडियन फैंस चाहेंगे कि हमारे सीमर्स और हमारे स्पिनर्स इसी तरह से बॉल कराते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ सभी दर्शक। बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैच चलता हुआ 42 पर 1 रन 42 पर 1 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया अपने थोड़े थोड़े एक लक्ष्य की तरफ चलती हुई। अब यहाँ पर इंडिया को एक विकेट की तलाश होगी क्योंकि इस साझेदारी को ब्रेक करना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज बहुत अच्छे तरीके से पेस को डिफेंड कर रहे हैं और सिग्नल भी निकाल रहे हैं और बीच बीच में खराब गेंद पर चौका भी लगा रहे हैं। उमेश यादव अपनी चौथी बॉल लेकर फिर से वार्नर की तरफ, देखना होगा क्या होता है। और अच्छी बॉल थी मगर फिर दोबारा से बहुत ही अच्छा कट किया ऑफ साइड पर और 4 रन फिर से मिलेंगे। मुझे लगता है कि सेम बॉल थी जो उन्होंने सेकंड बॉल कराई थी जिस पर पहले चौका खाया था और सेम ही बॉल ये वाली रही जिस पर फिर दोबारा से उन्होंने चौका खाया। मतलब मेरे ख्याल से वार्नर अब थोड़ा सा गियर चेंज करते हुए और अच्छी तरीके से बिल्कुल बैक फुट पर जाकर उसको पंच किया है ऑफ साइड की तरफ और 4 रन बहुत ही बढ़िया गैप में निकाला है। दूर दूर तक फील्डर नहीं थे बॉल की तरफ। देखना होगा कि कप्तान रोहित शर्मा अब, क्योंकि इस ओवर में 2 चौके आ चुके हैं, 2 बॉलें बाकी हैं, तो उमेश यादव थोड़ा सा यहाँ पर संघर्ष करते हुए। डेविड वार्नर अब तक 5 चौके मार चुके हैं। अगली ओहो ये अच्छी बॉल थी, थर्ड मैन नहीं था और वो थर्ड मैन की तरफ दिशा से 4 रन। ये पुल शॉट खेलने की कोशिश थी मगर जैसे भी गए रन आए हैं और वार्नर की झोली में आकर 4 रन आराम से आ गए। पुल करना चाहते थे ऑफ साइड पर ही क्योंकि वहां पर फील्डर नहीं था और जिसका उन्हें फायदा मिला वार्नर को 4 रन। अपना 50 रन अर्धशतक ऑस्ट्रेलिया टीम का अर्धशतक कंप्लीट होते हुए 50 पर 1। अच्छा कट शॉट था और थर्ड मैन की दिशा में कोई फील्डर ना होने के कारण 4 रन। अगर वहां पर थर्ड मैन होता तो आई थिंक वो कैच हो सकती थी। उमेश यादव पर अटैक करते हुए वार्नर 14.5 ओवर हो चुके हैं, 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया। शिवांग त्रिपाठी वो कह रहे हैं मोहम्मद सिराज को काफी लोग पसंद कर रहे हैं इंडिया में। मोहम्मद शामी बेस्ट बॉलर, मोहम्मद इब्राहिम है वो कह रहे हैं मोहम्मद शामी बेस्ट बॉलर बट बुमराह की जोड़ी चाहिए। वो कह रहे हैं बुमराह की जरूरत थी चाहिए पर बुमराह जरूर होने चाहिए थे। जो भी है अभी एज ऑफ नाउ तो इंडिया के पास एक ही विकल्प है मोहम्मद शामी, तो मोहम्मद शामी के साथ ही सब हमारे दर्शक जुड़े रहें। और अब देखना होगा कि अब रोहित शर्मा क्या विकल्प चुनते हैं। अब 15 ओवर एज ऑफ नाउ हो चुके हैं तो मेरे ख्याल से अब उन्हें थोड़ा सा स्पिनर की तरफ आना चाहिए क्योंकि अब जो उनके पास 2 ओपनर बॉलर्स थे उन्होंने तो अपना कमाल दिखाया है क्योंकि उनको अच्छी तरह से नहीं खेल पा रहे थे बैट्समैन, मगर उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर को बहुत ही आसानी से खेल रहे हैं। तो मेरे को लगता है यहाँ पर अब रोहित शर्मा स्पिन की तरफ थोड़ा सा रुख करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा चेंज ओवर आना लाना जरूरी है। और नहीं शार्दुल ठाकुर के साथ ही आए हैं दोबारा से, माफ कीजिए शार्दुल ठाकुर ने पिछले ओवर में अच्छा ओवर कराया था, एक ही चौका दिया था, ये दूसरा ओवर है उनका। अभी रोहित शर्मा चाहेंगे कि पेसर ही बॉल कराएं क्योंकि टेस्ट है और टेस्ट में थोड़ा सा बॉल का पुराना होना बहुत जरूरी है और लाल बॉल जितनी पुरानी होगी उतना ही स्पिनर अपना कमाल दिखा पाएंगे। डेविड वार्नर और मार्नुस लबुशनी की साझेदारी हो चुकी है काफी अच्छी। देखना होगा कि
कि ये साझेदारी और कितनी लंबी चलती है। शार्दुल ठाकुर अपना 16 ओवर में दूसरी बॉल कराते हुए, अच्छी लेंथ बॉल है, एकदम टेस्ट मैच बॉल है, ऑफ साइड के बाहर और बाहर को ही जाती है। उसको बैट्समैन अधिकतर छेड़ने की कोशिश नहीं करते हैं और वही उन्होंने करा। लबूशने ने उसको सिंपली लेफ्ट कर दिया, कोई रन नहीं उस पर। एक समझदारी की बॉल। शार्दुल ठाकुर बॉडी पर बॉल नहीं डाल रहे हैं, जब तक थोड़ा सा ट्राई करना बनता है यहाँ पर बॉलर्स को। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से विकेट मिलना मुश्किल है, क्योंकि हो जाती है बॉल पर। अभी बैट्समैन मेरे को नहीं लगता कि चांस है, थोड़ा सा विकेट की तरफ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। विकेट की तरफ से अगर बाहर निकालें, मिडल स्टिक के पास से मिडल स्टिक की लेंथ पर डालते हुए और थोड़ा बाहर जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं बैट्समैन के लिए। अगर ये थोड़ा ऑफ साइड के बाहर ही रहेगी तो मेरे को नहीं लगता कि अनटिल अनलेस कोई बैट्समैन फ्रस्ट्रेट होके शॉट खेलना चाहे, तब तक तो मेरे को लगता नहीं है कि ऐसी बॉल पर कोई चांस लेगा बैट्समैन। एज इन टेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। और यही इस खेल का मजा है। और टेस्ट मतलब मींस क्रिकेट, यहीं से क्रिकेट जाना जाता है, टेस्ट क्रिकेट से। और जो शौकीन होते हैं क्रिकेट के, वो अधिकतर टेस्ट मैच को ही क्रिकेट मानते हैं। यहाँ पर फिर से डॉट बॉल, 4 बॉल है 0 रन। अच्छी बॉल डाल रहे हैं और इस पर पूरी तरह से बीट हुए, उनको पता ही नहीं चला। बॉल काफी हाइट नहीं ली, बॉल ज्यादा बाउंस नहीं लिया और विकेट की ही रीच से जा रही थी। बाल बची। अच्छी बॉल यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की। 3 बॉल उन्होंने वाइड, थोड़ा सा मिडिल ऑफ स्टंप के पास रख के और ऑफ की तरफ स्विंग कराई, ऑफ स्विंग। और ये वाली बॉल बिल्कुल स्ट्रेट थी, नो स्विंग, स्ट्रेट बॉल थी, बट थोड़ा सा चूकी। ये बिल्कुल मिडल, ये मेरे ख्याल से हो सकता है एलबी हो सकते थे। मेरे को लगता है रोहित शर्मा को यहाँ पर डीआरएस ले लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मिडल ऑफ बॉल है और ये तो बनता है डीआरएस के पास। और हाइट भी मुझे नहीं लग रहा है, और ये डीआरएस ले लिया रोहित शर्मा। देखना होगा कि यहाँ पर शार्दुल ठाकुर इसीलिए माने जाते हैं, वो पहले थोड़ा बाहर कराते रहते हैं और सडनली उनकी बॉल एकदम बिल्कुल विकेट की सीध में आती है। अब यहाँ पर अगर विकेट गिरता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखना होगा डीआरएस में क्या होता है। आप लोग सभी लोग हमारे से जुड़े रहिए। विराज टर्बो कहते हैं किंग कोहली को ही देखना चाहेंगे। सही बात है, किंग कोहली को सब देखना चाहते हैं, और किंग कोहली की बल्ले से अगर बल्लेबाजी हो तो मतलब कौन चाहेगा कि उनको ना देखें। ये अच्छी बोलते और मेरे को लग रहा है कि लेग स्टिक पर सकती है, देखना होगा। और कुछ हमारे दर्शक हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कुछ लोग। उमेश कह रहे हैं उमेश को विकेट लेनी चाहिए। उमेश अभी रिक्की है, वो कह रहे हैं कि उमेश जो है वार्नर की विकेट ले सकते हैं आसानी से। और ये अंपायर्स को ला गई, ओहो बाल बचे। अगर अंपायर ने यहाँ पर आउट दे दिया होता तो लबूशने का आउट निश्चित था, और अंपायर ने नोट आउट दिया था। जस्ट ये अंपायर्स को ला गई है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा फायदा रहा ऑस्ट्रेलियंस के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मैच में बहुत कुछ होना बाकी है, 5 दिन है, आज का दिन भी है। अभी जस्ट 16वां ओवर का लास्ट बॉल है, उसके अलावा मेरे ख्याल से 74 ओवर्स और होने हैं। अच्छी लैंड बॉल थी, दोबारा से लंबी बॉल डाली और सिंपली उसको डिफेंस किया लॉन्ग ऑन की तरफ, और कोई रन नहीं, क्योंकि मिड ऑन पर ही फील्डर खड़ा है। अभी तक फील्ड खुली नहीं है, ना ही खोलना चाहते हैं। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, कृपया वोट्स कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा बॉलर चाहिए, कौन से बॉलर्स पे आपको उम्मीदें हैं, और कौन इम्पैक्टफुल बॉलर रहेगा और बैट्समैन रहेगा इस पूरी ही सीरीज में। जो भी एक मैच की सीरीज, एक टेस्ट मैच की, या कह सकते हैं WTC फाइनल्स की जो मैच है ये 5 दिन के, उसमें किस बल्लेबाज और किस बॉलर को आप चाहते हैं कि वो जबरदस्त प्रदर्शन कर सकता है। अपने वोट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं, और हम आपके कमेंट्स और आपका नाम अपने बाकी सभी दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स, आपके वोट्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि मैच
अकेले देखना में इतना मजा नहीं आता, जो सब एक साथ मिलके मैच देखें तो उसका एक अलग ही मजा होता है। भले ही हम अलग अलग हैं, मगर एक साथ जुड़कर अगर हम सब इंडियंस इंडिया की तरफ से वोट्स करें या इंडिया की तरफ हिपी हुर्रे करें तो आई थिंक एक मैच का आनंद जो है वो अलग ही हो जाता है। प्रेम है वो कह रहे हैं शार्दुल ठाकुर विल फायर। शार्दुल ठाकुर को बिल्कुल एकदम फायरी बॉलिंग करा रहे हैं, सही कह रहे हैं प्रेम, क्योंकि लास्ट मैच में बिल्कुल लास्ट ओवर में बिल्कुल बचे हैं, बाल बचे हैं लबूश ने, और प्रेम ने कहा है कि मैं शार्दुल ठाकुर को से बॉलिंग और विराट कोहली से बैटिंग की उम्मीद करता हूँ इस पूरे सीरीज में, मैच में बिल्कुल। और इन दोनों पर मैं चाहूंगा कि पूरी इंडियन टीम पर ही सबकी निगाहें रहेंगी कि सबसे ही हम चाहेंगे कि सब प्रदर्शन बहुत ही शानदार करें, मगर आपकी चॉइस है, आपने कहा है शार्दुल ठाकुर और विराट कोहली, बिल्कुल मैं चाहूंगा ये दोनों बिल्कुल खतरनाक अपनी प्रदर्शन करें और टीम को जिताएं। 55 पर 8 विकेट है ऑस्ट्रेलिया की, 17 ओवर रनिंग है। उमेश यादव अपनी तीसरी बॉल लेकर, उमेश यादव काफी अच्छे बॉलर हैं और हमेशा इंडिया को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते आए हैं हमेशा, और हमेशा जीत की एक दस्तर में ही खेलते हैं। ये अच्छी बॉल, टेस्ट बॉल एकदम जैसे हार्ड लाइन बॉल एकदम बाहर की तरफ जाती हुई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडविन, आप बताएं आप क्या, वैसे तो हमारे साथ दर्शक सभी जानते हैं और सभी कह रहे हैं कि इंडिया इंडिया, क्योंकि इंडिया के फैन यही नहीं, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हैं, और कुछ ने तो अपनी वो भी जाहिर कर दी है वोट्स की, वो शार्दुल ठाकुर और विराट कोहली के साथ हैं इस पूरी मैच में। आप क्या कहते हैं? वेल, वो गलत तो बिल्कुल नहीं है। ओह क्या डिलीवरी थी, बढ़िया बॉल, मगर वेल एज फार एज विराट कोहली और शार्दुल ठाकुर की बात करी जाए, एक तो एस है हमारे एस बैट्समैन, और दूसरे तो भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जब क्लिक कर जाए सर ठाकुर कोई को पता नहीं, तो हाँ, और ऑल यू नो ये दोनों शायद हमारे मैच विनर्स दे जाए। अब मैच की स्थिति देखी तो रॉबिन ऐसा लगता है कि उमेश यादव इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अडैप्ट टू द कंडीशंस, क्योंकि उन्होंने अपने ये उनका तीसरा ओवर है और उन्होंने ऑलरेडी 22 रन दे दिए हैं। आई थिंक डेविड वार्नर को काफ़ी पसंद आया ये फैक्ट कि उमेश यादव बॉलिंग पे आए, क्योंकि उन्होंने 46 बॉल्स में ऑलरेडी 38 रन स्कोर कर लिया है, एंड ऑस्ट्रेलिया इज राइट नाउ एट 55 for 1. Manus Labuschagne is still taking his time to get acclimatized to the pitch, to the situation. He has scored 16 of 45. We are at the end of the 17th over right now. The last ball of the 17th over is being bowled by Umesh Yadav, and it has been let go. मुझे लग रहा ये आपके पहले रॉबिन जब सरेश आके बैठे थे तभी हमें लग रहा था कि मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को जब रेस्ट दिया जाएगा तब इंडिया की बॉलिंग कैसी रहेगी, एंड इट सीम्स दैट ऑस्ट्रेलिया को भी लगा है कि इंडियन बॉलिंग में वीक लिंक अभी के लिए तो उमेश यादव ही है, और जिस तरह उनके 3 ओवर में 22 रन पिट चुके हैं, लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया उन्हें ही टारगेट करने जा रही है। जी हाँ, यही खासियत है आई थिंक उमेश यादव की। अभी तक तो खैर उन्होंने काफी इकोनॉमिकली नहीं रहे हैं इंडिया के लिए, मगर अभी देखना होगा क्योंकि वार्नर उनको बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। बैक पे जाके उन्होंने 3 शॉट खेले और बहुत ही जो तीसरा चौका मारा था उनकी बॉल पर उसी ओवर में, तो उसको उन्होंने कट पुल करा, उसको बेसिकली एकदम पुल शॉट खेला, और जो कि मतलब एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है उस हिसाब से वो बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि काफी टाइम लेता है बैट्समैन उस शॉट को खेलने के लिए, और जिस तरीके से वो फ्लॉलेस खेल रहे हैं वार्नर, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं इंडियन बॉलर्स को और इंडियन टीम को। तो यहाँ पर ये साझेदारी को तोड़ना मतलब बहुत ही ज़रूरी है और इंडियंस के लिए और इंडियन टीम के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रेक ये शार्दुल ठाकुर आए हैं फिर दोबारा से, और शार्दुल ठाकुर की यही बात कह सकता हूँ क्योंकि वो जो डिलीवरी करते हैं ना 5 या 6 डिलीवरी या 6 डिलीवरी करेंगे, तो उसमें से कोई 2 डिलीवरी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती है बैट्समैन के लिए। वो 4 बॉलें एक ही दिशा में फेंकते हैं, ऑफ स्टिक से थोड़ा सा बाहर जाती है आउट स्विंग,
सडनली वो एक बॉल आती है जो मिडल ऑफ विकेट की तरफ जाती है, जो कि लास्ट में भी हुआ, वो जस्ट अंपायर का डिसीजन था तो अंपायर कॉल हो गई। अदरवाइज अगर अंपायर ने एक उंगली अगर खड़ी कर दी होती तो शायद वहां पर विकेट मिलता शार्दुल ठाकुर को। ओके, कमेंट्स की बात करी जाए रॉबिन, इट सीम्स ऑस्ट्रेलियन फैंस भी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वी हैव पीपल हु आर singing praises for Stephen Smith, and we have Ricky who is talking about how Mohammad Siraj has shown consistency and how Shardul Thakur has started well, while Umesh Yadav, Ricky, Umesh Yadav is not finding his line or his Warner as of now. Too much room to a left-hander, and he's absolutely right. मुझे लग रहा है कि उनका जो पिछला ओवर जो उमेश यादव का, he was much more in control of what he wanted to do, and that was being said, Shardul Thakur has conceded his first boundary of Manus Rabushan, a very slick shot offside for 4 runs. जहाँ बिल्कुल पॉइंट दिशा पर मारा है कि काफी बार बॉल थी और ऐसी लूज वो बैट्समैन ढूंढते रहते हैं, कहीं पर एक बॉल ऐसी आए, बिल्कुल बहुत टेक्निक के साथ सिर्फ उसको दिशा दिखाई बॉल को और आराम से वो बाउंड्री में वहाँ पर लबूशने को। यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए एक हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने अभी अपने कमेंट्स में लिखा है कि उमेश यादव लाइन और लेंथ, ओ ये आउट है आई थिंक, क्रीज के बहुत बाहर आ गए, बट मिडल ऑफ क्रीज जैसे अभी पिछले मैच में भी हम T20 देख रहे थे तो उसमें भी रोहित शर्मा जो है काफी क्रीज से बाहर थे, मगर डीआरएस ले लिया गया है, उसमें उनको आउट करार दिया गया है हमारे साथ। and it seems this is going upstairs. Shardul Thakur to Manus Rabushan is a great response to that 4 that he had conceded in the previous delivery, and it seems that there could be some trouble for Manus Rabushan. जैसा मैं बात कर रहा था कि शार्दुल का यही है कि 3 बॉलें बाहर और एक अंदर सीधा, तो बिल्कुल मिडल ऑफ लग रही है ऐसा। बैट अगर नहीं लगा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में। ये इश्यू हाइट का हो जाए कि मानुस राबुशान बहुत ही लंबे कद के खिलाड़ी है, एंड ये बॉल लगी है उनके पैड के ऊपर, नी पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है, अब देखना होगा कि कितनी हाइट ली है। एंड ये क्रीज के भी काफी बाहर थे रॉबिन, सो मुझे लग रहा है कि ये माइट बी और मिस भी हो सकती है। मिस है, या इट्स अ मिस एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइट फैक्टर इन हाइट। वो लगा शायद कैप्टन और पूरी टीम को कि ये माइट भी बाउंस नहीं लिया बॉल ने, क्योंकि वो जिस तरीके से बैट को खेला उन्होंने तो बोलकर खेला, उनको लगा शायद बहुत नीची बॉल है, मगर वो बहुत अच्छी हाइट ली बॉल ने और वहीं पर चूक हुई। एक और रिव्यू गवाया आई थिंक इंडिया ने। वो तो अब क्या कहें रॉबिन, ये तो इंडिया की एक खासियत रही है इन क्रंच गेम्स टू लूज आउट ऑन रिव्यूज, एंड हम देख रहे हैं कि काफी बाहर खेल रहे हैं क्रिस से लबूशन ने, जिस कारण मेरे को लगता नहीं है कि एलबीडब्ल्यू के कोई चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर कीपर और जो भी टीम है जो देख रही है या जो भी उसको कॉल देते हैं, क्योंकि बॉलर और कीपर ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो कैप्टन है वो तो साइड में ही होते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा डिसीजन सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर जल्दी से रिव्यूज गवा दिए तो मेरे ख्याल से लगता है कोई अच्छी विकेट आप रिव्यू के कारण ना गवा दे, तो यहाँ पर थोड़ा संभल के रिव्यूज लेने की जरूरत है, क्योंकि लबूशन ने काफी आगे क्रिस से 1-2 कदम आगे ही खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि शार्दुल ठाकुर कहीं बॉल मूव कर रहे हैं। बॉलिंग तो काफी अच्छी चल रही है शार्दुल ठाकुर की। इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग दैट ही हैज मैनेज्ड टू कम इनटू द टीम आफ्टर सच अ लॉन्ग स्पेल ऑफ सिटिंग आउट, ही इज एबल टू फाइंड हिज फुटिंग हियर। आई मीन पिछले इंग्लैंड सीरीज में ही इन्होंने अपने सबसे ज्यादा नाम कमाया था, इन्होंने काफी सारे विकेट उठाए थे, इन्होंने भी स्कोर करे, सो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ की प्लेयर फॉर इंडिया। मगर अगर पूरे बॉलिंग लाइनअप की बात करी जाए, do you think that ये जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप है, that is led by मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव एंड ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा, क्या आपको लग रहा है कि इस पिच ये बहुत इफेक्टिव बॉलिंग लाइनअप है? जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि पिच है ना, जैसा हम सुन रहे थे और बताया जा रहा था कि पिच थोड़ा सा पेसर्स के लिए ही बनाई गई है,
जैसा हम देख भी रहे हैं इंडियन बॉलर्स काफी अटैकिंग बॉल करा रहे हैं। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ओपनर्स जितने भी मतलब उसके ओपनर्स को बिल्कुल बॉल टच ही नहीं करने दी तरीके की बॉलिंग हो रही थी। मिडल ऑफ बॉल से सीधी बॉल आउट स्विंग की जा रही थी। यहाँ पर थोड़ा जैसी चेंज हुई वहाँ पर मतलब मैं कह सकता हूँ कहीं पर भी चीजें हो सकती हैं। उमेश यादव को हम वीक आ रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि वार्नर को तरीके से कोई एक बॉल होती है जब बैट्समैन को वो बिल्कुल पवेलियन की तरफ भेजती है, तो ये कहना थोड़ा जल्दी होगा कि उमेश यादव की लाइन और लाइन ढूंढ रहे हैं, मगर कभी वो लाइन और लाइन कभी भी वापस आ सकती है। और नहीं बैट बॉलिंग लाइन ऑफ स्ट्रेंथ की तो मैं कह सकता हूँ कि अभी आपके पास इंडिया के पास थोड़े से विकल्प भी कम ही चल रहे हैं, मगर जैसी भी लाइनअप बनाया उन्होंने, क्योंकि आपके जसप्रीत बुमराह काफी टाइम से इंडियन टीम में नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है इस समय इंडिया के लिए। और आपके बैटिंग लाइनअप में भी 2-4 प्लेयर हैं हमारे जो इस टीम का पार्ट हो सकते थे, मगर इंजरीज के कारण वो सब अभी बाहर हैं। तो जो है वो है, इसमें अब कुछ कह नहीं सकते, मगर हाँ जो स्ट्रेंथ है ये पिक किए गए हैं और पूरी इंडियन टीम्स में जो पिकिंग 11 है वो बेस्ट 11 है। तो अभी ये कहना बिल्कुल वो होगा कि उमेश यादव की जगह किसी और को रख लेते या शार्दुल ठाकुर की जगह किसी और का, जो हैं वो बेस्ट करें तो मेरे ख्याल से वही ज्यादा बेटर रहेगा और वो अच्छा परफॉर्म करें, इंडिया को कप जिताएं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप रॉबिन। बट मुझे लग रहा है रॉबिन कि अभी जिस तरह जो वेदर चेंजेस चल रहे हैं ग्राउंड पे, क्योंकि जब मैच शुरू हुआ तो कंडीशंस काफी ओवरकास्ट था, देयर वाज अ स्लाइट ब्रीज इफ वी गो बाय द पिच रिपोर्ट, मगर अभी लग रहा है कि वो जब से धूप बाहर निकली है तब से वो एक तो वो सीम और स्विंग काफी कम हो गया है, पिच में भी काफी फर्क आया क्योंकि जो बाउंस है उसमें बहुत वेरिएशंस आ रहे हैं। देयर आर दोस ऑड डिलीवरीज जो एकदम पिच से एक्सप्लोड होके बैट्समैन के हाथ में आ रही है, और एक ऐसी डिलीवरी है जो अभी उमेश यादव ने डेविड वार्नर की तरफ फेंकी है जहां पे बॉल ज्यादा बाउंस नहीं कर पाई है, इवन दो इट हैज बीन अ गुड लेंथ डिलीवरी, द बॉल जस्ट मैनेज टू स्टे राइट ऑन टॉप ऑफ द स्टंप्स। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पिच अब अपना खेल रही है जैसे टीम खेल रही है, और बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि शायद ये पिच को थोड़ा सा जो भी मॉइस्चर था बारिश के कारण या जैसा भी था वहाँ वेदर के कारण, वो शायद थोड़ा सा सूखता हुआ है, जिसके कारण पिच थोड़ा सा तो चेंजेस लाएगी। पिछली ही बॉल उमेश यादव ने बाउंस डाली, सेम टप्पे पे दोबारा बॉल डाली, मगर वो बॉल सेम बाउंस पे गई, जो अच्छी बाउंस होनी चाहिए सेम बाउंस पे आई। अब देखना होगा कि पिच और कितने रंग दिखाती है। यहाँ पर पिच बहुत मायने रखती है, क्योंकि 5 दिन है, 5 दिन में अब पिच का ही सब खेल है, और अगर वेदर भी साथ दे तो देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने कई बड़े मैचेस देखे हैं जहाँ पर बीच में मिडल ऑफ मैचेस कुछ बारिश हुई है और उसके कारण पूरा जो मैच है उसका जो अंत है वो चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर भी शायद कुछ ऐसा देखने को मिले, मगर अभी एज ऑफ नाउ मतलब बॉलिंग अभी ये अगर ऐसा कुछ हो रहा है ऊपर नीचे तो इंडियन बॉलर्स के लिए ही अच्छी बात है। एग्जैक्टली। और भी कमेंट्स आ रहे हैं हमारे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे। वी हैव वरुण चौधरी, जो नाम से तो इंडियन लग रहे हैं मगर ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टेस्ट वर्ल्ड कप विनर्स 2023, दैट इज हिज कमेंट। मनदीप लांबा हमसे पूछ रहे हैं कि वेयर कैन वी वॉच दिस मैच। हम तो आपसे बोलेंगे मनदीप कि हमारे साथ ही लगे रहिए, हम आपको कमेंट्री भी दे रहे हैं, मैच अपडेट्स भी दे रहे हैं, लाइव स्कोर भी दे रहे हैं as early as anyone could get it। and वरुण चौधरी अभी भी बोले जा रहे हैं कि इस बार ये लोग हारेंगे। आई एम गेसिंग ही स्टिल कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया। नॉट अ गुड लुक फॉर यू वरुण among all the Indian supporters who are praising Shardul Thakur, Mohammad Siraj and even Virat Kohli, though he is yet to bat। मगर ये काफी इंटरेस्टिंग है द बिल्ड टू दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल रॉबिन, क्योंकि दोनों टीम का हम देखेंगे कि वो उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया हुआ है। इट क्लियरली लुक्ड लाइक द इंडियन प्लेयर्स वर मोर फोकस्ड ऑन IPL, the Australian players are more interested and looking forward to the Ashes जो इस फाइनल के एक हफ्ते के बाद खेला जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऑल ऑफ सडन विद इन 1 वीक आप
मैच में मतलब कह सकते हैं वही ग्राउंड हैं, वैसे ही मैचेस हैं, मगर एकदम 20 ओवर का मैच सीधा सा बन गया है 5 दिन का मैच। तो ये बिल्कुल चेंजेस हैं और बहुत बड़े चेंजेस हैं किसी भी प्लेयर के लिए। अगर काफ़ी प्लेयर जो खेल रहे हैं वो फॉर्म में हैं, चाहे वो डेविड वार्नर की बात करें आप और कैमरॉन ग्रीन की बात करें, तो काफ़ी और इंडियन में भी काफ़ी बल्लेबाज हैं और बॉलर्स हैं जिन्होंने अपना करिश्मा T20 में दिखाया है। और मैं आशा करता हूं कि वो इस मैच में भी अपना पूरा जो जलवा है वो दिखाएंगे। और सिराज ने तो खैर मैं कह सकता हूं अपने T20 में बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कराई थी, तो आज भी वो वैसी ही लय में है। मतलब जैसी उन्होंने शुरुआत की है बॉलिंग की, तो वो बिल्कुल उसी मोड में है कि मेरे को चाहे आप 20 ओवर के मैच में खिलाएं या 200 ओवर के मैच खिलाएं, मैं वैसी ही बॉलिंग कराऊंगा कि बैट्समैन को नहीं पता चलेगा कि किधर बॉल आएगी। और विराट भी अपने पूरे फॉर्म में है, शुभमान गिल है, काफी देखने इस पूरे मैच में जो 5 दिन का है इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी तो जस्ट बारी शुरू हुई है, अंत तक तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा इसमें। Exactly. और जो नाम आपने लिया अभी रॉबिन, शुभमन गिल, all eyes are on him. It's not just people in India, but his exploits over the last few months, especially the way the 2023 that he has had so far, it has been quite amazing because the way Shubman Gill has set himself up as India's next big batting talent, it is something that is going to weigh over him for a very long time, and he is going to be judged on the basis of that. उन्होंने white ball cricket में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है शुभमन गिल ने रॉबिन, बट अल्टीमेट टेस्ट तो टेस्ट मैच में ही होता है। जी हाँ, असली क्रिकेट तो टेस्ट को ही बोला जाता है और T20 को कहते हैं कि जल्दी जल्दी गेम है, तो टेस्ट में ही अग्नि परीक्षा कह सकते हैं ये किसी बल्लेबाज के लिए। तो मेरे ख्याल से यही शुभमान गिल की अग्नि परीक्षा रहेगी इस मैच में, इस WTC में, कि वो कैसा खेलते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोनों ही गेम अपने आप से दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं। और जिस लय में वो हैं तो ये कहना भी बनता है कि मतलब बॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बड़े ही कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो जिस तरीके की लय में है तो वो बड़ा टफ रहेगा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए भी। शार्दुल ठाकुर अपनी 5वीं बॉल लेकर 20 ओवर की और सीधा लबूशने ने डिफेंस किया उसको। एंड स्पीकर भरत अब विकेट के पास आके खड़े हैं। आई थिंक एट सम पॉइंट टीम इंडिया को भी लगा है कि वो शार्दुल ठाकुर के स्विंग को नेगेट करने के लिए क्रीज के बाहर खड़े थे, एंड Labuschagne was negotiating Shardul Thakur quite well by standing outside his crease, and that has forced Team India to change their tactics. Srikhar Bharat has now come up to the stumps. He's wearing his helmet, and that will also force Shardul Thakur to considerably drop his pace unless and until it's a full-length delivery aimed right at the stumps, which is going to be a very rare thing to see in Test cricket. We are getting more comments on our live stream, and we have Real Best Video giving us a comment that the match will draw and that Team India has missed a trick by dropping Ashwin and by picking Umesh Yadav instead. And he has been very upfront with his comment. He is saying, how can you drop Ashwin? It's horrible. Sachit Dalwadi seems to be agreeing with him. He's saying that Ashwin will be missed in this inning. It'll be very interesting to see how this match will progress, because that is what is going to determine whether India actually missed a trick by not playing our Ashwin, who is known to be one of the best test bowlers as far as spin is concerned. Instead of him, we have Ravindra Jadeja, who himself is not that bad, but given the conditions, maybe Team India must have thought that it is better that they go with somebody who is much more capable with the bat than with the ball. Because Ravindra Jadeja has had some very successful stints in England with the bat. I still remember that match which India had won against England was the opening match of the 5 Test series,
at Lord's. India captained by MS Dhoni back then, and Ravindra Jadeja had managed to score a match-winning 70, which helped India win that opening game. But India ended up losing that Test series 3-1 to an Alistair Cook side that was very, very formidable. But since then, India has been a force to be reckoned with. They have been doing exceptionally well in away conditions. They beat Australia. They drew with England in that match, in that series where the decider was played much later. But by then, England had made its mark with their baseball tactics, which could be up on display after this World Test Championship final when they played the Ashes against Australia. Umesh Yadav is bowling his fifth over of his spell, and it seems that he has managed to make some sort of a comeback over the last 3 overs, because the first 2 overs he was brutally picked apart by David Warner, where he went for over 20 runs. But now it seems that he has managed to, I think he has understood the conditions, and he has tweaked his bowling line and length quite well. He's bowling at about in the mid 130s, and he has been quite consistent with his line and length, which has troubled both Marnus Labuschagne and David Warner. Though he has been giving a few runs over the last couple of overs, but it is nothing like his opening first 2, where he conceded more than a few of David Warner, who is currently batting at 39 of 56 deliveries, and Marnus Labuschagne, who is at 22 of 58 deliveries. Both these players have stuck have been for quite some time. They have a partnership of over 60 runs, run rate, a very healthy run rate of 3 over for now. So it is going to be quite a task for Team India to figure out a way as to how they are going to counter this Australian batting effort, which seems to be taking away, and Umesh Yadav bowling the wrong line there. Marnus Labuschagne managing to flick it to point behind him for 4 runs. With that, Australia are at 67 for 1. It'll be very interesting to see how Team India continues to tweak its strategy here, because they will have to do something about it as soon as possible, because if this partnership builds into something bigger than what it already is right now, then India are in a host of trouble on a ground and in conditions which is obviously better suited for the Australians. We're getting more comments on our YouTube live stream, and one of them is from Yash Lakhani, who says, "We miss Rishabh Pant." Absolutely, same here. I do share that sentiment with you, Yash. I also miss Rishabh Pant a lot, because he was beginning to look like a force as far as red cricket is concerned. That near fatal accident that he had has kept him off the pitch for a very long time. Robin, टीम इंडिया को ऋषभ पंत का वो जो एब्सेंस जो है वो डेफिनेटली वो एक फैक्टर होगा जो उनको कंसिडर करना पड़ रहा है. भले ही उनको एक अच्छा विकेट कीपर मिला है श्रीकर भरत के फॉर्म में, मगर जो बैटिंग prowess Rishabh लेके आते थे, and that 149 which he had scored against England just in the beginning of this year is very much that is going to find it very difficult to fill that slot. जी हाँ बिल्कुल, मैं के श्रीकर भारत से यही कह रहा कि वो अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं मगर ऋषभ पंत की कहीं ना कहीं कमी खल रही है, क्योंकि ऋषभ पंत काफी एक्सपीरियंस उनको आ चुका था खेलते हुए,
और इंडिया ने भी मतलब इंडियन टीम काफी बैक कर चुकी थी और वो अब पूरे लय में भी थे, जैसी इंडियन टीम को चाहिए होती है कीपर से जितना भी साथ चाहिए होता है वो पूरा मतलब मैं कहूँगा कि वो दे रहे थे। मगर चलो जो हो गया वो हो गया, क्योंकि अब हम यही चाहेंगे जल्द से जल्द वो फिट हों और वापसी करें इंडियन टीम में। और बिल्कुल यहाँ पर मिस कर रहे हैं हम ऋषभ पंत को, और अगर वो होते तो एक और पास एक अच्छा बैट्समैन आपके पास होता, और जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो अकेले लास्ट मैच उन्होंने जो जिस तरह जिताया था, बिल्कुल अकेले खड़े होके, और वो बिल्कुल और 5 चौके लगातार लगाए थे उन्होंने उस दिन एग्जैक्टली मैच मतलब बिल्कुल जीतने के बाद उन्होंने बिल्कुल ये भी दिखाया दूसरी को ऐसे ना समझ कि मैं मतलब गलती से चल गया है जैसे भी है, तो उन्होंने पूरा ये भी शो करा कि आई प्ले ऑल अराउंड द गेम और ऑल अराउंड द ग्राउंड, सारी तरफ शॉट मारे उन्होंने और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वो मैच को फिनिश किया था। और इंडिया को बिल्कुल एक वो दिखाया था कि मैं एज एन कीपर और एज अ बैट्समैन मैं आपके बिल्कुल खड़ा हूँ, मैं किसी दूसरे की जीत को छीनने वाला प्लेयर हूँ, और वो जीत के भी दिखाया था उन्होंने वहां पर। एग्जैक्टली क्योंकि ऋषभ पंत के जाने के बाद टीम इंडिया की जो बैटिंग है उसमें काफी एक ड्रॉप तो नजर आया ही है। ही इज गॉन Oh my God, Shardul Thakur has struck. He has caught the danger man, David Warner. It was a crazy delivery. It was going off the leg stump, and David Warner tried to pull it, only to lob it into wicketkeeper Shrikar Bharat's hands. बहुत ही अच्छी कैच, शानदार कैच की है उन्होंने श्रीकर भरत ने भी लेग साइड पर जाकर, क्योंकि काफी वाइड बॉल थी, उसको खेलने का प्रयास किया मगर वो ग्लव्स पे लगी और सीधा वो श्रीकर भरत ने भी काफी जबरदस्त कैच लिया है वहां पर ग्राउंड पे जाती हुई बॉल को। और यहाँ पर शार्दुल ठाकुर, जैसा मैं कह रहा था कि वो इस तरह के बॉलर हैं कि वो 4 बॉलें बैट्समैन को देते हैं कि लीजिए मार लीजिए, मगर एक बॉल कहीं ना कहीं वो 6 डिलीवरी में एक डिलीवरी जरूर डालते हैं, जहाँ किसी बल्लेबाज को ये कह सकते हैं कि आप नहीं मार सकते। Exactly, and David Warner is out 43 of 60 with a strike rate of 71. He was the most aggressive player on the pitch, and इसके एक बॉल पहले रॉबिन शार्दुल ठाकुर को उन्होंने बाउंड्री के लिए मारा था, और उसके बाद आई कांट से दैट दिस वाज अ कमबैक डिलीवरी, मगर एक लकी विकेट फॉर इंडिया, अ मच नीडेड ब्रेक थ्रू। जी जी बिल्कुल डेंजरस बैट्समैन अभी कह सकते हैं, क्योंकि वो ही हैं जो उमेश यादव को अच्छी तरीके से खेल रहे थे। अब शायद हो सकता है उमेश यादव भी एकदम अटैकिंग मोड में आ जाएं और अलग गेयर में चलें, मगर यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता शार्दुल ठाकुर ने दिलाई है। और यहाँ पर जितनी तारीफ कम ज्यादा की जाए, जितनी कम की जाए, जितनी ज्यादा की जाए, वो कम ही रहेगी मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर के लिए, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग वो अभी तक करा रहे थे, हर बैट्समैन को, जो भी दोनों बैट्समैन खेल रहे थे उनको फंसा रहे थे, कहीं ना कहीं वो 1-2 बॉल पे उनको फंसा रहे थे, वो 2 बार वो बचे भी, डीआरएस भी लिए, मगर कहीं ना कहीं बच जा रहे थे, मगर इस बार कोई चांस नहीं यहाँ पर वार्नर के लिए। Yes, so Sachit Dalwadi wants to know how exactly David Warner was out. Yes, David Warner was out of the bowling of Shardul Thakur. It was a ball that was bounced pretty well, and it was going down the leg side. David Warner tried to pull it, but instead of hitting the bat, it hit his gloves, and Shrikar Bharat, the wicketkeeper, managed to pocket that catch, and that has brought in one legendary Test batsman, Steven Smith, onto the crease. We are seeing that replay again. I'm sorry, Sachit, हम आपको दिखा नहीं सकते कि ये क्या हुआ था exactly, मगर ये एक बहुत ही freak delivery था शार्दुल ठाकुर की तरफ से, and Shrikar Bharat doing extremely well to dive and catch that ball, and this has given India that much needed breakthrough in a partnership that seemed to be very solid and was being constructed very well by Abu Shah, and David Warner is now back in the pavilion. जी हाँ बिल्कुल, और इस बॉल को मैं जिस पर वार्नर आउट हुए, तो ये बॉल थोड़ा लूज ही कही जाएगी, और वो लूज बॉल को मारने के चक्कर में यहाँ पर अपनी विकेट गंवाई है वार्नर ने। मिडल पे बॉल डली थी, मिडल और बाउंसी थी, थोड़ी सी हाइट थोड़ा चेस्ट के पास थी, मगर उसको शॉट मारने गए, वो पुल करना चाहते थे लेग साइड पर, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो ग्लव्स पे बॉल लगी, वो थोड़ा वहां पर रीड करने में थोड़ी सी मुश्किल हुई शायद उनको, और बॉल ने उतना बाउंस नहीं है जितना वो सोच रहे थे,
तो वो बॉल बैट को मिस करती है, सीधा ग्लव्स पे लगी और वहां पर श्रीकर भरत का जवाब नहीं है, जिस तरह से उन्होंने पीछे लेग साइड पर भागकर कैच पकड़ी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है अदनान हाशमी की तरफ से, रॉबिन, जो पूछ रहे हैं कि व्हाई डू दे हैव ओनली 71 रन्स इन 21 ओवर्स। मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही आईपीएल देख लिया है कि 20 जहां पे 20 ओवर में बड़े रेगुलरली 200 रन स्कोर किए जा रहे हैं, और अभी जब टेस्ट मैच आया है तो लेस देन 4 रन्स, लेस देन 3.5 रन्स के हिसाब से सिर्फ 71 रन्स स्कोर हुए हैं। Yes, Anku Kakkar, you are right. They are playing slow, but this is a test match and they're expected to be playing slow because they are being very cautious about the way they are facing the Indian bowlers who have been pretty good this morning. जी हाँ, बिल्कुल, पिच भी अपना खेल दिखा रही है और यहाँ पर मैं यही सोच रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इस समय जैसा खेलना चाह रही है वो यही चाह रही है कि आज पहले दिन जितने कम से कम विकेट गिरे और चाहे रन ज्यादा ना बने बोर्ड पर, बट कम से कम विकेट जाएं, ताकि नेक्स्ट डे मतलब थोड़ा सा उनके पास और दिन भी कम होंगे और उनके पास स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी तेज होगी। हो सकता है नेक्स्ट डे वो सोचे कि पिच थोड़ा उनकी तरफ रहे। आज पिच थोड़ा सा बॉलर्स की तरफ दिख रही है, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि आज जैसे जैसे अपना बोर्ड को थोड़ा थोड़ा सिंगल सिंगल लेके या जहां भी लूज बॉल मिलती है उसको मारकर अपना बोर्ड स्कोर बोर्ड चलाते रहें। अब देखना होगा स्टीव स्मिथ आए हैं, वो कैसे इस पारी को और आगे संभालते हैं, मगर यही ये दोनों मतलब मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया, और ये भी बॉल अच्छी थी, वो सोच रहे थे लेग साइड पर बाहर जा रही है, यही पिच अपना पूरा खेल दिखा रही है। यहाँ पर बॉल डाली थी, क्रॉस बॉल डाली थी, लेग साइड पर बाहर जानी चाहिए थी, मगर बॉल एकदम पड़का टप्पा और बिल्कुल मिडिल की तरफ आई है, वो बाउंसी थी बॉल। और स्टीव स्मिथ ने तो सोच लिया था ये तो वाइड है, मतलब लेग साइड पर है, क्योंकि टेस्ट मैच में इतनी जल्दी वाइड नहीं होती लेग साइड पर जानी, तो ये वो उन्होंने सोच लिया था कि विकेट से बाहर है, तो उन्होंने बिल्कुल सिंपली लेफ्ट करने की कोशिश करी, मगर वहां पर उनके शरीर पर बॉल लगी। यही हम समझाना चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स अगर जो जानते हैं उनको तो पता नहीं है, जो नहीं जानते कि टेस्ट मैच का थोड़ा सा खेल यही है कि वो जो भी फर्स्ट बैटिंग करता है तो उसकी यही इच्छा रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर बोर्ड पर लगाए, कम से कम 300 400 के अप्रोक्स मैच रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। वो 2 दिन में लगे 3 दिन में लगे, तो वो ये चाहेगी कि 2 दिन या 3 दिन हम खेले, उसके बाद दूसरी टीम को बैटिंग दें, और जितनी जल्दी और जितने कम रन पर दूसरी बैटिंग को आउट कर दें वो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि वो जल्दी से दोबारा से सेकंड इनिंग खेलें और फिर थोड़ा सा बड़ा स्कोर सा खड़ा कर दे जल्दी में, और फिर दोबारा से बैटिंग दे दूसरी टीम को, ताकि उनके पास सारे चांसेस रहते हैं पूरी गेम हाथ में रखने के। तो यही अभी जो जितनी भी अभी ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी रहेगी वो यही रहेगी कि कम से कम 2 दिन इनके बैट्समैन यहाँ पर खड़े रहें इस पिच पर। Exactly, you are absolutely right about that, Robin. But एक चीज जो मैंने अभी नोटिस किया है इस पिच पे, that is the uneven bounce. And day 1 पे अगर ऐसा एक बाउंस आ रहा, ऐसा बाउंस मिल रहा है प्लेयर्स को, तो ये काफी दिक्कत कर सकती है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि इमेजिन अगर डे 1 में बाउंस इतना अनइवन है, तो डे 3 डे 4 अगर ये डे 5 तक मैच गया तो उस टाइम पे बाउंस कैसा रहेगा? अब आपको लगता है कि this sort of erratic bounce, this sort of uneven bounce is going to help pacers more or will it assist the spinners better? अब ये देखने वाला तो मतलब देखने के बाद ही पता चलेगा, मगर मुझे जितना अब तक दिख रहा है कि स्पिनर भी यहाँ पर बहुत कमाल दिखा सकते हैं, क्योंकि स्पिनर जैसे हमारे जडेजा जी हैं, तो जडेजा ज्यादा स्पिन नहीं करते, वो स्ट्रेट बॉल डालते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बॉल अगर टर्न होती है तो वहां पर बैट्समैन को फंसा देते हैं। 2 टर्न और एक स्ट्रेट बॉल, और वहीं पर अगर उन्हें अच्छा उछाल मिल जाता है, स्पिनर को अगर उछाल मिल जाए पिच से, तो मतलब वो बहुत ही बैकिंग बॉलर बन जाते हैं। अब पेसर अगर इतना ड्रामेटाइज बॉल करा रहे हैं, कहीं बाउंस हो रही है कहीं नहीं हो रही है, बैट्समैन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, तो अगर यहाँ पर अगर स्पिनर ने जरा सा भी यहाँ अगर स्पिनर को मदद मिली ना पिच से, तो बहुत डेडली गेम हो जाएगा ये, क्योंकि स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छे हैं, इंडिया के पास भी अच्छे हैं, देखने वाली बात रहेगी। मगर अभी तक तो पेसरों का बोलबाला है, और हमारे पेसर उमेश यादव जैसा हम सोच रहे थे अभी इस ओवर में उन्होंने अच्छी बॉल डाली है, 1 ही रन दिया है, तो मेरे को लगता है कि वार्नर ही उनके लिए एक थोड़ा सा पहाड़ थे जिसको वो पार नहीं कर पा रहे थे, तो वो उनकी आसान करा उनको शार्दुल ठाकुर ने कि लो भैया तुम्हारे लिए मैं आसान कर देता हूँ और आप खेलिए आके। Exactly, because Umesh Yadav has finally managed to find his footing. 6 overs, 26 runs if I'm not mistaken. That's where Umesh Yadav was 27 runs, and he even managed to bowl a maiden. I think that was the over before this one.
So it's quite interesting the way Umesh Yadav has managed to find his footing. But all's fair in cricket because this has helped Australia amass 73 for the loss of 2 wickets at the end of 23 overs. Manus Labuschagne and Steve Smith, two players who can play very long innings, are still there. I think they have called the session for now. I think पहला सेशन खत्म हो चुका है रॉबिन. यहाँ पे इन्होंने आई थिंक ये लंच के लिए इन्होंने ब्रेक ले ही लिया है फाइनली. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन दैट हैज बीन कॉल्ड. एंड क्या लग रहा है आपको, कौन इस सेशन में कौन ऊपर रहे हैं? वाज इट ऑस्ट्रेलिया, वाज इट इंडिया? इंडिया ही रही है क्योंकि रन भी ज्यादा नहीं गए हैं एज ऑफ नाउ. 22 ओवर हो चुके हैं, 23 ओवर हो चुके हैं और 23 ओवर में 2 विकेट भी गवा चुकी है ऑस्ट्रेलिया और रन भी 73 ही आए हैं. तो मेरे को लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं लीड इन है इंडिया. अब क्योंकि आपके ओपनर्स जो ख्वाजा हैं काफी हमें लग रहा था डेंजरस होने वाले हैं, मगर उनको इतना रन नहीं बनाने का मौका मिला और बिल्कुल जीरो पे उन्होंने, सिराज ने उनको वापस चलता कर दिया कि जाओ भैया अपना बैठो. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडिया ने कहीं ना कहीं बाजी मारी है. और अगर इस सेशन के बाद जो भी कॉल्ड ऑफ सेशन हुआ है उसके बाद अगर जो दोबारा आते हैं तो थोड़ा सा पिच और चेंजेस लाएगी. अब वो देखना होगा कि क्या आप चेंजेस बॉलर्स के लिए होते हैं या बैट्समैन के लिए होते हैं, क्योंकि अब जितनी सूखती जाएगी और वो जो पैचेस होंगे, अगर पैचेस हुए या नमी हुई तो वहां पर किसको हेल्प मिलती है देखने वाली बात होगी. अब जितना भी काम है, अब गार्ड्स जो ग्राउंड्समैन है वो बोल गए हैं, वो देखते हैं क्या कर रहे होंगे पिच पर. बकर मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर जितना भी अभी तक रहा है इंडिया का थोड़ा सा लेट इन रहा है. यहाँ पर अभी हमारे एक साथी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि विराट कोहली को कवर ड्राइव अवॉइड करनी चाहिए. उमेश महारही. तो मैं उमेश जी कहूंगा कि विराट कोहली का कवर ड्राइव ही वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि आपने सुना होगा शायद कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी काफी बार बोला है कि अगर कवर ड्राइव देखना है तो विराट कोहली ही है. और विराट कोहली के कवर ड्राइव का मेरे ख्याल से अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है. ठीक है, स्ट्रगल करता है बैट्समैन कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो करता है और अपने बेस्ट शॉट्स पे ही करता है. तो यहाँ पर ये कहना बड़ा आसान नहीं है कि कवर ड्राइव को अवॉइड करते हैं, ये उनके स्ट्रेंथ है. Exactly, that's right, Robin, because Virat Kohli is also the kind of player who has found a lot of form over the last few months. IPL में ही हमने देख लिया था कि उन्होंने कैसे अपने आप को रीइन्वेंट किया है. But Test cricket is definitely going to be a very different sort of a ball game for him. मगर ये ऐसा फॉर्मेट बिल्कुल नहीं है जहाँ पे विराट कोहली ने अपना नाम लेजेंड्स के लेवल पे रजिस्टर ना किया हो. He has his own share of success both as a batsman as a captain. And I think कैप्टनसी छोड़ने के बाद विराट कोहली एक और काफी फ्री हो गए हैं. वो हमने आईपीएल में भी देखा कि जब फाफ डु प्लेसी ने आरसीबी का कैप्टनसी उठाया था तो यू कुड सी अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ विराट कोहली कमिंग फॉरवर्ड. एंड इवन इन इंटरनेशनल मैचेस, रॉबिन, the way Virat Kohli has paced his innings, whether it be test match, whether it be 50 overs or 20 over match, he has definitely been a player who has reinvented himself. And I think Sachin Dalwadi is agreeing with me, saying that he is a very steady batsman. And there are others who are दीपक जी कह रहे हैं, दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं बाबर आजम कवर ड्राइव इज क्वाइट गुड टू. जी हाँ, बिल्कुल मेरे ख्याल से हो सकता है. मतलब ये कवर ड्राइव और जितना भी है ये मतलब बहुत से लोग इंस्पायर करते हैं विराट कोहली से ही. और मेरे ख्याल से शायद ये बाबर आजम का ही, मेरे को लगता है शायद कि उन्हीं का ही था, क्योंकि किसी मैच में, बड़े मैच में वो किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने ही कहा था कि यार कवर ड्राइव तो मींस विराट कोहली. और चाहेंगे क्योंकि ये मैच और ये जो टेस्ट मैच है ये खेल थोड़ा सा अलग है और स्टडी वाला है. तो यहाँ पर अगर स्टडी करके खेलेंगे तो मेरे को लगता नहीं कि विराट कोहली को कवर ड्राइव खेलने में कोई प्रॉब्लम आने वाली है. अब देखते हैं किस तरीके से वो इस मैच को खेलेंगे और क्या स्कोर है. स्कोर भी सब कुछ डिपेंड करता है कि बैट्समैन कैसे आके खेलेगा. अब जितनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया आउट कर देते हैं तो मेरे ख्याल से फिर इंडिया चाहेगी कि जितनी ज्यादा देर तक वो पारी खेले और स्कोर बोर्ड में जितने रन बना दे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम होने वाली है. अब जैसा स्कोर बोर्ड में मैं यही चाहूंगा कि मैं एडमिन से भी पूछना चाहूंगा कि आप फर्स्ट इनिंग में, अब आप व्यूवर से भी चाहते हैं और मैं हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे कमेंटेटर एडमिन से भी पूछूंगा कि आप पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के कितने रन देख रहे हैं. मुझे लग रहा है कि जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है, दे वुड डेफिनेटली बी टारगेटिंग एनीवेयर अबव 350. पर जिस तरह इंडिया ने
बॉलिंग करी है अभी तक, मुझे लग रहा है कि इंडिया इनको लगभग 300 के अराउंड रिस्ट्रिक्ट कर देगी. बट दैट नाउ मोस्टली डिपेंड्स ऑन द वे Manus Labuschagne, Steve Smith, Travis Head and all that. क्योंकि even though they have a good all-rounder in Cameron Green, मगर वो अभी भी इस लेवल में उनको अच्छी तरह से टेस्ट नहीं किया गया. तो it will be very interesting to see how Australia will build from here. But अभी के लिए तो मैं बोलूँगा कि उनको जो फाउंडेशन दिया गया है वो काफी अच्छा उन्होंने सेट किया हुआ है. And Deepak is sort of agreeing with me. He's saying that Australia could make about 280 to 320 runs. We have another viewer, Katvi Surat, who is saying कि 290 290 runs banega. And I also feel this is going to be around the runs are going to be around that mark. But what will be interesting is the way the pitch will behave, because it has been quite surprising to see that the ball is bouncing so erratically on day one, in the first session of day one. तो आगे जाके मैच जब प्रोग्रेस होगा उसमें क्या होगा, कैसा होगा, क्या ओवरनाइट जब पिच को प्रेस करके रोल करके जब उसको फ्री छोड़ देंगे, विल इट रिपेयर इटसेल्फ, इज इट गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट पिच ऑन डे 2 और डे 3, उसको कुछ मालूम नहीं है अभी तक. बट द वे द पिच हैज बिहेव्ड टुडे, इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. इवन द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एंड द इंडियन बॉलर्स हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड बाय इट. एंड आई वुड से Australians have been very lucky in the way they didn't lose many wickets to such erratic bouncy pitch. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी हम देख रहे थे पूरा मैच, जितना फर्स्ट सेशन का देखा है तो उसमें काफी बॉल जैसी बॉलर चाह रहा है वैसी बॉलर वाला, मैं कहता हूं कि पिच ने उनकी मदद की है. क्योंकि कई बार बॉलर आउट स्विंग से सीधा इन स्विंग, और वो विकेट के बाद भी इन स्विंग हुई है काफी तक कई बार, और वो एक बल्लेबाज के हाथ में भी बॉल लगी है कि वो समझ ही नहीं पाए बाउंस कितना होगा, और वो बॉल उनके हैंड पे लगी है. तो पिच में कहीं ना कहीं पिच खेल रही है अपने तरीके से. यहाँ पर अब देखना होगा कि फर्स्ट सेशन के बाद जब आती है ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, तो विल इट बी ऑस्ट्रेलिया साइड और इंडियन साइड, देखते हैं. बाकी आप लोग सब हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स शेयर कीजिए हमारे साथ. और आप सब, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि वोट्स भी कर रहे हैं, और आप लगातार वोट्स में शामी जी को जिता रहे हैं. आपकी तरफ से शामी जी हमारे 44% पर हाईएस्ट मेरे ख्याल से बिडर हो गए हैं. अब देखना है कि आप लोग और वोट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए. जल्दी ही हम दोबारा से मिलते हैं इस सेशन.
Hello and welcome to News 18's continuing coverage of the WTC final. It's day one and the second session has begun with some cheer for India. Mohammad Shami managed to bowl out Manas Labuschagne, and that has brought in Travis Head to the crease, who has been very, very aggressive. He just struck a four of Mohammad Siraj's first ball of the over that he's currently bowling, and so far Travis Head has scored 19 of just 13 deliveries, while Steven Smith, who is there in the middle along with him, has scored 12 of 32. Australia right now 104 for 3 in the 30th over, which is currently being bowled by Mohammad Siraj, who is among the wicket takers today morning. Quite an interesting run of play here, because India, even though they managed to get Usman Khwaja out very early in the game, they found themselves in a hole as David Warner and Labuschagne managed to put up, I think, if I'm not mistaken, a partnership of almost 69 runs before David Warner was caught off the bowling of Shardul Thakur by Srikar Bharat. A bit of banter between Steven Smith and Mohammad Siraj there. Mohammad Siraj has been troubling batsmen a lot since morning. He has been the pick of the bowlers, probably the best bowling figures in the game so far. Steven Smith has been doing a pretty good job of negotiating the deliveries that are coming at him from Mohammad Siraj. Steven Smith has a terrific record in England, and it's going to be quite a task for the Indian bowlers, to get him out cheaply, because once he's set in, it's practically difficult to dislodge him. And that is what the Indian team are going through right now, because even with that awkward stance that Steven Smith takes at the crease, it seems that he is able to negotiate the deliveries that are being fired at him by Siraj and Shami. A lot of you guys have joined in on our poll and even on our comment section on our YouTube stream. We have well over 8,000 votes for a poll that we had put out a couple of hours ago. Our question to you was, who do you think will be the main bowler for Team India? It's 47% Mohammad Shami even now, even though he managed to pick up that wicket. But Mohammad Siraj, who has been the pick of the bowlers, is at 34%. Umesh Yadav is at 5%. And Ravindra Jadeja, who is yet to get the ball, is at 14%. Terrific stop there by, I think that was Ajinkya Rahane. Oh no, that was Shardul Thakur. Shardul Thakur stopping that drive by Travis Head. That was a sure shot 4, but a terrific effort of Mohammad Shami's delivery. A lot many people are commenting on our stream. We have a Pyare Mohan who is saying that Steven Smith's wicket is more important for India. He is absolutely right about that, even though it is Travis Head who is smacking around the Indian bowlers for runs, but it clearly does look like it's going to be a tough ask for the Indian bowlers to negotiate between deliveries and take care of these two who are in the middle right now. Travis Head recently completed 10,000 runs in his first-class career. That is the stat that was put up on our screens right now. And he seems to be in a fine touch. It's not No Shave November yet, but Travis Head there sporting a very thick mustache. And he has smacked Mohammad Shami for another 4 in this over. Back-to-back 4s for Travis Head, who is currently batting at
27 of just 15 deliveries. He has been the aggressor from the word go, and his presence there has clearly helped the Australians to mount a comeback. Their run rate has gone up. It was at about 3. It's currently at 3.6 after that second consecutive boundary by Travis Head off the bowling of Mohammad Shami. Mohammad Shami not doing too many things wrong, but clearly when you have an unconventional batsman coming in and smacking you around for runs, bowlers tend to change a few things about what they usually do. And I think that is what Mohammad Shami, that is the quandary that Mohammad Shami is finding himself to be in. There are many people who are questioning the exclusion of our Ashwin from this team as well. It's been a subject of debate about who were going to be India's wicketkeeper and who was going to be India's choice of spinner. We all knew that India will go in only with one spinner since this game is being held at the Oval in England, and Team India, it seems, has gone for Ravindra Jadeja because they must be looking for someone who has more batting prowess as compared to their bowling. Because even if R. Ashwin would have been selected, it would have purely been based on how many runs he can add to the scoreboard, along with the wickets that he would pick. And in that respect, I think Jadeja has managed to pip him for that spot in the World Test Championship final. India seems to be better positioned as far as this match is concerned, but at some point one will have to ask the question whether India has enough in their batting lineup to not just chase down whatever Australia is going to set up, but can they also manage to come up with that lead, which will be all the more important when it comes to the second innings, because the Australian side has shown its intent, even though India has managed to keep David Warner silent for most periods of his play, even though they have managed to pick up Manus Labuschagne. But these two players in the middle right now, they are going to be the key for Australia. They'll also be the key for India if they are looking to bowl out Australia for, say, less than 300 runs. It's a no ball that has been bowled by Shardul Thakur. Surprising. No ball has been bowled by Shardul Thakur. It was a good delivery, but it has been deemed no ball for overstepping. So Shardul will have to bowl this one again. A big no ball by today's standards, even though it was just a few inches. Oh! Was that a chance? Did Ajinkya Rahane just miss a chance to get Travis Head? Oh, is that a drop? Shardul Thakur bowling across the stumps. Travis Head not able to judge the bounce, and I think it'll be harsh to say it was a miss. It was a drop catch. Ajinkya Rahane falling short because this ball just exploded off the pitch, hit Travis Head, then it just ballooned up enough for Ajinkya Rahane to make his dive, but he was well short of pouching that catch. And he's gone. Is he gone? Oh, no. I'm sorry. I'm so sorry about that, guys. I'm sorry if I give you a scare there, but it was a terrific swinging delivery by Shardul Thakur to Travis Head. Travis Head not being able to read that at all. Wow. So much swing so late in the day, and it does seem that Shardul Thakur is
looking ominous, because just a ball before that, Travis Head found himself in quite a situation. Steven Smith almost appeared as if he had nicked that ball, but he was nowhere close to it. At least that's how it played out in the replay. So as it stands, Australia are at 115 for 3. Steven Smith and Travis Head are in the middle. Travis Head scoring at a strike rate of well above 100 runs, and he looks set to take on Indian bowlers who have been creating some trouble for the Australian batsmen since early morning today.
So that was the 34th over of the game coming to a conclusion. Shardul Thakur bowling a few good ones to Steve Smith, who has scored 13 of 51 deliveries. Australia at 117 for 3. But the story is now that of Travis Head, who has scored 30 of 22. He has been the aggressor in chief as far as Australia is concerned after they had lost Manus Labuschagne, who was bowled with that beautiful in-swinger of Mohammad Shami. Robin is joining me right now. Robin, आपको क्या लगता है, क्या इस मैच का रुख आपको हल्का से बदलता हुआ नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है कि ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को वो एडवांटेज छोड़ने नहीं दिया है? जी बिल्कुल एडमिन, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। और मैं जैसा देख रहा हूँ टीम जो हेड है ट्रेविस हेड काफी एग्रेसिव खेल रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब पिच आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो आपको थोड़ा सा अग्रेसिव खेलना पड़ता है, क्योंकि बॉल आपके बैट पे क्योंकि पिच आपको उस हिसाब से नहीं दे रही है, बॉल इस तरह से बॉल आनी चाहिए, तो बैट्समैन थोड़ा अग्रेसिव खेलना शुरू करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, जैसे ऋषभ पंत ने खेला था लास्ट टाइम, तो वो भी काफी अग्रेसिव हो गए थे जब बाकी बैट्समैन बहुत जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे, क्योंकि पिच उस हिसाब से बॉल नहीं जा रही थी। वैसा ही मेरे को लग रहा है, थोड़े से स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है ऑस्ट्रेलिया ने कि जो हेड है उनको बोला है कि थोड़ा सा अग्रेसिव ही खेलें, क्योंकि पिच अब थोड़ा सा रनों में इजाफा डालने की जरूरत है, क्योंकि स्मिथ काफी स्लो कह सकते हैं, जो भी कहें एक एंड संभाल रहे हैं और वो उनका खड़ा रहना बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। तो शायद हो सकता है उन्होंने भी थोड़ा सा हेड को बोला हो कि थोड़ा सा फ्रंट पे आके खेलें और थोड़ा अटैकिंग खेलें, क्योंकि
थोड़ा सा डे है उसका थोड़ा सा स्कोर में तब्दील किया जाए, तो मेरे ख्याल से वही स्ट्रेटेजी रही होगी हेड की, और वो लगातार शॉट्स मारने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि बॉल जब बॉल आप लेट खेलते हैं, यानी कि बैक करते हैं अपने बॉल खेलने के लिए, तो होता क्या है कि बॉल स्विंग हो रही है, बॉल बॉलर के हिसाब से भी स्विंग हो रही है, कई बार पिच अपने हिसाब से स्विंग कर रही है, तो पीछे जितना जाके खेलेंगे थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा अग्रेसिव होकर आगे की तरफ खेल रहे हैं और शॉट्स मार रहे हैं और उनको अगर हम स्टीवन स्मिथ की बात करें तो वो काफी स्लो खेल रहे हैं। 51 बॉल में सिर्फ 13 रन स्कोर किया है। 13 ऑफ जस्ट 51 बॉल्स, क्वाइट सरप्राइजिंग, काफी स्लो जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे अभी भी ऑस्ट्रेलिया वही स्ट्रैटेजी यूज कर रही है कि आज का दिन किसी तरह से निकाल लो और बाद में बाकी हम देख लेंगे? आप जो बैकफुट में खेलने की बात कर रहे हैं उसी का भी एनालिसिस हम स्क्रीन में देख रहे हैं, कैसे स्टीवन स्मिथ ने बड़े सही तरीके से अपने डिफेंस को एकदम चौकन्ना रखा है, एंड ही हैज मैनेज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम एनी पॉसिबल थ्रेट दैट द इंडियन बॉलर्स कैन पोज टू हिम। जी बिल्कुल, जैसा स्टीव स्मिथ काफी मतलब बॉलों को समझ रहे हैं, रीड कर रहे हैं कि किस तरह से बॉल आ रही है, और शायद वही उन्होंने हेड को भी सजेशन दिया होगा कि प्लीज इस बॉल को ऐसे खेलना है, इसको ऐसे खेलना है, क्योंकि वो बॉलें अच्छी रीड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो बैट्समैन आगे जा चुके हैं। एक कॉर्नर थे जो थोड़ा सा अग्रेसिव खेल रहे थे, तो अच्छी रीड कर रहे थे बॉल को, थोड़ा सा परेशान किया हुआ था उस समय इंडियन बॉलर को। बट अब यहाँ पर स्मिथ मुझे थोड़ा सा गेयर अप चेंज करने के मूड में लग रहे हैं, क्योंकि वो लगातार हेड को स्ट्राइक भी रोटेट करा रहे हैं, कि ऐसा भी नहीं है कि जो साइड होता है उसमें अगर कोई बैट्समैन दूसरी साइड पे होता है वो अटैकिंग खेल रहा है, तो उसको लगातार आपको स्ट्राइक देनी पड़ेगी, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादातर स्ट्राइक पे नहीं आया तो मेरे ख्याल से दिन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जितनी देर आप बॉल से दूर रहेंगे उतना ही आपको परेशानी होगी बल्लेबाजी करने में। एग्जैक्टली, एंड जिस तरह ये पिच अभी बदल रहा है, आई थिंक इट इज बिकमिंग अ लॉट मोर इजियर फॉर बैट्समैन टू बैट ऑन। भले ही थोड़ा स्विंग हो, मगर जो जैसे मोहम्मद शमी और सिराज जिस तरह विकेट टू विकेट बॉल कर रहे थे, वो डिलीवरीज आई डोंट थिंक अब ज्यादा नजर आ रही हैं। दे आर ट्राइंग टू स्विंग द बॉल अवे फ्रॉम द बैट्समैन, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द स्लिप फील्डर्स इनटू प्ले, बट अभी तक कुछ उनको सक्सेस नहीं मिल पाया इस मामले में। आपको क्या लग रहा है, क्या पिच अभी खेलने के लिए और बेहतर बन गया है, या अभी भी जो इनकंसिस्टेंसीज थे स्पेशली विद रिगार्ड्स टू बाउंस जो हमने पहले नोटिस किया था वो अभी भी है? बाउंस है, मगर अभी फिर भी बैट्समैन के पूरे जैसे वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उस तरह से बॉल आ रही है उनके बल्ले पे। जैसा स्मिथ है, बिल्कुल कोई बॉल ऐसा नहीं है कि वो ऐसी मिस कर जा रही है जैसा कि पहले हो रहा था कि थोड़ा बाउंस आ रही है, बाउंस नहीं है। अब वो बिल्कुल प्रेडिक्ट बॉल आ रही है और वो बिल्कुल मिडल ऑफ बैट पे लग रही है, चाहे वो डिफेंस में या शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मिडल ऑफ बैट आ रही है। तो मीन्स जब बैट्समैन के मिडल ऑफ बैट बॉल आने लग जाए तो मीन्स कि वो अच्छी रीड कर रहा है और पिच उसको समझ में आने लगी है कि किस तरह बॉल मूव हो रही है, और बॉलर का माइंड भी वो रीड कर रहे हैं। मेरे साथ एक बॉल जोड़े में जो कह रहे हैं सनी बॉल, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो मैं यही कहूँगा कि किसको सपोर्ट, आप बताएं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं ये अच्छा मैच रहे। WTC का फाइनल है, फाइनल की तरह खेलें दोनों ही टीमें और एक अच्छा मैच देखने को मिले हम सबको, और दोनों ही टीमें अपनी पूरी कोशिश करें कि अच्छा खेले, और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बट हम यही चाहेंगे कि इंडिया ही जीते। और हमारे साथ एक प्यारे मोहन जी हैं जो वो कह रहे हैं कि स्मिथ का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्यारे मोहन, क्योंकि अगर स्मिथ जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की अभी रीड के हड्डी बने हुए हैं, क्योंकि उनको अपने नहीं, अगर आपने नहीं रोका या उनको जल्दी आउट नहीं करा तो बहुत ही डेंजरस हो जाएंगे इंडियन के लिए, इंडियन बैट्समैन या इंडियन बॉलिंग के लिए, क्योंकि वो आसानी से विकेट नहीं देते हैं। क्योंकि जिस तरह से वो बैट को फ्लो कर रहे हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि वो किसी बॉलर को या किसी बॉलर की बॉल को नहीं समझ पा रहे हैं। प्यारे मोहन जी का एक और कमेंट आया रॉबिन, वो बोल रहे हैं कि भाई हेड तो T20 समझ के बैटिंग कर रहा है, पंत वाइब मिस मी अ लॉट फॉर इंडिया। बिल्कुल, सब यही आशा करते हैं कि जल्दी ही पिच पर लौटे हैं। पंत को सभी मिस कर रहे हैं, पूरा इंडिया मिस कर रहा है, क्योंकि उनका होना बहुत जरूरी था इस मैच में।
और हम विश करेंगे कि वो जल्दी ही वापस लौटें और ठीक ठाक वापस लौटें और बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाएं अपने फ्यूचर में। मगर हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, जो हमारे हेड हैं वो बिल्कुल टीम हेड जो है बिल्कुल ट्रेविस हेड, सॉरी टीम हेड कह दिया मैंने, ट्रेविस हेड बिल्कुल T20 गेम खेल रहे हैं और ऐसे ही बल्लेबाज हैं उनके पास अभी आगे आने वाले जो बिल्कुल T20 गेम खेलेंगे। क्योंकि कैमरन ग्रीन ने अपने हाल ही इंटरव्यू में ये भी बोला था कि मैं जैसा खेलता हूँ मेरी गेम वैसी ही रहेगी, मेरे लिए ऐसा नहीं होगा कि मेरी गेम जो है नेचर चेंज हो जाएगी कि टेस्ट है तो टेस्ट की तरह खेलूंगा, क्योंकि मेरी गेम नेचर जो है वो अटैकिंग ही है, तो वो अटैकिंग ही खेलेंगे। तो कैमरन ग्रीन भी आके अटैकिंग ही करेंगे। स्मिथ, इसलिए यही स्ट्रेटेजी लगती है मुझे जैसे एडविन की स्मिथ का वहाँ खड़े होना या यही स्ट्रेटेजी रही होगी ऑस्ट्रेलिया की कि स्मिथ एक एंड संभालेंगे और बाकी बल्लेबाज जो है हेड है या कैमरन ग्रीन है आने वाले वो भी बल्लेबाज होंगे, तो उनको यही बोल के भेजा जाएगा या वहाँ पर जो स्मिथ होंगे उनको समझाएंगे लगातार कि किस बॉल को कैसे खेलना और थोड़ा सा अग्रेसिव खेलना है, क्योंकि हम जितनी जल्दी बड़ा स्कोर खड़ा कर लें वो ही दूसरी टीम के लिए थोड़ा भारी पड़ने। I think आप बिल्कुल सही कह रहे हैं because Steve Smith has been known to play that sheet anchor role for Australia whenever they have had that requirement of scoring big runs. He stands there, he faces those 150, 200 balls while batsmen keep playing the big shots around him, and Australia ends up getting a formidable total that the opposition usually finds it tough to score. प्यारे मोहन जी ने एक और कमेंट भेजा है रॉबिन, वो बोल रहे हैं कि भाई उमेश ने बहुत बकवास बॉलिंग किया है, उससे ये उम्मीद नहीं थी, बट टू बी फेयर टू उमेश यादव, आई थिंक इन द लास्ट 3 or 4 overs that he bowled, he made a pretty good comeback. I think he gave less than 8 runs there. जी बिल्कुल प्यारे मोहन जी, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आप ऐसा लग रहा है क्योंकि होता है कि आप किसी से ज्यादा उम्मीद करें तो वो थोड़ा सा उस समय उस तरीके से ना खेले तो थोड़ा सा लगता है, मगर ये बहुत ही अच्छा शॉट मारा स्मिथ ने, और स्मिथ जैसा कि मैंने कहा है कि अगर वो जम गए तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है इंडियन टीम को। और जिस तरीके से उन्होंने भी बहुत ही प्यारा लेग साइड पे शॉट खेला है, लेंथ भी बिल्कुल पास में आई और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लेग साइड में बिल्कुल कलाइयों के साथ एकदम स्क्वायर लेग पे शॉट मारा है, कोई भी फील्डर के पास उसका कोई जवाब नहीं कि पकड़ सके। जी हम जैसा बात कर रहे थे कि उमेश यादव मतलब बहुत अच्छे बॉलर हैं, काफ़ी टाइम इंडिया टीम से बाहर भी रहे हैं, तो थोड़ा ये भी फर्क हो सकता है क्योंकि ज़्यादा अभी उनको हाल ही में ज़्यादा मौके ऐसे नहीं मिले हैं, टेस्ट ही खेल रहे हैं लगातार, तो थोड़ा टाइम लगता है। बट मैं जहाँ तक कि इस मैच या WTC फाइनल के एंड तक शायद हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो जाए और शायद उमेश यादव अपनी लय में दिखे। एक छोटा ड्रिंक्स ब्रेक के लिए बुलाया गया है at the end of the 36th over as the score stands at 125 for 3. Stephen Smith 19 of 57 balls and Travis Head 32 of 28 deliveries. Among the wickets, it's Usman Khwaja, Manas Labuschagne and David Warner who are out. Shardul Thakur, Mohammad Shami and Mohammad Siraj are the wicket takers for India. काफी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गेम अभी किसके तरफ पलटी हुई है। काफी लोग बोल रहे हैं, काफी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अभी भी एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के पास है क्योंकि उन्होंने अपने लिए अच्छा सा फाउंडेशन बनाया है एंड दे आर नॉट लूजिंग एनी विकेट्स, भले ही वो अभी स्कोर ना कर पा रहे हो, बट एज द मैच प्रोग्रेसेस, अभी सिर्फ 36 ओवर पूरे हुए रॉबिन, अभी भी लगभग 55 ओवर तक तो खेला जा सकता है ये गेम। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्या करना चाहिए इंडिया को, या ऐसे कौन से प्लेयर्स है जो इंडिया को अब टारगेट करना चाहिए सो दैट ऑस्ट्रेलिया डज नॉट पुट अप टोटल व्हिच इज गोइंग टू बिकम टफ फॉर इंडिया टू चेस डाउन? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि अभी कुछ ना कुछ रणनीति में चेंज लाने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है थोड़ी बहुत जल्दी बहुत बड़ी भी हो गई है, क्योंकि ट्रेविस हेड ने आते ही काफ़ी अच्छे शॉट्स खेल दिए हैं और वो काफ़ी हावी हो रहे हैं बॉलर्स पर। तो मैं ये चाहूँगा कि अब थोड़ी सी रणनीति में चेंज लाने का टाइम आ गया रोहित शर्मा के लिए कि वो कोई एक अच्छा विकल्प देखें बॉलिंग लाइनअप पे, वो चाहे रविंद्र जडेजा के रूप में हो या किसी और जो भी उनके पास विकल्प हो उस हिसाब से देखें। बट मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा
यहाँ चेंज चाहिए। अब स्पिनर आपने अब तक ट्राई नहीं किए हैं, 35 ओवर हो गए हैं मेरे ख्याल से, 36 ओवर हो गए हैं, और आपने अब तक रविंद्र जडेजा से एक भी ओवर नहीं डलवाया। तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा से ओवर डलवाने का टाइम आ गया आई थिंक। एक स्पिनर और एक पेसर से मतलब हो सकता है कि बहुत ही कारगर साबित हो, क्योंकि रविंद्र जडेजा की जो बॉल लाइन है वो बिल्कुल विकेट टू विकेट कराते हैं। बैट्समैन को कोई मौका नहीं देते हैं, जरा भी बाहर बॉल नहीं डालते हैं कि बैट्समैन को लीड करके शॉट मारते। तो वो जहाँ मिस हुई मेरे ख्याल से वो विकेट में जाएगी बॉल। तो रविंद्र जडेजा उनके पास एक विकल्प है जिसको वो अभी ब्रेक के बाद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तक उनको ट्राई नहीं किया गया है और ये शायद चेंज ओवर हो। And I think Shubhadeep is agreeing with you. Shubhadeep ने हमारे लाइव स्ट्रीम यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में कमेंट डाला है, ऑस्ट्रेलिया is a little bit nervous against spin, and that is and उन्होंने पहले भी बोला था कि another spinner should have been part of this team, another एक और स्पिनर लेके आना चाहिए था इंडिया को, और उन्होंने अश्विन का नाम लिया हुआ है. But again, आपको क्या लगा रॉबिन? Do you think that it would have been a right call for it to play two spinners on an English pitch? बिल्कुल अश्विन को खिलाया जा सकता था। अश्विन बॉलिंग ही नहीं बैटिंग भी अच्छी करते हैं, और टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी भी लगाई हुई है। तो मेरे को लगता कि आज इंडिया को अश्विन को खिलाना चाहिए था, क्योंकि दो स्पिनरों की जोड़ी एक अलग ही कमाल दिखाती है। क्योंकि दोनों एंड से जब वो स्पिनर घातक हो जाते हैं तो बड़ा खतरनाक होता है बल्लेबाजों के लिए। और हाँ, ये कमजोरी थोड़ी सी रही है आपको, क्योंकि वो पेसर इजीली खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन। तो यहाँ पर विकल्प यही बनता है कि आप स्पिन लगाएं, और जिस तरह से भी टर्न हो सकती है बॉल को टर्न करना है और विकेट भी। अश्विन का थोड़ा सा कमी यहाँ पर दिखेगी हमें इंडियन टीम में, क्योंकि वो बैटिंग बॉलिंग ही नहीं मतलब बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो अब किस वजह से उनको नहीं लिया गया ये हमें पता नहीं है, मगर हाँ वो होने चाहिए थे, क्योंकि दो स्पिनर्स से जाना एक अच्छी समझदारी कहें कि एक अच्छी टीम बिल्ड का एक दिखता है। तो मेरा यही मानना है कि अश्विन को खिलाना चाहिए। अभी ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है ओवल ग्राउंड में, और कुछ ही देर में प्लेयर्स भी आने वाले हैं. इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी रॉबिन. अगर ओके, मैच इज बैक ऑन एंड इंडिया इज कंटिन्यूइंग विद इट्स स्पिन. मुझे लगा कि शायद रविंद्र जडेजा को ये लोग लेके आ जाएंगे, but it clearly does seem that Siraj is going to be the one who is going to carry forward the attack. आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इंडिया अभी स्पिनर्स को क्यों नहीं खिलाना चाह रहे? क्यों? Is it because उनको लग रहा है कि पिच ज़्यादा डिटीरियरेट नहीं हुई है, और is it because of the Steven Smith factor? Because Steven Smith has been pretty good against spin. ऐसा उनको कोई प्रेफरेंस नहीं है. उनका स्ट्राइक रेट आई थिंक दोनों स्पिन और पेस के खिलाफ काफी अच्छा रहा है, मगर हिस्टोरिकली अगर देखें स्पेशली अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स, आई थिंक स्टीवन स्मिथ काफी डेंजरस रहे हैं. जी बिल्कुल, मेरे को लगता है, और जैसा बोल भी रहा था कि शायद अब जडेजा का विकल्प देखेंगे रोहित शर्मा, मगर वो नहीं लाए. वो सिराज से उन्होंने दोबारा से फिर सेशन स्टार्ट करवाया है. मेरे ख्याल से हो सकता है ऐसा हुआ हो, या ऐसा लग रहा हो रोहित शर्मा या टीम को भी कि इस समय बॉल अभी भी मेरे ख्याल से ज्यादा पुरानी ना हुई हो, क्योंकि शॉट्स इतने बड़े अभी तक लगे नहीं है. क्योंकि शॉट जब तक बैट पे लेजेंड लगते नहीं है तब तक बॉल पुरानी पिच में हो सकता है. ऐसा लग रहा हो अभी टीम कैप्टन रोहित शर्मा को कि अभी स्पिन रोकी जाए, क्योंकि आपके पेसर हर सेशन के बाद आते हैं और एक विकेट ले जाते हैं. माइट भी वो उनके में चल रहा हो कहीं ना कहीं. रोहित शर्मा सोचे कि सेशन दोबारा स्टार्ट हुआ तो वाइड की राइट. रॉबिन, एक और सवाल आया है. सेम सवाल नहीं है बल्कि एक राय है हमारे दो सब्सक्राइबर्स की. एक भांगड़ा बॉय है और एक अरुल खोदरे हैं, जो बोल रहे हैं कि स्मिथ का विकेट लेना जरूरी है क्योंकि वो आगे ज्यादा खेल सकते हैं. आपको क्या लग रहा है? इज दैट अ फेयर असेसमेंट, और डू यू थिंक दैट राइट नाउ गिवन द वे द गेम इज गोइंग, ट्रेविस हेड का विकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? जो अटैक खेलता है तो उसको हम हमेशा से सोचते आते हैं कि वो थोड़ा सा माइट भी कहीं ना कहीं लूजन अप करेगा, और किसी भी एक शॉट में अगर वो मिस करा तो मे बी विकेट मिल जाए. मगर जो बैट्समैन बहुत ज्यादा स्टडी खेलता है तो उसकी विकेट लेना ज्यादा टफ भी होता है और जरूरी भी होता है. क्योंकि स्मिथ जिस तरह से खेल रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा स्टडी और लंबा खेलने वाले, क्योंकि जिस तरह से वो आराम से पंच कर रहे हैं, उनको कोई भी बॉल ऐसा नहीं कि बॉल मिस कर रहे हैं या बॉल मिस कर गई. अच्छी बाउंस थी बॉल कैच के लिए, और
अपील की गई है कि शायद कैच हो, मगर ऐसा हुआ नहीं, बैट से काफी दूर बॉल गई है। तो जैसा मैं कह रहा था कि स्टडी बैट्समैन है इस समय स्मिथ, मतलब ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, रन बेशक सबसे ज्यादा है, मगर कहीं ना कहीं मिस कर जा रहे हैं कई बॉलों को, और जो कि काफी घातक हो सकती है उनके लिए। और स्मिथ बहुत स्टडी कर रहे हैं, उनकी जो बॉल लेफ्ट कर रहे हैं तो वो केयरली अपने आप से लेफ्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मिस कर जा रहे हैं बॉल लेंथ को पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा स्मिथ के साथ। तो स्मिथ की विकेट बहुत जरूरी है, इस पार्टनरशिप को ब्रेक करेंगे। अगर स्मिथ की विकेट आपने ले ली, माइट भी अब ट्रेविस हेड या कैमरन ग्रीन या जो भी बल्लेबाज आएगा वो स्टडी नहीं खेले, क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये होगा कि जितनी जल्दी ज्यादा रन बटोर लें वही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि और स्मिथ के बारे में मैंने जितना सुना है और सुनता है कि वो मैच में आने से पहले 100 बॉल खेल के आते हैं। ये कितना सच है कितना नहीं है आई डोंट नो, बट ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। That is a very interesting fact. I mean, 100 बॉल खेल के आप आ जाओ। जी बिल्कुल, वो अपना जब भी वो मैच खेलने आते हैं तो वो 100 बॉल बाहर अपना प्रैक्टिस या जहाँ भी वो 100 बॉल नॉक करके आते हैं। तो ये मैंने सुना है, तो इससे मुझे याद नहीं, मगर हाँ ऐसा फैक्ट मैंने सुना है। Wow, that is a very interesting factoid there, Robin. I mean, 100 बॉल खेल के आना, वो भी टेस्ट मैच के पहले, वो तो सही में that is quite a feat, because वो 100 बॉल खेलने में ही जितना एफर्ट निकल जाता है वो तो बहुत ही मुश्किल है। Okay, voice is low is what some of our guys are telling us. We will try to fix that, but टोटल कितना ओवर रहेगा इस मैच में इज व्हाट जर्शा इज आस्किंग अस। एक और यू ने पूछे कितने ओवर का है। वेल टोटल तो 90 ओवर होते ही हैं पर डे 90 ओवर एग्जैक्टली। आप 5 डेज में काउंट कर लीजिए, जितने ओवर जो टीम खेल जाए वो उसकी बात है। वो 2 दिन भी खेल सकती है ऑस्ट्रेलियन टीम, हो सकता है 3 दिन खेल ले, अब वो डिपेंड ऑन विकेट्स और ऑब्वियसली बॉलिंग लाइनअप। फिर दोबारा से ट्राई किया, तो मैं कह रहा हूँ कि जैसा ट्रेविस हेड खेल रहे हैं वो लक पे खेल रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ। शार्दुल ठाकुर ने अच्छी बॉल कराई थी, मिस शॉट तक कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो मारना नहीं जा रहे थे और बॉल सही हो गई, स्लिप के ऊपर से गई है बॉल। तो यहाँ पर अगर वो सही से नहीं किस्मत साथ देती तो शायद यहाँ पर एक विकेट मिल सकती थी। और ये नो बॉल रहा है, दिस वाज अ नो बॉल, तो 5 रन मिले हैं। दिस इज द सेकंड नो बॉल। ओ, और ये बहुत ही हार्श लग रहा है मुझे। बिल्कुल टेस्ट में नो बॉल, मतलब और वो भी पैर की, तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये काफी अच्छी बात नहीं है शार्दुल ठाकुर के लिए, क्योंकि टेस्ट में पास बहुत ओवर होते हैं, ऐसा नहीं कि आप 4 ही ओवर के लिए बॉल डालने आ रहे हैं। एग्जैक्टली, आपके पास बहुत जल्दी है, क्योंकि टाइम कोडिंग है कि भाई इतने टाइम में आपको इतने बॉल करानी है। यहाँ पर टाइम की ऐसा कोई लिमिट नहीं होती, तो आप टाइम ले सकते हो। अगर आप ऐसी बॉल नो बॉल डालते हो टेस्ट में तो ये अच्छे बॉलर की निशानी नहीं होती है। और वो और नो बॉल के साथ ये चौका गया है, मतलब कि 5 रन उन्होंने एक बॉल में ही कंसीड किया है, 7 रन 3 बॉलों में। एंड और भी हमारे पास कमेंट्स और सवाल आए जा रहे हैं। अगले 5 ओवर में स्मिथ को आउट करना फिक्स है, ये नमन का कहना है। इट विल बी ग्रेट इफ स्टीवन स्मिथ इज आउट इन नेक्स्ट 5 ओवर्स, और अगर वो 30 रन से कम में अगर हमने उनको आउट कर दिया तो सही में बहुत बड़ी बात है। एंड अनदर नो बॉल, ओहो, एक ही ओवर में 2 नो बॉल और आपकी लाइन से बाहर जा रही है, और ये तो सही में, क्योंकि ये आप बैट्समैन को बढ़ावा दे रहे हैं नो बॉल देके, हालांकि इसमें फ्रीट नहीं होता है। और यहाँ पर हमारे एक व्यूअर्स ने और लिखा है, जब तक 90 ओवर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक खेलेगी क्या ऑस्ट्रेलिया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये एक दिन के 90 ओवर है, अब वो 5 दिन लगातार खेले तो डेली 90 ओवर होंगे। वो 5 दिन खेलें तो 5 दिन खिलाएंगे, एवरी डे 90 ओवर्स डालने हैं। वो इंडियन बॉलर्स डालते रहेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया आउट नहीं होगी तो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट अभी इन्होंने स्क्रीन पे लेके आए हैं। फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स फॉर इंडिया इन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023, सो दैट मींस ये टोटल विकेट्स ओवर द लास्ट 2 years फॉर अ टेस्ट बॉलर फ्रॉम इंडिया। एंड टॉप ऑफ द रैंकिंग्स में इट्स रविंद्र जडेजा विद 43 विकेट्स। अब हम कह सकते हैं कि वो जो 13-14 मैचेस का उन्होंने जो स्टैट दिया था उसमें से काफी सारे गेम्स तो इंडिया में खेले गए हैं, एंड इंडिया इज डेफिनेटली हैज वेरी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस।
but is that assessment right for a bowler like Jadeja? जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया की पिचेस जो हैं वो बहुत स्लो होती हैं अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट की इंडियन पिचेस स्लो होती हैं। यहाँ बाहर की पिचेस थोड़ा फास्ट होती हैं, पेसर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा मदद होती है और वही चीज़ यहाँ पर दिख भी रही है। रविंद्र जडेजा मतलब आईसीसी में मैं कहता हूँ आईसीसी रैंकिंग में है भी नंबर 1 पर ही। एंड एक और चौका पड़ गया इसी बीच। जी बिल्कुल, ओह और फिर से दोबारा गंदी बॉल, ये बहुत लंबा ओवर साबित हो रहा है मेरे को लग रहा है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट 7 बॉल्स करा चुके हैं और नहीं, अभी भी एक बॉल बाकी है। 8 बॉल का ओवर बन चुका है 2 नो बॉल के वजह से। और ये बढ़िया शॉट स्टीव स्मिथ बिल्कुल लेंथ बॉल थी, बिल्कुल स्टीव स्मिथ ने कहा तो ये तो बिल्कुल थाली में क्रॉस के चौका दिया है तो उन्होंने बिल्कुल। सिकंदर ने एक सवाल पूछा है, जडेजा बॉलिंग करेंगे क्या? जडेजा सिर्फ आईपीएल में अच्छा खेलता है, इज व्हाट बालू छवन हैज टू से। आई वुड से यस, बॉलिंग डेफिनेटली करेंगे जडेजा। एंड जडेजा इज नॉट जस्ट अ गुड आईपीएल प्लेयर, आई थिंक वो ऑलराउंड इंडिया के लिए काफी सही अच्छे रहे हैं। जितना हम जानते हैं, मेरे को लगता है आईसीसी रैंकिंग में ऑलराउंडर में मेरे ख्याल से नंबर 1 पर है, नंबर 2 या नंबर 3 पे होंगे आई थिंक वो, क्योंकि फर्स्ट पे आई थिंक सैमकरन है और मेरे ख्याल से वो अच्छी रैंकिंग में हो। तो कुछ टाइम वो अपनी इंजरी को लेके बाहर रहे, वरना अभी मेरे को लगता नहीं है कि उनको कोई बीट कर पाता आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 से। तो वो अपनी इंजरी के कारण वो बाहर रहे हैं। उसके बाद आते ही उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था लास्ट टेस्ट सीरीज में। राइट, एंड वो कहते कहते ही रॉबिन एक और चौका पड़ा है शार्दुल ठाकुर के बॉल पे। 38 ओवर्स, ऑस्ट्रेलिया सडनली इज नाउ एट 141 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गया है ओवर। लग रहा है थक गए हैं या पता नहीं क्या है, वो बॉल बस जस्ट डाल रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्मिथ एकदम से गेयर अप चेंज करके उन्होंने 2 चौके लगा दिए हैं लगातार। और ऐसी अगर आप गलत और मतलब बॉल कराएंगे तो मेरे को लगता है कि बैट्समैन रुके नहीं, क्योंकि बैट्समैन वहां पर जम चुका है, क्योंकि उन्होंने 63 बॉल खेलनी है। ऑलमोस्ट वो 10 ओवर खेल चुके हैं और 10 ओवर के बाद बैट्समैन 10 ओवर अगर वहां पर खेल ले खड़े होके तो मेरे को लगता है उसकी आंखें बिल्कुल जम चुकी हैं बॉलर के हाथ रीड कर चुके हैं। हाँ, बॉलर का हाथ पता चल चुका है और पिच के बारे में भी उन्हें पूरा ज्ञान हो चुका है कि ये बॉल कहाँ मूव करेगी अब पड़ के। और मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो पिच है, मेरे को लग रहा है कि बैट्समैन की साइड जा रही है। एग्जैक्टली, एंड ये मैच का सबसे एक्सपेंसिव ओवर रहा है। इसमें 2 नो बॉल गए थे, एक तो नो बॉल 4 था एंड टोटल ऑफ 16 रन, 16 रन एक ही ओवर में स्कोर हुए हैं। इट वाज अ वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय शार्दुल ठाकुर फॉर दिस पर्टिकुलर ओवर। ही हैज कंसीडर्ड 41 runs in his 9 over spell, but he has managed to pick up that all important wicket of David Warner. अभी मुझे लग रहा है रॉबिन की बिकॉज शामी और सिराज के ओवर्स काफी कम हो चुके हैं एंड जडेजा इज हियर, सर जडेजा इज हियर he is bowling to Travis Head and this is the first bit of spin bowling that we are seeing. So after 38 overs, India has decided that we need to bring in our spinners. जी बिल्कुल, और जडेजा जैसा विकल्प देख रहे थे बिल्कुल उनको लगाना चाहिए था और वो मेरे को लगता है कि कुछ रहा नहीं। और रोहित शर्मा ने उनको लगाकर अच्छी तरीका आजमाए हैं, क्योंकि पिच अब मेरे को लगता है कि पेसर्स के हिसाब से थोड़ा सा बदल गई है। तो अब देखते हैं जडेजा जी कैसे, सर जडेजा क्या सही में वो जोर बनेंगे इस मैच का, या थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन टीम का पलड़ा थोड़ा भारी ही रहेगा। अभी और ये चूके स्मिथ एकदम उन्हें समझ नहीं आया बॉल की वजह से, और यही खासियत है शायद जडेजा। बट ये मुझे लग रहा है कि लेग बाय जाएगा, ये दिस इज नॉट ऑफ द बैट। हाँ, ये लेग बाय का सिग्नल आ चुका है। ये बैट पे लगता तो शायद थोड़ा सा यहाँ पर काम हो सकता है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि ये अच्छी खासियत है लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट बैट्समैन, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर की तरफ बॉल आएगी और यहाँ पर थोड़ा फंसने के चांसेस हैं ट्रेविस हेड के, क्योंकि लेफ्ट हैंड से बिल्कुल बांध के बॉल कराते हैं जडेजा, क्योंकि लेफ्ट हैंड बिल्कुल एक कहते हैं क्रॉस सीम बॉल कराते हैं और एकदम क्रॉस बॉल डालते हैं।
वैसा ही दोनों साइड स्लिप ली हुई है, लेग साइड पर भी और ऑफ साइड पर भी, तो कहीं पर भी एज लगेगा तो बिल्कुल. But Robin, even though there is a fair amount of bounce on the pitch, ball बिल्कुल turn नहीं हो रही है. The turn is very minimal. It is very difficult to see this ball turning with any greater degree of threat, क्योंकि जितने भी balls अभी तक ball किए गए हैं, ये देखिए फ्रंट फुट पे भी आके उनको खेलने में कोई दिक्कत नहीं है स्टीव स्मिथ को. सही कह रहे हैं. और जडेजा जी, मेरे को लगता है सर जडेजा जो है वो मोस्टली बहुत ही रेयरेस्ट होता है, या मैं कहूँगा कि मैंने उनके ज्यादा स्पिन देखता भी नहीं हूँ. वो विकेट टू विकेट बॉल डालते हैं, उसमें एक आधी ऑफ स्पिन और एक आधी लेग स्पिन करा देते हैं, बहुत रेयरेस्ट होता है, बट वो मोस्टली विकेट टू विकेट बॉल कराते हैं. और उसमें क्या है कि यही देखने वाली बात होती है कि बैट्समैन वहीं फंसता है. जब स्पिनर को खेलता है और स्पिनर को वो एक बॉल टर्न हो जाए तो वो बैट्समैन सोचता है कि शायद नेक्स्ट बॉल भी इसी तरह से आएगी. वहीं पे सर जडेजा क्या करेंगे, वो स्ट्रेट बॉल डाल देंगे, तो वहाँ पर फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. हमारे व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर्स को हिंदी में ज़्यादा कमेंट्री चाहिए. आई एम सॉरी अगर मैं कभी बीच बीच में इंग्लिश में बोल जा रहा हूँ. दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई हैव गॉट रॉबिन विद मी, जो मेरे से काफ़ी बेहतर हिंदी में कमेंट्री कर सकते हैं. आपको दो कॉम्बो मिल रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश भी थोड़ा हिंदी भी तो थोड़ा मिक्सर आ रहा है, तो अच्छा है. एक बाउंसर समझ लीजिए इसको कि बीच में बाउंस हो जाती है और हिंदी आ जाती है. बट ये अच्छा है, आप दोनों मतलब सभी व्यूअर्स के लिए भी, कोई किसी को इंग्लिश पसंद आ रही है, किसी को हिंदी पसंद आ रही है, तो अच्छी चीज़ है ये. और कुछ बालू जवान भी हैं, वो कह रहे हैं कि किंग कोहली इज द ग्रेट क्रिकेटर. ये नो डाउट है, इसमें कोई नहीं कर सकता कि ये बात गलत है. कोहली इज अ किंग. देखना होगा कि बॉलिंग ऑप्शन तो नहीं दे सकते हैं यहाँ पर, बट हाँ अभी तो बॉलर्स का ही टाइम है. फिर से शार्दुल ठाकुर लगाए गए और ये बहुत अच्छी बॉल लगा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं लगा. ये अच्छी बोल थी. अगर यहाँ पर बैट हल्का सा, क्योंकि ऑफ साइड को जाती है बॉल की, क्रॉस कराई है ट्रेविस हेड को, एकदम क्रॉस बॉल डाल रहे हैं उनके बिल्कुल ऑफ स्टंप के पास से बॉल निकली और अच्छी बाउंस थी बॉल की. ये ऐसा नहीं कह सकते कि पिच में बाउंस नहीं है. अभी पिच में फिर से बाउंस है और बाउंस ही आया, ये अच्छा बाउंस आया. बिल्कुल बैट पे अगर एज लगता तो माइट स्लिप पर ये कैच जाता. और अच्छी बॉल शार्दुल ठाकुर अच्छा कमबैक कर रहे हैं ये पिछले ओवर के मुकाबले. ये बहुत क्लोज था, बट अल्ट्रा एज में कोई दिक्कत नहीं, कोई अल्ट्रा एज में कुछ एज नहीं. एग्जैक्टली. शार्दुल ठाकुर ने तो 2 बोले गए हैं, दोनों ही डॉट. 40 ओवर की तीसरी बॉल थी और ये अच्छा रणनीति है, या कह लें कि ये कैप्टनसी है कि ये इन्हें पता था कि यहाँ वो अच्छे शॉट मार रहे हैं ट्रेविस हेड, तो उन्होंने ऑफ साइड का जो स्क्वायर कट का फील्डर है वो बिल्कुल बाहर लिया हुआ है बाउंड्री पे, क्योंकि एक आधी बॉल वो फेंक देते हैं ऐसी, क्योंकि वो 2 बॉल अच्छी जाती हैं, तीसरी बॉल लूज डाल देते हैं जो बैट्समैन रन बना लेता है. तो यहाँ पर अच्छा है. और मैं कहूँगा कि राहुल द्रविड़ ने अपने जो भी ट्रेनिंग रहे हैं तो उसमें बात की होगी कप्तान से कि एग्जैक्टली आगे विकल्प लेके चलना है, कैसे करना है. मगर देखा जाए तो आफ्टर द ड्रिंक्स ब्रेक ऑस्ट्रेलिया लुक्स अ लॉट मोर इंटेंट. लाइक जिस रेट में ये लोग स्कोर कर रहे हैं, जिस रेट में अभी ये लोग अपना बिल्कुल गियर अप कर रहे हैं. गियर अप की बात नहीं है, द वे दे आर रोटेटिंग द स्ट्राइक वो काफी दिख रहा है. दे आर नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन बाउंड्रीज, बट वो सिंगल्स और डबल्स लेने में भी काफी माहिर है, और they are making sure that the scoreboard is constantly ticking. जी बिल्कुल. और ये ही एक अच्छे बैट्समैन की पहचान है कि अगर बॉल नहीं आ रही है, आप कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हो, तो सिंगल से लेकर स्ट्राइक रोटेट कीजिए. उससे भी फील्डर टीम या इंडियन जो भी टीम होती है वो परेशान होती है. अच्छी सोच है यहाँ पर. अगर आपको दिख रहा है कि बॉलर अच्छी लाइन पे बॉल डाल रहा है तो प्लीज उसको सिंगल ढीले हाथ से या जैसे भी खेलें, और जिस तरफ बॉल जा रही है और अपना सिंगल लें और स्ट्राइक रोटेट कीजिए. हो सकता है ये भी फ्रस्ट्रेशन हो बैट्समैन को कि अच्छी बॉल डाली मगर फिर भी सिंगल आ गया, तो वो फ्रस्ट्रेशन में विकेट की तरफ जाएगा और एक जल्दी बॉल भी डाल सकता है, और हो सकता है माइट भी अच्छी बॉल डाल. सो शार्दुल ठाकुर का ये काफी अच्छा कमबैक रहा है इस ओवर में. पिछले ओवर में उन्होंने अपने पिछले ओवर में उन्होंने 16 रन गंवाए थे, उसमें 2 नो बॉल भी था. बट इसमें अभी तक इस ओवर में अभी तक 5 बोलों के बाद सिर्फ 3 रन इन्होंने कंसीड करे हैं. काफी अच्छा गया है इनका. एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, अभी इंडियन
बॉलिंग थोड़ी स्ट्रगल कर तो रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स काफी कॉशियसली, काफी आराम से खेल रही है. दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क. कोई रिस्की रन्स नहीं है, कोई रिस्की शॉट्स नहीं है. ट्रेविस हेड भी थोड़े सहम गए हैं रॉबिन. वो कोई अब ऐसे अग्रेसिव शॉट खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. बिल्कुल वो जोखिम नहीं उठा रहे हैं, और ये मतलब थोड़ा सा गलत अंदेशा है इंडियन बॉलर्स के लिए, क्योंकि अगर आप बैट्समैन को इजीली प्ले करवाएंगे तो वो लंबी पारी खेलने में चूकेंगे नहीं. तो और ये साझेदारी बड़ी होती जा रही है, और ये बड़ी के साथ मुश्किलों में डालने वाली है इंडियन टीम को. मैं यही चाहूँगा हमारे व्यूवर्स बने रहें, और वो भी अपना सजेशन दें. वो भी बताएं कि अभी क्या करना चाहिए इंडियन टीम को. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी बातें कप्तान रोहित शर्मा के कानों पे जाएगी और वो वैसा ही करेंगे, बट हाँ, हम आपस में बात करके ये मैच का मजा ले सकते हैं कि ऐसे करें तो ऐसा होता है और ऐसे करें तो ऐसा होता है. संतोष देवड़ा कह रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा. सर, ये 12वीं का रिजल्ट नहीं है कि आपने एग्जाम दे दिया और ये पता है कब आएगा. ये मैच है, और मैच का रिजल्ट लास्ट डे तक कोई ये जज नहीं कर सकता कि क्या होगा. लास्ट बॉल तक जज नहीं कर सकता कि क्या होगा, क्योंकि क्रिकेट इसी का नाम है शायद. मुझे तो लग रहा है कि ये गेम शायद 4 दिन में ही खत्म हो जाएगा. दोनों टीम काफी अग्रेसिव है अपने बैटिंग और बॉलिंग को लेकर. इट ऑल डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग इंडिया कैन बैट. अगर इंडिया लीड नहीं ले पाएगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, अगर उनका लीड काफी कम रहेगा रॉबिन, मुझे लग रहा है कि फिर ये 4 दिन में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास. और द वे द पिच इज बिहेविंग, आई डोंट नो चौथे दिन में कितना बाउंस होगा, कितना स्पिन होगा, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है अभी भी. even though they are at the 41st over, almost halfway through the first day of this test final, this world championship final. मगर क्या चांस था? क्या ये चांस था? बैट पे लगा, वो बैट पर नहीं लगा. अगर बैट पे लगता तो माइट बी देयर इज अ चांस. ना ही वो एज लगा. तो रविंद्र जडेजा भी बॉलिंग कर रहे हैं, एंड उन्होंने बॉल किया था ट्रेविस हेड पे, एंड ट्रेविस आई थिंक ये बैट से ही गया है. ये बैट से गया, आई थिंक बैट पैड थोड़ा दूर पड़ा है शायद. हाँ, जो बैट पैड से लग के वो बम्प खा गया है शायद, जिस करके हाँ, चेतेश्वर पुजारा बैट पैड से बम्प खा के जरा सी दूर रह गई. चेतेश्वर पुजारा ने काफी तेजी दिखाई, मगर बॉल तक वो पहुंच नहीं पाए. यहाँ पर मुश्किल में डाल रहे हैं जडेजा ट्रेविस हेड को. शॉट मारने में बिल्कुल बांध के रख दिया है. अब मगर बांध के रखने से काम नहीं चलेगा. अगर आपको लीडिंग करना है मैच में, तो इनको कम से कम रन पे आउट कीजिए, अपनी लीडिंग ऊपर कीजिए, और 4 दिन के आधे में अगर आपने अच्छी लीड देके और ऑस्ट्रेलियन टीम को कहा कि आइए खेलिए, तो माइट बी देयर इज अ चांसेस कि आप 5th डे के हाफ डे में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि मैच किस तरफ है. अगर आपने अब ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बल्लेबाज को अगर आउट नहीं करा, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि सेकंड डे के हाफ तक या सेकंड डे के एंड तक अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को आउट करा, तो आपके पास भी आपको वो पहले तो चेस पूरा करना है, फिर लीडिंग बनाना है, तो आप भी कम से कम 1.5-2 दिन तो लेंगे ही. तो लास्ट डे में रिजल्ट आना बड़ा टफ होगा यहाँ पर. एग्जैक्टली. एंड जिस तरह अभी गेम सेटअप है, अभी तक हम कुछ नहीं कह पा रहे कि वेदर दिस इज गोइंग इन फेवर ऑफ इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के खाते में ये मैच है, क्योंकि दोनों टीम काफी अग्रेसिव भी रही है, काफी कॉशियस भी रही है, काफी सावधानी से खेल रहे हैं. आई थिंक दोनों टीम ने एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट दिया है इस गेम में. जी बिल्कुल. और ऑस्ट्रेलिया ने 148 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान, और इसमें तो ट्रेविस हेड लगातार पोजीशन कर रहे हैं. अब यही देखना कि अगले 1-2 ओवर में, अगर मैं से भी जानना चाहूंगा और आपकी एडमिन की, नेक्स्ट मेरे को लगता है कि ये ओवर या नेक्स्ट ओवर मेरे ख्याल से कुछ चेंज लाने वाला है इस मैच का, क्योंकि अब थोड़ा सा गेयर अप चेंज करने का टाइम ऑस्ट्रेलिया का भी है और इंडिया का भी, क्योंकि शार्दुल ठाकुर पे ओवर होके खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि उनको पता है, दे नो कि कहाँ बॉल आ रही है कहाँ नहीं आ रही. तो यहाँ पर जब थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव या ओवर कॉन्फिडेंट होता है बैट्समैन, वहाँ पर थोड़ा सा लूजन अप कर जाता है. ये अच्छी बॉल भी थी, यहाँ पर मिस होती तो माइट भी देयर इज अ चांसेस कि वो लेग बाय होता, बट अच्छा खेला और क्लियर हिट किया, बट कोई रन नहीं, सीधा वो फील्डर के हाथ में गया. तो मेरे को क्या लगता है कि नेक्स्ट 2 ओवर्स में कुछ ना कुछ लग रहा है, दिखता हुआ कि कुछ होने वाला है. It'll be quite something अगर अगले 2-3 ओवर में
इंडिया को एक विकेट मिल जाता है, बिकॉज इनमें से कोई भी प्लेयर का विकेट अगर इंडिया को मिलेगा तो आई थिंक इट विल बी अ बिग एडवांटेज फॉर टीम इंडिया, क्योंकि जिस तरह इन दोनों प्लेयर्स ने पूरा एक्सेलरेट कर दिया, अभी ऑस्ट्रेलिया का रन रेट हैज क्रॉस्ड 4 रन्स पर ओवर। पहले के 20 ओवर में रॉबिन मुश्किल से 3.5 का रन रेट चल रहा था, जब डेविड वॉर्नर पूरे जोर से अपने पूरे जोर लगाए पड़े थे खेलने के लिए। और अभी दिख रहा है कि ट्रेविस हेड जिस तरह एक्सेलरेट किया है, भले ही उनका स्ट्राइक रेट घट गया, मगर जो इनिशियल पीरियड्स में जो उन्होंने शॉट्स लगाए थे उसका काफी फायदा हुआ है ऑस्ट्रेलिया को। एंड ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट 1 रन अवे फ्रॉम 150 रन्स इन लेस देन 45 ओवर्स। सो मेरे हिसाब से तो इस डे के एंड तक अगर ऑस्ट्रेलिया इसी तरह से बैटिंग करती जाएगी तो 300 रन तो उनके यही पूरे हो जाएंगे। जी बिल्कुल, और विकेट भी रहेगी उनके हाथ में और 7 विकेट रह जाएंगे अगर वो 3 ही विकेट देते हैं आज। मगर अभी 49 ओवर्स बाकी हैं, तो अभी ये कहना थोड़ा जल्दी होगा। मगर हाँ, मेरे को ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ या तो ऑस्ट्रेलियंस थोड़ा सा हावी होंगे या इंडियंस, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 ओवर्स में कुछ होना चाहिए, क्योंकि गेयर अप का टाइम ऑस्ट्रेलियन के लिए भी है, क्योंकि अगर उन्हें बड़ा स्कोर देना है इंडिया को चेस के लिए, तो ये क्योंकि WTC 3 मैच सीरीज नहीं है, यहाँ पर 5 दिन में रिजल्ट देना है कि कौन जीतेगा ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो यहाँ पर दोनों ही टीमें उस तरीके से तो जरूर खेलेंगी कि स्कोर बड़ा बनाएं। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट रॉबिन, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखेंगे रणनीति, ऑस्ट्रेलिया इज वेरी क्लियर अबाउट हाउ दे वांट टू प्ले दिस। वो हर बॉलर को टारगेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शार्दुल ठाकुर को टारगेट किया है, उन्होंने उमेश यादव को टारगेट किया है। एक हद तक हम बोल सकते हैं कि दे हैव टेकन देयर चांसेस अगेंस्ट मोहम्मद शमी। मगर अगर हम इंडियन बॉलर्स को देखें, आई थिंक वो जो इनिशियल पीरियड्स में जो स्ट्रैटेजी बनी थी कि हम ख्वाजा को ऐसे टारगेट करेंगे और वार्नर को उनके बॉडी पे टारगेट करेंगे, और ब्रिलियंट टेक बाय केएस भरत देयर, डेफिनेटली सेविंग अ बाउंड्री। बट इंडियन टीम की जो बॉलिंग का जो स्ट्रैटेजी है, उसमें डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम मैसिव चेंज इफ इंडिया वांट्स टू गेट सम होल्ड बैक इन दिस मैच। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ लग नहीं रहा है कि, क्योंकि इंडियन बॉलर्स ठीक है वो अपने दमखम से बॉल डाल रहे हैं, मगर थोड़ा दमखम और दिखाना होगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि बॉलर्स बॉल डाल रहे हैं जैसे नेट्स मैच चल रहे हैं, कि वो अपना आराम से मिडिल बैट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ करने की, या तो आप सिराज लाओ वापस से या शामी लाओ, थोड़ा सा मोमेंटो चेंज करने का टाइम है यहाँ पर इंडियन टीम को, कि विकेट चाहिए एज ऑफ नाउ। विकेट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर विकेट नहीं मिली तो ये पारी बहुत लंबी होने वाली है। मतलब मैं ये जरूर जानता हूँ, क्योंकि was that a miss? Was that miss? ये बहुत अच्छी बॉल थी जडेजा की। या लो भी रही है बॉल काफी, बट was है या this a नहीं miss? अभी पता लग जाएगा। यस, बैट इन्वॉल्व था आई थिंक, और ये कैच हो सकती थी। अरे ये तो बहुत ही, और ये ट्रेविस हेड का विकेट मिल सकता था। मतलब काफी मतलब अच्छी बॉल करा रहे हैं जडेजा, जैसा मैं कह रहा था। समझ नहीं आ रही है बॉल। Exactly. कहीं पर बॉल बैठ जा रही है, कहीं पर बिल्कुल बाउंस ले रही है बॉल, और ये भी कैच हो सकता था, मगर थोड़ा दूर गिरी फील्डर से। चौकाया हुआ है ट्रेविस हेड को जडेजा ने, और वो फिर से वही, जब बॉल समझ में ना आए तो हिट कर दो, और वही रणनीति मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड आजमाएंगे अपनी नेक्स्ट और बची 2 बॉलों में, कि मैं थोड़ा तेज शॉट खेलूं ताकि अपने आसपास के प्लेयर्स को थोड़ा दूर कर दूं। अगर स्पिनर्स की तुलना की जाए, आपकी क्या राय है इस बात में रॉबिन? इज जडेजा बेटर देन नेथन लायन? क्या नेथन लायन ज्यादा डेंजरस प्रूव होंगे जडेजा से इस पिच में? देखिए, उनके घरेलू पिच है तो थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं और अभी मैच देख रहे हैं कि उनके देखने के बाद आप बॉल कराते हैं तो आप पूरा रीड करके आते हो उस पिच को, कि आपको कहाँ टप्पा रखना है और कहाँ से आपको मदद मिलने वाली है।
मगर यहाँ पर जैसा कि वो फर्स्ट टाइम मतलब बॉल डाल रहे हैं स्पिन पर अभी इस मैच में जडेजा, तो वो अपना टप्पा बहुत अच्छा डाल रहे हैं, मतलब जहाँ बॉल डालनी चाहिए वहाँ बॉल डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी अब उनको तो वो पता है कि जब वो देख के आएंगे तो वो कहीं भी डालें, मगर जब पहले बॉल डाल रहा था तो उसकी थोड़ी सी मैं कहूँगा कि ऊपर रहता है जो यहाँ पर बहुत अच्छा शॉट मारा उन्होंने लॉन्ग ऑफ की तरफ और 4 रन के लिए, क्योंकि फुल लेंथ बॉल डाल दी उन्होंने जडेजा ने, और वो ट्रेविस हेड है उनको वो तैयार ही खड़े थे, क्योंकि वो पीछे बैक फुट पे जाके वो शॉट खेल नहीं पा रहे थे। अभी तक वो 5 बॉलें उन्होंने बिल्कुल ऐसी चकरा के बॉल डाली है कि वो ट्रेविस हेड को समझ में ही नहीं आई। हमारे एक और व्यूवर्स हैं हर्षिता कंवर, तो कह रहे हैं कौन जीतेगा भाइयों, आप बताइए कौन जीतेगा। हमारी तरफ से तो हम चाहते हैं कि इंडिया ही जीते, बट नवीन कुमार जी कह रहे हैं कि 2000% पक्का है कि ये मैच ड्रॉ होने वाला है। नवीन कुमार जी पहले कह रहे हैं इंडिया लूज टुडे, और फिर वो कह रहे हैं 2000% ड्रॉ होने वाला है। हो सकता है ड्रॉ हो, बट हम नहीं चाहेंगे कि ड्रॉ हो। WTC फाइनल है तो कोई ना कोई टीम जीते। अब वो उन आंकड़ों पे जीते कि किसने पहले ज्यादा रन बनाए, या किसी पे जो भी एनालिस्ट होंगे उसके बाद वो निकलता है रिजल्ट। बट हम उस रिजल्ट के अलावा हम चाहेंगे कि क्लियरली कोई एक टीम जीते और बिल्कुल खेल के जीते, एनालिस्ट के हिसाब से ना जीते तो मैं चाहूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड बालू छवन जी को थोड़ा ऑडियो इश्यू हो रहा था, आई होप वो हमारे साइड से सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि अभी हमने थोड़ा कुछ टेक्निकल पर्सन्स को बोला कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज देखिए आप। तो उन्होंने कहा है कि कुछ तो सुधार वो लेके आए हैं हमारे ऑडियो में। आई होप उनको भी हमारी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। बट मैच की बात करी जाए, ऑस्ट्रेलिया हैज़ क्रॉस्ड द 150 मार्क, एंड जिस तरह जा रहा है ये मुझे लग रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऑस्ट्रेलिया शायद आज डे एंड तक 350 भी स्कोर कर सकती है। कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं और बहुत अच्छी ही बैटिंग कर रहे हैं। और मेरे को एक चीज और लग रहा है यहाँ पर, या तो रोहित शर्मा को काफी विश्वास है शार्दुल ठाकुर पर कि वो चाह रहे हैं कि उनसे बॉल करवाए जाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक आधी डिलीवरी वो एक ओवर में जरूर डालते हैं जो बैट्समैन को बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो वो शायद कारण रहेगा जो शार्दुल ठाकुर बॉल करा रहे हैं, कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज लाने का टाइम यही है कि आप अपने मेन बॉलर्स या तो सिराज या फिर शामी से 1-2 स्पेल करवा सकते हैं, या उमेश यादव से भी आप ट्राई कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर लगातार, क्योंकि बैट्समैन है ना, लगातार किसी बॉलर को देख के वो जज करने लगता है कि ये बॉल अब ऐसे आने वाली है, ऐसे आने वाली है, क्योंकि टेस्ट है और काफी टाइम मिलता है बैट्समैन को। कोई रनों की ऐसी वो दरकार रहती नहीं है कि आपको ये बनाना है, ये बना के चलना है, क्योंकि आपके पास काफी टाइम होता है। प्रेशर होता है, प्रेशर रहता है, मगर ये प्रेशर अब दोनों ने दूर कर दिया है। प्रेशर मुझे लग रहा है एक काफी इंटरेस्टिंग पिच मैप भी दिखाया गया था रविंद्र, जहाँ पे ये बताया गया है कि ट्रेविस हेड को शॉर्ट पिच बॉल खेलने में काफी दिक्कत हो रही, क्योंकि उस रेंज में जो बॉल्स उन्होंने फेस किए हैं वहां पे उनका स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा है। सो ये एक रणनीति है जो इंडिया एम्प्लॉय कर सकती है। बट जितना हमने अभी तक देखा है, जितने भी शॉर्ट बॉल्स ट्रेविस हेड ने फेस किया है, भले ही वो स्कोर ना कर पाए हो, मगर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि भाई वो भी अपना विकेट खो सकते हैं। बिल्कुल, और जिस बल्लेबाज को अपनी कमी का पता हो कि भाई मैं इसमें थोड़ा सा सक्षम नहीं हूँ, और तो वहाँ पर थोड़ा सा वो उस बॉल को थोड़ा जज करके ही खेलता है। ये चौका मार दिया बहुत अच्छा, और 50 भी बना ली है अपनी ट्रेविस हेड ने। 60 बॉल ओवर 52 रन बना दिए उन्होंने। तो अब वो बाउंस नहीं खेल पाते हो, ना खेल पाते हो या खेल पाते हो, बट उन्होंने रन बनाए हैं आज, अपनी 50 जड़ दी है WTC फाइनल में। तो यही है, शार्दुल ठाकुर से माइट भी यही आशा रख रहे हैं शायद रोहित शर्मा की, वो अनइवन कहीं ना कहीं बाउंस मार देते हैं शार्दुल ठाकुर तो, और वो बॉडी की साइड आई तो माइट भी देयर इज चांसेस, जैसा वो सोच रहे हैं कि डेविड वार्नर को आउट किया तो माइट भी देयर इज थिंक कि वो शायद वही ले कि बॉल आए और वो ट्रेविस हेड को आउट कर दें। दोनों टीम, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, द वे दे हैव बिल्ट अप, जो उनका जर्नी रहा है अभी तक, ये काफी अजीब है। क्योंकि शुरू में जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ था पिछले 2 साल पहले, तब ऑस्ट्रेलिया की हालत काफी खराब थी। दे वर नॉट अ टीम दैट लुक
good enough to qualify even in say the top 4, let alone top 2. फाइनल तक पहुंचने का कोई चांस ही नहीं था। मगर जैसे एज द मंथ्स प्रोग्रेस, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को रीबिल्ड किया है, टिम पेन के जाने के बाद जिस तरह पैट कमिंस ने संभाला है ऑस्ट्रेलिया का कमान, वो काफ़ी एडमिरेबल रहा है। एंड दे हैव बीन वेरी केयरफुल इन द वे दैट दे हैव एडेड ऑन प्लेयर्स। जैसे ट्रैविस हेड पहले भी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में, मगर उनको काफ़ी जल्दी हटा दिया था टीम लाइनअप से क्योंकि ही वाज नॉट अ परफॉर्मर। बट जिस तरह उन्होंने बाकी सारे नए यंगर प्लेयर्स को लेके आए हैं एंड एट द सेम टाइम स्टक ऑन विद देयर ओल्डर प्लेयर्स लाइक डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, वो काफ़ी एडमिरेबल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड रॉबिन, जिस तरह इंडियन टीम, मैं बोलूँगा कि जिस तरह उनका परफॉर्मेंस लेवल डाउन हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिविजुअल प्लेयर्स का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, बल्कि वी हैव लॉस्ट मेनी प्लेयर्स ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। ऋषभ पंत बिकॉज ऑफ इंजरीज, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह। अगर हम ये भी मिस था क्या? ओ ये मिस था क्या? नहीं, ये बस आई थिंक बाउंस रीड नहीं कर पाए थे कि तो वही जो मैं कह रहा था रॉबिन की टीम इंडिया अपने आप को रीबिल्ड नहीं कर पाई आफ्टर दीज प्लेयर्स गॉट इंजर्ड, आफ्टर वी हैड सो मेनी ऑफ दीज प्लेयर्स नॉट परफॉर्मिंग वेल। जी बिल्कुल और यही फेस था एक ऑस्ट्रेलिया का, जिस समय कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजों के कारण स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ये सब थोड़ा सा बाहर चले गए थे ऑस्ट्रेलियन टीम से। तब वहां पर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन टीम का टाइम थोड़ा सा नीचे आया था, और अब जब से वो वापस आए हैं या जो भी कह लो एक टीम बिल्ड हुई है दोबारा से, तो वो फिर परफॉर्मेंस आ गई है। जैसा उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता और मतलब बहुत अच्छे तरीके से टीम रीबिल्ड हुई है एक तरीके से। ऐसा ही अभी फेज थोड़ा सा मैं कहूँगा कि यहाँ पर इंडियन टीम का चल रहा है, क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे और की प्लेयर्स इस समय इंजर्ड हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम शुमार है हमारे जसप्रीत बुमराह का, जो काफ़ी टाइम से इस समय बाहर चल रहे हैं। बुमराह जी का होना मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक कहते हैं कि जो ICC वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर रहा हो और वो अचानक से बाहर चला जाए, तो ऑब्वियसली टीम की पूरी स्ट्रेंथ एक तरीके से खत्म हो जाती है। वहीं पर ही KL राहुल हैं जो अपनी टीम को थोड़ा सा बैक स्ट्रेंथ देते हैं बीच में, और वहीं पर हमारे की प्लेयर है एक हमारे ऋषभ पंत जो इंजर्ड है। तो थोड़ा सा तो मनोबल टूटता ही है टीम प्लेयर्स का और इंडियन टीम का और इंडियन बाकी फ्रेंचाइजीज BCCI कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, तो ये थोड़ा सा आता होगा उनको। बट नेवरदलेस टीम इंडिया अभी वहाँ पर खड़ी है और अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि हम सब विश करते हैं कि टीम इंडिया कप इंडिया लाए और सब उसको एंजॉय करें। और ताजुब की बात यह है रॉबिन की लगभग पिछले 9 साल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से एक भी टेस्ट सीरीज हारी नहीं है। हम उनसे 2 टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में ही जीत चुके हैं, जो किसी ने नहीं सोचा कि पॉसिबल होगा। एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आती है तब तो उनके पास तो जीतने का बिल्कुल चांस नहीं रहता है। सो अ विक्ट्री ऑन अ न्यूट्रल ग्राउंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, दैट टू वो भी एक ऐसे टूर्नामेंट को जीतने के लिए जो दोनों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर जिसके पास भी ये टेस्ट बेस पहुंचेगा, ये ट्रॉफी पहुंचेगी, they will be the first team to have won all the big tournaments under ICC panel. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि आज इंडिया फिर मतलब इस बार इस सीरीज में इस मैच में पूरा वो दिखाएगी कि हम फिर किसी से कम नहीं है। हमारे एक फरोआ हैं जो उन्होंने कमेंट किया है कि शुभमन और विराट बहुत पंजाबी इन फॉर्म, तो पंजाबी का फॉर्म में होना इंडियन टीम के लिए काफ़ी बढ़िया साबित हो सकता है, ऐसा हमारे एक व्यूअर्स ने बोला है। और सही बात है, ऐसा हो, हम भी दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो और हमारे जो बल्लेबाज हैं वो बिल्कुल एक अग्रेसर खेलें और टीम के लिए बहुत ही बढ़िया खेलें। मगर बात यहाँ पर अभी जो आ रही है थोड़ी सी बस विकेट की आ रही है, और उमेश यादव को लाया है रोहित शर्मा। मुझे कि यहाँ पर अब कमाल करने का टाइम आ गया, क्योंकि हमारे अभी तक जो पेसर हैं उनमें सबने ही विकेट ले ली है। यहाँ पर बारी है उमेश यादव की कि वो इंडियन टीम को एक ब्रेक थ्रू दिलाए और थोड़ा सा
इंडियन टीम हावी हो ऑस्ट्रेलियन टीम पर, तो यही शायद रहा होगा रोहित शर्मा का कि उमेश यादव को लाते हैं। अभी तक तो उन्होंने 4 गोलों में टॉप डाली है और अच्छी गोल करा रहे हैं पहले के मुकाबले। पहले स्पेल जो उन्होंने कराया उससे तो अच्छा ही स्पेल कराया है अब तक। देखना होगा कि ये 7 ओवर चल रहा है उनका और 2 गोले बाकी हैं। 7 ओवर में 27 रन दे चुके हैं। विकेट से अभी तक विकेट का खाना जो है उनका खाली है अभी। और विकेट इस समय इंडिया से ज्यादा मुझे लगता है उमेश यादव को विकेट की जरूरत है। तो ये उनकी नहीं होगी और ये उन्हें करना चाहिए। उमेश यादव ने सिर्फ अपने पहले 2 ओवर में सबसे ज्यादा रन लीड किए हैं, जब डेविड वार्नर ने उनको लगभग 20 रन के लिए खेल लिया था। तब से अब तक तो काफी अच्छा जा रहा है उमेश यादव का स्पेल, क्योंकि पिछले 5 ओवर में मुझे लग रहा है कि ये उनका मेडन ओवर गया है, ये उनका दूसरा मेडन ओवर गया है। इनफैक्ट आई थिंक पिछले 5 ओवर में उमेश यादव ने मुश्किल से 7 या 8 रन दिए होंगे। आप अपने व्यूज दोबारा से दे सकते हैं, क्योंकि हमने एक आप सबके लिए एक टास्क दिया है। उसमें पूछा है आप लोगों से, हाउ मच डू यू थिंक दैट ऑस्ट्रेलिया विल स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग? बिलो 300, 300 to 350, 350 to 400 and 400 प्लस। तो मतलब हमारा पोल तो हम पहले ही बता चुके हैं, एडविन एंड रॉबिन हमने पहले ही पोल दिया था, तो हमारा तो वही था 300 to 350। आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, बिलो 300 है या 400 प्लस जाएगा? जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं से भी पूछना चाहूँगा कि मुझे तो पूरा है कि 400 ही जाएगा। फर्स्ट इनिंग नहीं कह रहा, फर्स्ट इनिंग में से 400 तो ख्याल से ऑस्ट्रेलिया कर ले। अगर कुछ ऐसा रहे तो रॉबिन, मुझे आई एग्री विद यू, 400 तो डेफिनेटली ऑन द कार्ड। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को रिबिल्ड किया है, उन्होंने बहुत सही तरीके से अपने आप को बिल्ड किया, इवन दो दे लॉस्ट ख्वाजा फॉर 0 इन द बिगिनिंग ऑफ द गेम। बट जिस तरह डेविड वार्नर, जिस तरह मानस जाबुशान, जिस तरह स्टीवन स्मिथ और अभी ट्रैविस हेड खेल रहे हैं, दे हैव क्लियरली पुट ऑस्ट्रेलिया इन द ड्राइवर्स सीट। और देख के तो क्लियरली मुझे तो लग रहा है कि this score, their first inning score will be above 400 and it is going to be a big task for India. But अगर पिच का नेचर ऐसा ही रहा, अगर पिच is going to be like what it is right now, अगर उसके नेचर पिच के नेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया भी 400 स्कोर कर सकती है, प्रोवाइडेड उनके टॉप के 3 से 4 बैट्समैन जो है लगभग 200 से 250 रन टोटल स्कोर कर लेंगे। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
क्योंकि इंडिया की भी स्ट्रेंथ है और वो जानती है रन को चेस करना। और यहाँ पर यही कहूँगा कि मेरे को लग रहा है कि बॉल अभी भी मूव हो रही है, जिस तरह से उमेश यादव आउट स्विंग डाल रहे हैं तो बॉल मूव हो रही है, और कुछ बॉल अब ज़्यादा बाउंस भी नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है, तो वो शायद परेशानी में डाल सकता है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। बाकी यही है कि मेरे को लग रहा है जितने भी कमेंट सेक्शन में हमारे व्यूवर्स ने वोट्स दिए हैं वो 300 लो दिए हैं, मेरे ख्याल से सभी चाहते हैं इंडिया जीते, तो सभी ने मतलब स्कोर नहीं देख रहे हैं, सब यही देख रहे हैं कि 300 के नीचे डालें और हमारे इंडियन बैट्समैन जाएं और वहां पर 500 जलाएं और सेकंड में उनको कहें कि ऑस्ट्रेलिया खेलो, ताकि फोर्थ डे में ही हम अपना मैच खत्म करें और ट्रॉफी लें और घर आ जाएं। रॉबिन, ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है। हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर्स, लगभग 100 वोट से ऊपर हमारे पास आ चुके हैं और मेजॉरिटी 51% आर सेइंग बिलो 300 स्कोर करेगी ऑस्ट्रेलिया। आपके मुंह में, आप सबके मुंह में घी शक्कर, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि द वे ऑस्ट्रेलिया इज बैटिंग मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। और ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन आराम से कर पा रहे हैं विदाउट एनी रिस्की शॉट, तो भाई मैं क्या बोलूं। मगर पॉइंट जो आपने अभी रॉबिन वो से तो मैं पूरे सहमत हूँ कि बाउंस है पिच में, मगर इतना भी वो खतरनाक बाउंस नहीं है जिससे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इंडियन प्लेयर्स को तंग कर पाए। बॉल स्विंग भी हो रही है मगर इतना ज्यादा नहीं हो रहा है जिससे इंडियन प्लेयर्स को दिक्कत हो, क्योंकि वी नो वी हैव प्लेयर्स आर वेरी गुड एट स्विंग, they have Mitchell Starc exactly come in, that they used to ball in the pitch, तो वो जब आएंगे तो स्ट्रेंथ सा जब स्टार्टिंग बॉल से बॉल डाल की बॉल मूव भी करेगी, बाउंस भी करेगी, तो उसके लिए तैयार रहना है हमारे बैट्समैन को, क्योंकि अभी पिच जो भी दिखा रही होगी कि जब भी पारी खत्म होके पिच पे थोड़ा सा ग्राउंड्समैन काम करते हैं, और मैं यही चाहूंगा कि जब भी बैटिंग आए इंडिया की तो मिडल ऑफ डे ही आए। एग्जैक्टली नेक्स्ट डे आई तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि पिच किस तरफ मूव करेगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, मगर अगर सेम डे पे बैटिंग आई तो मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम ज्यादा ना आए। बहुत ज्यादा Faro Jat has saying that India will easily win after 10 years. काफी कॉन्फिडेंस है उनको टीम इंडिया पे, एक डिप्लीटेड टीम इंडिया पे, if I could put it that way. और हाँ, जो ये 10 साल का बोल रहे हैं वो इस बात के ऊपर रेफरेंस मान रहे हैं कि इंडिया का लास्ट आईसीसी ट्रॉफी आया था when they won the 2013 में जीते थे ये, and they had won the Champions Trophy. They had won the Champions Trophy against England in the final in England. रविंद्र जडेजा वापस आए हैं बॉलिंग के लिए, और वो जो पहला बॉल था रॉबिन, तो आई थिंक पहली बार हमने देखा है कि बॉल काफी ज्यादा स्पिन कर रही है। बहुत टर्न हुआ बॉल, और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ शुरुआत से कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए बहुत ही घातक बॉलर हैं रविंद्र जडेजा, और वो पहली बॉल इतनी अंदर आई, बस जस्ट मिस द मैं कहूँगा विकेट, और वो जरा सी भी टच होती तो माइट भी यहाँ पर ट्रेविस हेड का मेरे ख्याल से आज का दिन का बैटिंग हो गया था। मगर
स्मिथ जैसा खेल रहे हैं, मैं स्मिथ के बारे में बार बार बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा बहुत ही स्टडीली खेल रहे हैं, क्योंकि बॉल को पूरा वेट करते हैं, वेट मतलब बिल्कुल बॉल के नीचे आके खेलना उसके, और पूरा जज करके खेल रहे हैं। कोई भी एक आप उनको कहोगे कि कोई भी बेकार शॉट अब तक नहीं खेला उन्होंने, ना ही अग्रेसिव नहीं, ना ही ज्यादा, वो अपना सिंगल रोटेट करते हैं और जहाँ उनको लूज बॉल मिलती है तो वो बाउंड्री भी लगा देते हैं। सिंपल जडेजा की चौथी बॉल थी और पांचवी बॉल थी सॉरी, और एक ही रन आया है, अच्छी ओवर गया है अब तक। एंड ये देख के आई एम नाउ रियली सरप्राइज्ड कि आप इंग्लिश कंडीशंस में आपको एक ऐसा पिच मिल रहा है जहाँ पे स्पिनर को इतना असिस्टेंस मिल रहा है ऑन डे वन, हाफ वे थ्रू डे वन इतना असिस्टेंस मिल रहा है। ये सब कुछ देख के हाँ आपको अब कहीं ना कहीं लगेगा, अब जो भी जिन्होंने भी बोला था कि आर अश्विन को होना चाहिए था टीम में, उन सब के लिए ये एक पॉइंट बन जाएगा कि आप अश्विन को क्यों नहीं सेलेक्ट किया। आप शायद उमेश यादव या शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करके आप आर अश्विन को रख सकते थे। ये एक बहुत बड़ा डिबेट बन सकता है आगे जाके। जी बिल्कुल बन सकता है, और क्योंकि वो बॉलर ही नहीं है, वो बैट्समैन भी है, और अच्छी पारियां खेली उन्होंने इंडिया के लिए, और टेस्ट मैच में काफी अच्छी खेली है। इवन कि वो तो आजकल T20 में कभी कभी वन डाउन भी खेलने आते हैं, तो इतना दमखम रखते हैं वो खेलने के लिए। तो मैं ये अब तो खैर नई 11 खेल रही है, अब हम क्या कह सकते हैं, तो कह ही सकते हैं। मगर अश्विन को डेफिनेटली 11 में होना चाहिए था, क्योंकि स्पिन आज टर्न दिखेगा, जैसा रविंद्र जडेजा की पहले ये जो लास्ट ओवर कराया उसमें जो उनका टर्न दिखा, तो मतलब लगा कि यहाँ पर टर्न होगी। स्पिन जैसा स्पिनर चाहता है वैसी बॉल जाएगी, क्योंकि पिच बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल अपने चेंज ओवर दिखा रही है। जैसे कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन अपना चेंज ओवर दिखा रहे हैं, ऐसी ही ऑस्ट्रेलियन पिच भी अपना चेंज ओवर दिखा रही है। उनको बिल्कुल ये कह रही है कि ये जैसा आप कराओगे वैसी ही जाएगी बॉल। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भी काफी डिप हुआ है। दे वर स्कोरिंग एट ऑलमोस्ट 4.2 एंड वो अभी 3.3 पे आ गया, 3.4 पे आ गया, क्योंकि उमेश यादव के बॉल पे ट्रेविस हेड ने एक बढ़िया सा चौका मारा है। एंड इट रियली लुक्स लाइक आज ये शायद दिन ट्रेविस हेड का हो सकता है। ही लुक्स वेरी सेट। उन्होंने अभी तक कोई भी रैश शॉट या गलत शॉट खेला नहीं है, एंड सारे ग्राउंडेड स्ट्रोक्स खेल रही है, कहीं भी तो बहुत ही बढ़िया शॉट। एग्जैक्टली एंड अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा फ्लाइटेड लॉफ्टेड शॉट खेला नहीं है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई देयर इज अ चांस ऑफ हिम गेटिंग कॉट। उल्टा टीम इंडिया आई डोंट नो व्हाई आर नॉट टारगेटिंग विद द शॉट डिलीवरी खेलने में उनको काफी दिक्कत हुई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस गेम। बट जितना भी मैं देख रहा हूँ, they are still giving him good length balls of which he is able to score very easily, and अगर वो ऐसे स्कोर करते गए तो वो अपना शतक तो आज के दिन में ही पूरा कर लेंगे। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड शतक भी देखना चाहेंगे अपना, और एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर स्कोर भी चाहेंगे। जिस तरीके से ट्रेविस हेड खेल रहे हैं 70 बॉल्स में 59 रन ऑलरेडी वो लगा चुके हैं, और स्मिथ भी 98 बॉल्स खेल के 33 रन बना चुके हैं। 169 रन बना चुकी है ऑस्ट्रेलियन टीम 3 विकेट के नुकसान पर, और उनके सारे ही प्लेयर्स काफी अभी खुश होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी पारी ये कैच हो सकती थी, मगर वेरी क्लोज या बाउंस हुई। आई थिंक ये रिप्ले में देखा जाएगा या बताया जाएगा। और अच्छी बॉल थी उमेश यादव की, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए थे स्टीव स्मिथ, और ये अच्छी आउटस्विंग और जस्ट शॉट शुभमान गिल वहां पर खड़े थे, तैनात थे, मगर वो जस्ट शॉट मतलब उनसे थोड़ा सी पहले ही बॉल ने टप्पा खा लिया, वरना वो बिल्कुल मुस्तैद बहुत ही अच्छे स्लिप के फील्डर माने जाते हैं। मुझे लगता है कि उमेश यादव ने ये बॉल थोड़ी धीमी गति से चली थी, नहीं तो ये डायरेक्ट शुभमन गिल के हाथ में पड़ जानी थी बॉल। बिल्कुल पेस मेरे को लगता है कम ही था, अदरवाइज वो स्लिप तक बिल्कुल आराम से कैरी होती बॉल। और यही थोड़ी सी इनको रणनीति अपनानी पड़ेगी बॉलर्स को, पेसर्स को, कि थोड़ा स्लो फास्ट, क्योंकि आपको थोड़ा माइंड से खेलना पड़ेगा, क्योंकि बॉल अब जिस पेस पे जा रही है वहाँ बैट्समैन को बिल्कुल समझ में आ रही है, क्योंकि वो आउटस्विंग डाल रहे हैं, तो आउटस्विंग भी अब स्मिथ का क्या है, स्मिथ बिल्कुल बॉल के पीछे आके खेल रहे हैं। उनको पता है कि अगर मैं अपनी जगह पे खड़ा होकर स्टडी खेला तो माइट बी देयर इज अ चांसेस कि वो एज ले और स्लिप पे कैच चली जाए, तो वो पूरा बॉडी को बॉल की रडार में लाते हैं, और फिर वो बैट को मिडल करते हैं बॉल से।
तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी रही है अभी तक स्मिथ की। अब ये पहली बॉल थी जो वो मिस कर गए और ये बिल्कुल विकेट के बीचों बीच आकर खेले हैं और ढीले हाथ से खेला और मेरे ख्याल से भी डॉट। अजय श्रीवास्तव जी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, वो बोल रहे हैं इनसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, ट्रेविस हेड से T20 वाली बैटिंग करवा दी। एंड केपी कह रहे हैं कि उमेश यादव इज की प्लेयर फॉर इंडियाज विकेटलेस सेशन। ये थोड़ा सार्काज्म भी आ गया है इसमें, डोंट नो व्हाई ही इज गेटिंग चांसेस। केपी कह रहे हैं उमेश यादव के बारे में। एंड हाँ, ये मुझे लग रहा है कि जो भी इंडियन फैंस है जो भी ये गेम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है रॉबिन पिछले 20 ओवर में इंडिया का परफॉर्मेंस काफी पुअर रहा है, निराशा ज्यादा रही है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको इस बात से एग्री करूंगा क्योंकि जो शामी और जो हमारे सिराज थे उनकी बॉलिंग लाइन से ये मैं कहूँगा कि सिर्फ बहुत दूर है ये बॉलिंग जो अभी तक करा रहे हैं उमेश यादव, क्योंकि उमेश यादव को थोड़ा सा मेरे को लगता है कि लय में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉल डाल रहे हैं तो वो बैट्समैन बहुत अच्छे तरीके से रीड कर रहे हैं उन बॉलों को और मतलब कोई चांस ही नहीं दे रहे हैं। जहाँ वो लूज डाल दे रहे हैं वो शॉट लगा देते हैं और चौका मिल जाता है। और आप ये देखिए कि टेस्ट में अगर 6 बॉल पे 4 रन भी हैं तो मोर देन इनफ है, ज़रूरत क्या है किसी भी जॉकिंग शॉट को खेलने के लिए। तो टेस्ट जैसी बैटिंग ट्रेविस हेड से करवाती है, ये बिल्कुल हम आपकी बात से T20 जैसी T20 जैसी बैटिंग करवा दी है, टेस्ट में करवा दी, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ अजय। और एक फैन ऐसा बोल सकता है और बोलना लगता है कि बिल्कुल बोलना भी चाहिए, क्योंकि आप अपना बिल्कुल दम दिल सब कुछ लगाते हैं कि आपकी टीम जीते और आपकी टीम जब परफॉर्म नहीं करती है तो आप ऐसे ही आपके अंदर से जो जज्बात हैं वो बाहर आते हैं। और अभी एक और कमेंट आया है फेरोज जाट का, जो काफ़ी देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं, कमेंट किए जा रहे हैं। इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं, अगर ये भी ना जीतें तो किसे बोलेंगे। ये बहुत ही सही सवाल पूछा है। बिल्कुल, प्लेइंग 11 इज बेस्ट 11, तो बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बिल्कुल जो टीम सिलेक्शन टीम है और जो हमारे कोच हैं बिल्कुल उनके ही मानो कि ये प्लेइंग 11 इज बेस्ट 11 होती है। अगर ये अच्छा नहीं खेल पा रहे तो ऑब्वियसली कौन खेलेगा। यहाँ पर सेशन फिर से समाप्त हुआ है। सो दिस इज नाउ टाइम फॉर टी और थर्ड सेशन था, थर्ड सेशन शुरू होना है, तो थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। ये तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि दिस सेशन कंप्लीटली बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। भले ही उन्होंने एक विकेट खोया हो, मगर जिस रन रेट से इन्होंने स्कोर किया है, दे आर राइट नाउ एट 170 फॉर 3 at the end of 51 overs. Steven Smith 33 of 102 balls, पूरा शीट एंकर का रोल उन्होंने निभाया है। ट्रेविस हेड 60 runs of just 75 balls. रविंद्र जडेजा has been the best bowler in this session. 7 ओवर में उन्होंने सिर्फ 12 रन दिए हैं, मगर कोई विकेट नहीं उठा पाए हैं, ज्यादा थ्रेटनिंग भी नहीं लगे हैं एक दो बॉल को छोड़ के। पर अगर हम बाकी सारे बॉलर्स के बारे में बात करेंगे तो आई थिंक बिसाइड्स सिराज को छोड़ के और कोई बॉलर इतना बढ़िया बॉलिंग नहीं कर पाए। इवन दो एट सम पॉइंट आई वुड से उमेश यादव ने एक अच्छा कमबैक किया था, मगर जितने रन्स उन्होंने गंवाए हैं, जितने रन्स शार्दुल ठाकुर ने गंवाए हैं रॉबिन, I think it has been very disappointing as far as the Indian bowling is concerned. Travis Head is heading to his 100 और 60 पे वो पहुंच ही गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मुझे लगा नहीं कि जो सेकंड सेक्शन रहा उसमें इंडियन बॉलर्स ने कुछ करके ऐसा कमाल दिखाया, क्योंकि एक विकेट ली है उसमें और कोई उसके बाद से ऐसा दबाव नहीं बनाया ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ऊपर कि आपने विकेट ली है। तो होता क्या है कि जब एक विकेट गिर जाती है टेस्ट में तो थोड़ा सा दबाव आता है बैटिंग साइड पर, बट वो दबाव दिखा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आकर स्मिथ बल्लेबाजी करते रहे और अपने आने वाले दूसरे बल्लेबाज ट्रेविस हेड को लगातार वो जो भी है कमेंट करते रहे, वो सजेशन देते रहे उनके कि किस बॉल को कैसे खेलना, कहाँ बॉल मूव कर रही है, उस हिसाब से वो खेलते ऐसा हुआ और ये बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो ये 170 पर 3 है ऑस्ट्रेलिया, 3 विकेट के नुकसान पर 170 रन। स्टीव स्मिथ हैं 33 रन 102 बॉलों पर 102 बॉल पर 33 रन बनाए हैं। ट्रेविस हेड 75 बॉलें खेलकर 60 रन। 51 ओवर हो चुके हैं आज के और अब मेरे ख्याल से रह गए हैं मुश्किल से 39 ओवर का सकता है। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं प्लेयर्स के साथ, और मगर
आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको एक एनालिसिस देने वाले हैं। हमारे क्रिकेट नेक्स्ट के साथी जो है वो अभी आपके साथ जुड़ेंगे। सौम्या कपूर इज गोइंग टू एंकर दिस शो व्हिच विल फीचर विनीत रामकृष्णन, जेमी ऑल्टर एंड अनिमेश नाथ, जो इस पूरे गेम और इन बाकी सारे सेशंस का एक आपको क्विक ब्रेकडाउन देने वाले हैं। हाँ आनंद से कि क्या मैं ही वो बेवकूफ हूं क्योंकि सोशल मीडिया खोलेंगे तो उमेश खिलाओ उमेश। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फैंस आर ऑन माय सोशल मीडिया टाइमलाइन। अब विनीत बैठा है वो बोलेगा यार इनकी मत सुनो, अपना काम करो। पर आई से इट अगेन, ये कलेक्टिवली राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, ये दोनों बंदे ने ये भूल गए कि भाई ये 5 दिन का मैच है। इनकी टीम सिलेक्शन earlier someone said 2 hours, श्रीनी नहीं, मैं कह रहा हूं 1 घंटे के ओवरकास्ट कंडीशंस में आपने ये टीम सेलेक्ट किया। और मैं दोबारा कहूंगा सौम्या कि जब रोहित शर्मा ने कहा कि 4 बॉलर लेना है, यार अब तो बॉलिंग करनी पड़ेगी। हु बैट्स, आई मीन हु फील्ड्स इन अ फाइनल? श्रीनिवास राव हमारे ग्रुप फॉर डायरेक्टर, वो 4 दिन से कह रहे कि भाई यहाँ पे धूप आधे घंटे के लिए आएगी, 1 घंटे जाएगी। इट्स नॉट हेडिंगली, इट्स नॉट सॉपिंग वेट, इट्स लंदन। बाय द टाइम Srini joined us, you could see, and I'm talking as a pale person, his face was burning from the sun. इतनी धूप थी वहां पे। आपने इन कंडीशंस में 4 सीमर्स खिलाए और आपका 4 स्पिनर, आपका 4th सीमर कौन था? डेनिस लिली था, उमेश यादव। 4 रन पर ओवर का आप ऑलरेडी आपने एक 4 ओवर पर रन ओवर आपने चुना जिनका नाम है शार्दुल। आपने नंबर 1 रैंक टेस्ट बॉलर को बाहर किया उमेश यादव के लिए। ये कहां की सोच है यार? वो क्या था गाना, ओ नादान परिंदे घर आ जाओ भाई, आ जाओ। Vineet has been the peacemaker between the fans and us. So I'll come to you, Vineet. What do you make of this decision? Because this is now going for a toss. This is absolutely going for a toss. Jokes apart, this partnership is gonna hurt us. Very much so. और जैसे like Jamie said, I mean it's a very bizarre decision not to play the number 1 ranked test bowler. Whatever the conditions may be, and it's I don't know, short term thinking in the sense कि यार आपने 1 घंटे पहले देखा कि overcast condition है, आप खिलाएंगे। It just defies a logic. And plus the fact is what Umesh Yadav, शार्दुल ठाकुर, चलो फिर भी उसने 2-3 बॉल थोड़ा अंदर डाला, 2-3 LBW निकाले, did his best, but then again if you are not having a Jasprit Bumrah and a Mohammad Shami there, right? तो अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, you needed somebody who could control, who had control, and उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर, दोनों के पास वो कंट्रोल नहीं है। Both of them are like Pandora's box. कौन सा शार्दुल ठाकुर turns up and which उमेश यादव turns up, you don't know. So all the more reason you needed somebody like a Ravichandran Ashwin, not as a wicket taker but as a holding bowler. आपको वो एक प्रेशर तो बना के देगा। The moment जहां पे पता है ये प्रेशर रिलीज कहाँ हुआ, जब शामी और सिराज का पहला स्पेल खत्म हुआ, you made a double change with सिराज and उमेश यादव and you saw हुआ क्या वहां पे। So I think again after that early wicket of Labuschagne by मोहम्मद शामी, वही हुआ कि वो प्रेशर आप नहीं बना पाए। रविंद्र जडेजा को इतना लेट आपने इंट्रोड्यूस कराया, what 1 hour after the second session रविंद्र जडेजा आया 4 ओवर 8 रन, तो he gave you that control. ट्रेविस हेड जहां 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से जा रहे थे, उन्होंने उसको खींच लिया। I mean you need that kind of a control there. ऐसा नहीं कि यार विकेट टेकर चाहिए या ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, you just needed control, and Ravichandran Ashwin on any given day would have given you much better control. I'm not talking about conditions, seam conditions है, ये है, ठाकुर को खिलाना था। Of course ठाकुर last time he played at the Oval 250 मारे, 3 विकेट था, मैच रनिंग innings या मैच रनिंग परफॉर्मेंस था उनका, but did not really make sense to have, doesn't actually make sense to have Shardul Thakur and Umesh Yadav both in the same playing 11. I just have a different opinion कि ये conditions को देख के decision लिया गया है। अनिमेश, इसके लिए आपके पास आऊंगा मैं। I guess ये पहले से decided था कि Ashwin is not going to play and India are going in with the four pacers and 1 spin combination. हाँ, ये मतलब कह सकते हैं कि ये पहले से, क्योंकि जिस तरह के रोहित शर्मा का बयान आ रहे थे, कल भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि हो सकता है कि हम अश्विन को ना खिलाएं और अश्विन इस टीम में आपको ना दिखें, तो ये मेरे लिए टफ होगा। आज भी जब टॉस के टाइम पे भी वो उनका सेम बयान था कि लगभग कि हमें मुश्किल है कि हमको चूज करना पड़ रहा है, लेकिन वो लगता है कि प्री डिसाइडेड था।
और मुझे लगता है कंडीशंस को पढ़ने में जिस तरह से पिछले आप WTC फाइनल 2023 में नाकाम रहे थे, आज इस बार भी वही नाकामी है और वही आपके लिए लैग करेगा सबसे ज्यादा। और अगर आप पिच कंडीशंस नहीं पढ़ सकते और आप इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं तो आप अगर हार भी ना तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात सामने नहीं आ रही, क्योंकि आप इतने बड़े मुकाबले में पिच कंडीशंस नहीं पढ़ पा रहे, तो यही लैग करेगा और ये आपको बैकफायर करेगा। जिमी, अगर अगर 4 पेसर्स के साथ जाना ही था तो व्हाई नॉट एन नॉट देन? अगर आपको ये डिसीजन, एक लेफ्ट आर्म पेसर, एक डिफरेंट तरीके का बॉलर आप क्यों नहीं लेकर उतरे अगर आप 4 के साथ जा ही रहते? Again, I don't care who that fourth bowler was, चाहे वो मतलब डेनिस लिली भी आ जाए, आपको इस पिच पे 4 पेसर्स की जरूरत नहीं है। ये मैं एक लौता बंदा क्यों हूं जो इस बात पे जोर डाल रहा है? Why is this Headingley? It's the oval. मैं मानता हूं कि 145 साल में ये पहली बार हुआ है, पर भैया जो लोग इस चीज को बार बार बोल रहे ना, वो प्लीज आके मुझसे बाहर मिले। It is the oval. It is June. The sun is going to come out. जब रिकी पॉन्टिंग कह रहा है कि भाई, and Chetan was right. रिकी पॉन्टिंग talking about कि आपको अश्विन की कमी महसूस होगी डे 3 पे। चेतन ने कहा by session 3 of day 1 you'll miss him. And Chetan and I don't get along on a lot of things, but he's absolutely right. आपको वो, विनीत said it, we're all saying, आपका फोर्थ बॉलर अगर ग्लेन मगराथ हो तब आप लाएंगे। आपका फोर्थ बॉलर उमेश यादव है। आई सेड बिफोर, उमेश और शार्दुल देयर लाइक फॉर लाइक, ठीक है मेरे हिसाब से, लेकिन एक की बैटिंग अच्छी। और देखना, मार्क माय वर्ड्स, ये चौथी बार मैं कह रहा हूं क्रिकेट नेक्स्ट पर, आपको शार्दुल से रन्स की जरूरत पड़ेगी और शार्दुल आपको रन्स लेके देंगे। उमेश यादव पहली बॉल पे काउ कॉर्नर पे छक्का मारेंगे, दूसरी बॉल पे उसकी गिल्लियां उड़ जाएंगी, यू विल फॉरगेट। तो जो लोग पिछले 3 दिन से कह रहे हैं उमेश को खिलाओ, भाई आप कौन से क्रिकेट देखते हो? वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड आई डोंट मीन टू बी, वी आर टॉकिंग अबाउट उमेश यादव। कंट्रोल वाला फैक्टर, विनीत ने सही कहा कि, एंड दिस इज व्हाई आई पुट देम लाइक फॉर लाइक, बट आई हैव ऑप्टेड फॉर शार्दुल क्योंकि ही कैन गिव यू अ बिट मोर कंट्रोल एंड ही कैन बैट। वो कंट्रोल कहां से आया? मैं दोबारा कहूंगा, उमेश यादव बॉलिंग करने आए फर्स्ट चेंज पे, एक डीप पॉइंट लगा था। क्या हम 2010-11 के टूर के बारे में हम बात कर रहे हैं? यहां पे चल क्या रहा है, राइट? सो यू कैन आस्क मी अबाउट फोर्थ बॉलर, फिफ्थ बॉलर, यू नीडेड 2 spinners and you have the number 1 ranked bowler, you benched him for उमेश यादव। कहां की थिंकिंग है भाई ये? Great, no, great. And coming to what now, जो नुकसान अब हो रहा है वो हो रहा है ट्रेविस हेड की नॉक से। You know, he is counter attacking and he's taking on the bowlers और बहुत easily वो runs आ रहे हैं अब। Vineet, what do you make of this? I mean, it's a good knock. I'm not taking anything away from Travis Head, but आपने उसको चांस दे दिया सेटल करने को, और उससे भी बड़ी चीज ये है कि आपने स्टीव स्मिथ जैसे बैट्समैन को चांस दे दिया है पूरा दिन खेलने का। Yeah, absolutely right. Travis Head, look, this is Travis Head 2.0 in a way. The version of Travis Head that you're seeing in the last 2 years, the way he has, transformed his game. He goes for his shots early on, and that was pretty much evident. और यहाँ पे एक चीज something that I also noticed was, you are playing to him, you're giving him those kind of deliveries. I mean, not just Umesh Yadav or a Shardul Thakur, even Siraj and Mohammad Shami were guilty of that. Like first, 20 runs, 28 runs he scored of 20 balls. Uske baad thoda wo thame the. There wasn't much of, I don't think, I mean, this was something that was also mentioned in the TV commentary as well. Short ball zyada use bhi nahi kiya tha. Whenever that short ball was used, Travis had thoda issue wahan pe lag raha tha. And only I think Shardul Thakur was somebody who was trying to do something. Otherwise, rest Umesh Yadav was just going through his motions. He just wanted to finish his overs, is what we felt. वही होता है यार, जैसे जेमी ने भी बताया, it's became such a good batting track and you don't have bowlers to control, तो runs आएंगे। स्टीव स्मिथ, मानव स्टबुस्काक are masters of doing this, वो घुमाते रहेंगे, रन निकालते रहेंगे यहाँ से, and in no time you will see they're reaching 20-30. Travis Head, on the other hand, his intent was clear, and it is not an intent that he showed right now. वो 2 साल से इसी intent से खेल रहे हैं. Even the last Ahmedabad test, Border Gavaskar Trophy, that was the same thing, that was the same approach that he came up with, and this was something that Indian teams should have known about it, and they just did not do much of it. Why did not they do much of it? Because they did not have the right personnel for that. And I'll come back to one last statement on the on Ashwin Umesh debate. The thing is, India did not play their best 11, and if the best 11 has to include the number 1 test bowler, that is Ravichandran Ashwin, irrespective of the condition. That was it. I mean, conditions so jo bhi ho, India faltered yet again, and they did not play their best 11. Yeah.
एक तरफ अनिमेश, एक तरफ हम बात करते हैं बैटिंग डेप्थ की, बैटिंग डेप्थ होनी चाहिए, टेल हम लोग की अब थोड़ा सा रन्स कंट्रीब्यूट करने लगी है, एक तरफ आप टोटली एक डिफरेंट लाइनअप लेके उतर जाते हैं। आई मीन दैट्स बिजार। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे, एक कमेंट है विनीत कुलकर्णी का, ऑस्ट्रेलिया, इफ ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट फॉर 250 देन इंडिया कैन विन। ऑस्ट्रेलिया 300 या 400 पार गया देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई गेस एनीथिंग अबव 250 इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो, क्योंकि अगर आपको कंडीशंस आज सुबह वाली एक दो घंटा भी मिल गई, अगर इंडियन बैटर्स को वो नेगेट करने के लिए मिल गई, वी आर गॉन, वी आर आउट। ये नेगेट नहीं हो सकती, जिस तरह की कंडीशन सुबह थी वो नेगेट नहीं हो सकती। मतलब मिचेल स्टार्क है, स्कॉट बोलैंड भी है, एग्जैक्टली स्कॉट बॉलैंड भी है। और फिर इस फैसले को लेकर जो मेरा कहना है कि अगर आप फिर से ये इसलिए कि लाइनअप आप डेप्थ ढूंढना चाह रहे हैं, इसलिए आप जडेजा को लेकर आए हैं, आप वहीं से अपना मोमेंटम खो देते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चल जाता है कि आपको अपने कुछ जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उन पर आपको भरोसा नहीं है। और जब आपको इन अपने टॉप ऑर्डर पर भरोसा नहीं, जहाँ पे आपके पास पुजारा है, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा खुद हैं, और कल जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे अभी वो जिस तरह से जवाब दे रहे, बहुत प्रेज हो रहा था, बहुत तारीफें हो रही थी कि कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लेकिन आपका वो जैसे ही आप तुरंत अपना प्लेइंग 11 चुन रहे हैं, वहां पे आप एक ही रीजन दे रहे हैं कि आपको जडेजा चाहिए क्योंकि वो बैटिंग ऑर्डर करना है। अगर वो 6 बैटिंग नहीं कर पा रहे तो रविंद्र जडेजा कुछ नहीं करने वाले वहां पे। तो वो आप सारी उम्मीदें रविंद्र जडेजा से क्यों लेके जा रहे हो, और वहां पे आप अपना सबसे टॉप टेस्ट बॉलर ड्रॉप कर रहे हो, तो ये यहीं से आप मोमेंटम खो देते हैं, यहीं से आप कॉन्फिडेंस खो देते हैं। लेकिन अनिमेश यहाँ पे एक बात ये भी है ना, अगर आप बैटिंग डेप्थ की बात ही कर रहे हो तो फिर अश्विन को भी ले ही लो। अगर आप डेप्थ की बात, आप उमेश यादव को ले रहे हो, वो क्या 2 छक्के, बिल्कुल सही कहा जेमी ने, वो काउ कॉर्नर पे एक छक्का मारेगा और फिर काउ कॉर्नर पे आउट हो जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दैट जजमेंट। तो मेरे को ये बहुत बिजार, एक्चुअली बहुत बिजार डिस्कशन लगता है कि यार आप एक बैटिंग डेप्थ बढ़ा रहे हो, फिर आप एक प्रॉपर बॉलर को लेकर आ रहे हो जिसका कंट्रोल नहीं है। आई मीन आप, और उसमें रिजल्ट क्या निकला कि आई एम मोर कंसर्न अबाउट जेमी, आई एम मोर कंसर्न अबाउट द वे स्टीव स्मिथ इज बैटिंग। ही स्प्लिट ओवर 100 डिलीवरीज, ही इज 33 नॉट आउट, and we all know what he can do and what he has done at this ground. बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन हने वो सेट हो गया। और ट्रेविस हेड ना, मैंने कल भी कहा था, ट्रेविस हेड तो बेसबॉल तो अभी 1.5 साल पहले आया। ये जो कर रहा है, लाइक विनीत सेड 2.0, ये तो काफी टाइम से कर रहा है। ट्रेविस हेड और ऋषभ पंत ये तो बेसबॉल बहुत पहले से कर रहे हैं। बस अफसोस की बात है कि किसी मीडिया वाले ने कुछ नाम नहीं दिया उनकी बैटिंग पे, राइट। ही इज सेट, यस द स्ट्राइक रेट इज कम डाउन टू 80 बट इट्स स्टिल 80 ना। अब देखो जडेजा, ठीक है मैं मानता हूं वो बहुत लेट आए भाई, पहले ओवर में उसने बीट किया, लीडिंग एज आया। दिस इज सेशन 2 ऑफ डे 1। डे 4 पे नेथन लायन, भाई नेथन लायन ने आपको पर्थ में क्या नचाया है, ठीक है। नेथन, यू वांट टू बैट फर्स्ट, आई मीन बैट फोर्थ ऑन दिस। भाई रफ्स बनेंगे, मिचेल स्टार्क आएगा, जडेजा he's already moved 7 overs, control, he's 1.71, Ashwin would have gone for 1.21. These two would have, I'll say it again, अश्विन यहाँ पे आके 5 विकेट नहीं लेता, वो 1 विकेट लेता, वो लाइकली स्मिथ होता, जो भी ऊपर उस 1 विकेट का मतलब 3 विकेट कहीं और से होता। You needed that control and Jadeja is showing that control यार। People were saying on the show कि he's not going to bowl more than 6 overs in the match। मैं कह रहा हूँ वो आज 15 ओवर डालेगा वो। And it's also about line and length। अभी अगर आपने देखो लास्ट में एंड होते हुए तो एक बॉल स्टीव स्मिथ का आउटसाइड एज लिया और कैरी नहीं हुआ शुभमन गिल के पास। एंड कमेंट्री में यही बात हो रही थी कि दीज आर द एरियाज यू नीड टू स्टिक टू। आप बहुत इराटिक हो रहे हो उस समय बॉलिंग करने। मतलब मैं ट्रेविस हेड के अगेंस्ट जो बॉलिंग मैंने देखी है सारे पेसर्स की, 2 शॉट 2 वाइड, पूरा दिन है उनके पास वो शॉट खेलने के लिए। और जिस तरीके जो बैट्समैन 70-80 बॉल खेल चुका है यार, आप उसको वैसे वो बॉल डाल सकते हो। Vineet, your take on this? My take here is we talk a lot about batting partnerships like Smith and Travis Head क्या partnership है, अच्छा कर रहे हैं। Test cricket में bowling partnership also matters a lot. When Jadeja is bowling in tandem with an Ashwin, you know something is brewing, the plan is working. When Siraj and Mohammad Shami are bowling together, you know something is happening. Both of them are feeding off each other. यहाँ पे आपको वो tandem नहीं दिख रहा है। रविंद्र जडेजा के 7 ओवर 12 रन, फैंटास्टिक स्पेल, बट एट द अदर एंड यू आर जस्ट प्रेइंग द बॉल, नॉट जस्ट प्रेइंग द बॉल, यू आर जस्ट एज यू मेंशन एराटिक। वो एक डिसिप्लिन नहीं है। द बॉल, सर्टेन बॉल्स, आई मीन सेम लेंथ पे थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा आपका लाइन बिगड़ रहा है, लेंथ सेम ही हो रहा है। सो देयर इज नॉट प्लान, देयर इज नो प्लान। अगर प्लान होगा तो भी उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। बीट उमेश यादव who's had an off day clearly,
Shardul Thakur, on the other hand, look, I'll give props to him saying that he was trying something. थोड़ा आगे कराया, थोड़ा short भी कराया, एक full delivery भी डाली जो I think Smith बहुत मुश्किल से उन्होंने negate किया. But then again, it was experimental to a certain extent, and you probably don't need or want to see that experimentation happening on a first day of a test match, right? You need to stick to a certain plan, and I think that plan is somewhere India are losing out on that. I wouldn't go to that extent of saying that India have lost this game or anything. It's just the first day, just 3 sessions. A lot more, overs and play is left there. But yeah, definitely India had the chance. Especially after Mohammad Shami picking up that early wicket of Labuschagne, there was definite chance to squeeze in, not let Steve Smith settle, not let Travis Head just go berserk like the way that he did. But then again, India does not have the right personnel to just contain this form. And look, it's going to be a good batting track. Second day would be even better if the weather is clear. Yeah, I'll just quickly take your closing comments, all of you three. Jamie, ठीक है, अब जो डिसीजन ले लिए, जो 11 खिलाड़ी, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? इस सेशन में क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए? भाई आपको बाकी के विकेट्स लेने पड़ेंगे. आई जस्ट बोरिंग सम इंस्पिरेशनल स्पेल शायद नहीं होगा. हो सके आप 2-3 विकेट ले लो. आई एग्री विद विनीत, ये मैच खत्म नहीं हो चुका है, लेकिन 300-320 तक पहुंच गया तो फिर खत्म हो ही जाएगा. सो होप यू टेक 7 विकेट्स मैन, एंड गुड लक डूइंग दैट. Yeah, Vineet. Your call. Look, this session has to be about Shami, Siraj, and Jadeja bowling. I don't want to see Yadav and Shardul Thakur both bowling. These three have to get something, at least 3-4 wickets. Between them, they need to do that. Ravindra Jadeja to do the containing job, and Siraj and Shami just going full tilt and hoping to get some wickets. Animesh, your take on this finally. नहीं, अब तो सिर्फ उम्मीदों पे दुनिया कायम है. तो वही है जो विनीत ने कहा कि अब तीनों से ही उम्मीद है कि जडेजा और सिराज और शामी कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि अब इंडिया के पास वैसा भी कुछ नहीं है. जो धोनी की कप्तानी में हमें देखने को मिल जाता था कि कोई एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाता था स्पिन के रूप में. रोहित शर्मा उस समय स्पिन कर देते थे आके. अब हमारी टीम कॉम्बिनेशन में एक ऐसा कोई भी बॉलर नहीं है जिसको हम एक्स्ट्रा बॉलर की तरह यूज कर सकें. तो वो चीज भी है, वो लैग भी करता है. और अभी जब खैर ये कमियां तो बात की बात है, जो सबसे बड़ी कमी है कि जब आप अपना सबसे बेस्ट टेस्ट बॉलर नहीं खिला पा रहे, तो वो चीजें आपको इम्पैक्ट तो दिखेगा. और अगर ये सच में, अगर ये कल पारी खिसकी चली गई और ये 400 तक पहुंच गई, तो मैच बहुत हद तक टीम इंडिया के हाथ से जाता हुआ दिखाई देगा. बिल्कुल. गलतियां जो हो गई हैं वो उसको सुधार तो नहीं सकते. वी कैन जस्ट होप दैट द पेसर्स डू समथिंग एंड पिक अप क्विक विकेट्स. वेल, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस सेशन. वी विल गेट बैक टू यू अगेन. थैंक्स.
नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। और ये तीसरा सेशन स्टार्ट हो गया। जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्मिथ काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। 110 बॉलों पर 34 रन बना चुके हैं और ट्रेविस हेड 81 बॉलों पर 70 रन पर। ट्रेविस हेड हालांकि काफ़ी आक्रामक खेल रहे हैं। उमेश यादव को बॉल दी गई है। उमेश यादव बॉल कराते हैं और उमेश यादव ने पहली बॉल पर चौका खाया, दूसरे को लेग बाय पर रन दिया है। अपनी तीसरी बॉल लेकर 11वीं ओवर की तीसरी बॉल लेकर उमेश यादव स्मिथ को। अच्छी बॉल थी, वही लेग बॉल बिल्कुल ऑफ स्विंग के बाहर और ऑफ स्विंग के साथ ऑफ स्विंग कराई उन्होंने। और यहाँ पर दर्शक बैठे हैं, वो कह रहे हैं विकेट बॉल प्लीज। ये तो सारे इंडियन फैंस चाह रहे हैं विकेट बॉल कौन सी होगी। उमेश यादव से काफ़ी अपेक्षा कर रहे हैं रोहित शर्मा, कैप्टन रोहित शर्मा, क्योंकि उनके बार बार वो बोल रहे हैं कि शायद यहाँ से चेंज ओवर मिले और इंडिया को विकेट और मिले। हर सेशन में एक विकेट मिल जा रही है, तो शायद ये सेशन में इंडिया को एक विकेट देकर जाए। हम अपने व्यूवर्स को चाहेंगे कि वो भी अपने कमेंट शेयर करें हमारे साथ। अमित शर्मा है कमेंटेटर बॉक्स में। और अमित शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जैसे कि हमने एक वोटिंग के लिए भी डाला हुआ है कमेंट्स में कि आप वोट कीजिए कि आप कितना स्कोर यहाँ से देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट इनिंग में। तो हमने जैसे आपको ऑप्शंस दिए हैं बिलो 300, 300 to 350, 350 to 400 और 400 प्लस। ये हम अपने व्यूअर्स को भी कहेंगे कि वो भी अपने शेयर करें कि आप क्या सोचते हैं कि कितने रन फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया इंडिया को देगी चेस करने के लिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसे बचे हुए 36 ओवर आज के सेशन के और 90 ओवर पर डे है, तो 54 ओवर हो चुके हैं। तो अमित शर्मा जी, आप बताएं कि आप आज के इम्पैक्ट बॉलर आपको लगता है अभी एज ऑफ नाउ आगे कोई हो सकता है? उमेश यादव बॉल करा रहे हैं, हो सकता है रविंद्र जडेजा ही करेंगे। एक स्पिनर से खिलाया है इंडियन टीम को प्लेइंग 11 में और WTC फाइनल में। तो आप क्या सोचते हैं कि एक ही स्पिनर काफ़ी है या दो स्पिनर होने चाहिए? 4 पेसर के साथ इंडियन टीम उतरी है WTC फाइनल में। गुड इवनिंग लिसनर एंड व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये टेस्ट मैच है और इसे टेस्ट मैच की तरह ही इसका टेस्ट होना चाहिए। अगर ये वनडे की तरह बन जाएगा और इसमें जल्दी विकेट निकल जाएंगे तो शायद मुझे लगता है 4 दिन के अंदर ही मैच खत्म हो जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये स्कोर 300-350 के आसपास होगा। ये जिस हिसाब से अभी ऑस्ट्रेलिया टीम खेल रही है और ये अपने मैदानों पर खेलने का इनका अनुभव काफ़ी अच्छा है। यहाँ शामी को बॉल थमाई गई है और शामी ने बॉल कराई और अच्छा स्विंग मिला इस बॉल पर। मतलब बॉल बेसिक से काफ़ी वाइड थी बट अच्छा स्विंग हुआ, आउट स्विंग कराई है उन्होंने। और मैं यही चाहूँगा कि इंडिया को एक विकेट मिले ताकि थोड़ा सा मोमेंटो वापस आए, क्योंकि अभी हम हाल ही में एक हफ्ता पहले T20 वर्ल्ड कप देखते आए हैं, तो सबका थोड़ा सा रहता है व्यूवर्स का और हमारा भी और जो जितने भी तमाम व्यूवर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड कि थोड़ा जल्दबाजी वाला गेम पसंद करते हैं। और टेस्ट रियल क्रिकेट जो है वो टेस्ट को कहा जाता है, ये हम सबको पता ही है। आई थिंक जेंटलमैन गेम तभी शुरू हुआ था जब टेस्ट मैच की शुरुआत हुई थी। अगर जेंटलमैन गेम खेलना है तो इसको उस तरीके से लेना भी चाहिए। मुझे लगता है कि फास्ट क्रिकेट देखने वाले शायद इस पर इतना मज़ा ना ले पाए, लेकिन मुझे लगता है इस गेम का अपना ही एक आनंद है। हर व्यक्ति चाहता है कि हर बॉल पे ही एक विकेट मिले और अगर हर बॉल पे विकेट मिलेगा तो फिर T20 और इसमें अंतर क्या रहेगा? यहाँ पर आपका पेशेंस का बहुत टेस्ट का मतलब है आप पेशेंस टेस्ट और हर बॉल
बैट्समैन को इस तरीके से खिलाई जाएगी कि उसे अपने आप को रोकना है शॉट मारने से, और जितनी देर तक अगर ये बैट्समैन खेलेंगे उतना बड़ा स्कोर ये बना पाएंगे। तो 350 का आंकड़ा मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया आराम से अचीव कर लेगी। और रही बात भारतीय बॉलर की, ये बॉलिंग तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और ठीक है अभी तक का स्कोर ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्कोर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। 3 विकेट हो चुके हैं, इंडिया टीम ने अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया हुआ है, और विकेट की बात है वो एक बार अगर झड़ी लगती है तो फिर वो लगती चली जाती है, क्योंकि अगला बैट्समैन जब तक सेट होगा, जब तक वो पहुंचेगा क्रीज पे समझेगा, तब तक यहाँ पर बॉलर को चेंज किया जा सकता है। और यही आपके कैप्टनसी की मेन बात कही जाएगी कि कैप्टन इस तरीके यहाँ पे क्या निर्णय लेता है। और अभी जिस तरीके से विकेट आए हैं, ये दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम हो गया है, अनुभव भी है, अच्छे बैट्समैन है। तो अभी शामी, क्योंकि शामी भी अपने आप में एक अनुभवी बॉलर है, देखना होगा कि बॉल और बैट के बीच में कितनी देर तक ये जंग छिड़ती है और अगला विकेट हमें इंडियन टीम की तरफ से कैसे मिलता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमित, और यहाँ पर शामी फिर से, और ये इस बार इन स्विंग थी, बाल बाल बचे, और जैसा मैं पहले भी कह रहा था, स्मिथ थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इंडियंस के लिए, क्योंकि वो बॉल को बिल्कुल भी अपने से आगे नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बॉल की लय में आके पूरा बॉडी बॉल के बीच में लाके खेल रहे हैं, जरा सा भी मौका बॉलर्स को नहीं दे रहे हैं। इंडिया, मैं यही कहूँगा, ऑस्ट्रेलिया 184 रन बनाकर 3 विकेट पर है, और अमित शर्मा हमारे साथ हैं। अमित शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आप इस मैच को किस पलड़े में देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो इतनी विकेट भी नहीं गई है, जैसा हम देख रहे हैं 3 ही विकेट गई हैं, और ऑलमोस्ट थर्ड सेशन शुरू हो गया है, और 184 रन बना लिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और 300 आप कह रहे हैं, 300 350 के बीच में, मेरे को तो ये 400 प्लस के आसपास लग रहा है, क्योंकि अगर कल तक आज अगर इस सेशन में खत्म होने तक, डे एंड तक, अगर ऑस्ट्रेलिया ने अगर मैक्सिमम 1 विकेट भी और गवाई, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं 300 प्लस के अप्रॉक्स जरूर ले जाएंगे इस पारी को। स्कोर बोर्ड में मेरे ख्याल से कल वो थोड़ा सा फास्ट खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेकंड डे में वो चाहेंगे कि जितना वो स्कोर जल्दी से बना लेते हैं, तो वो इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल में डालने वाली बात होगी। बिल्कुल सही बात है, ये मैच मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि किसका बल्ला भारी है, क्योंकि अभी तक फर्स्ट बैटिंग है, और सेशन पे डिपेंड करता है। अगर ये सेशन ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में जाता है और अगला सेशन इंडिया के पलड़े में जाता है, तो अभी बात बड़ी अजीब सी होती है। तो शुरुआत में ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रन तो नहीं है, अग्रेसिव रन नहीं है, पर इंडिया को यहाँ पर विकेट की दरकार तो है। यहाँ पर कम से कम इंडिया को 2 और विकेट चाहिए इस सेशन के अंदर, तभी जाके ये बात कही जा सकती है कि हाँ पल्ला बराबर है, वरना अभी तो मुझे थोड़ा झुकाव ऑस्ट्रेलिया की तरफ लग रहा है, क्योंकि बैट्समैन सेट हो चुके हैं और दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से बॉल को पिक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस साझेदारी को तोड़ना मैं जरूर चाहूँगा कि इंडियन बॉलर्स इस साझेदारी को ब्रेक करें। उमेश यादव लगातार रोहित शर्मा कोशिश कर रहे हैं कि उमेश यादव इस विकेट में ब्रेक थ्रू दिलाएं, और ताकि इंडियन बॉलर्स और ऑस्ट्रेलिया पर थोड़ा दबाव डाला जाए। देखने वाली बात होगी, उमेश यादव और रविंद्र जडेजा ही विकेट लेस रहे हैं अभी तक, अदरवाइज जो हमारे 3 और पेसर हैं, शार्दुल, शामी और सिराज, तीनों ने ही 1-1 विकेट लिया, और तीनों विकेट अभी तक हमारे ओपनिंग पेस बॉलर्स ने लगाए हैं। शार्दुल को अभी नहीं लगाया गया है, ये मुझे लगता है कि उमेश यादव से थोड़ा सा वो चाहेंगे रोहित शर्मा की आप एज अ फोर्थ पेसर बॉलर खिलाए गए हैं, तो आपसे भी वो एक टिकट की दरकार रख रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कैसे अब इस सेशन में क्या होता है क्या नहीं होता है। 140 की स्पीड से उमेश यादव बॉल डाल रहे हैं। इस वक्त पिच भी उतना शायद साथ नहीं दे रही है बॉलर का, थोड़ा सा स्विंग जो शुरुआत में मिला था वो स्विंग थोड़ा सा कम होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद स्पीड भी हल्की हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो बाउंस जो पहले ओपनिंग में जब शुरुआत में बॉलिंग करी थी स्टार्ट इंडियन बॉलर्स ने, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था ऑस्ट्रेलियंस के लिए उसको पढ़ पाना, मगर अब तो मतलब मानो कि वो बाउंस पूरी डाल भी रहे हैं, तो इजीली वो ज़्यादा वो चीज़ जा नहीं रही है, और बहुत आराम से बैट पे आ रही है। बैट का फ्लो आप देख सकते हैं, स्मिथ और ट्रेविस हेड दोनों का ही फ्लो एकदम ऐसे जा रहा है कि
यू कांट से कि उनको बैटिंग या मतलब बॉलर्स का रिलीज करना या बॉलर्स के हाथ से बॉल छूट के पिच से पता चल जाता है कि क्या है। पर मुझे आपको नहीं लगता रोबिन कि ये जो पिच है ये इतनी जल्दी अगर इस तरीके से बिहेव करेगी तो आगे चल के दूसरे या तीसरे दिन ये किस तरीके का बिहेवियर हो जाएगा इसका? जी बिल्कुल, मैं पहले भी कह रहा था कि बिहेवियर का पता तो डे गुजर जाने के बाद ही होता है, तो नेक्स्ट डे क्या बिहेवियर रहेगा या थर्ड डे क्या बिहेवियर रहेगा। मैं यही चाहता हूँ कि इंडिया जब बैटिंग करे तो मिडल ऑफ डे में आया उसकी बैटिंग, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मैं ये कहूँगा कि डे खत्म होने के बाद में आए तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा है ये बॉल जो डाली है उमेश यादव ने, वो बॉल ने बाउंस नहीं है बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ नी के बिल्कुल नीचे रही। और हमारे एक व्यूवर्स हैं दिनेश दवे, उन्होंने कहा है कि जैसा प्रतीत हो रहा है उनको लगता है कि 400 प्लस ही बनाएगी ऑस्ट्रेलिया। और यहीं पर हमारे एक और व्यूवर्स हैं अंकल सैम, वो कह रहे हैं वाई नो हार्दिक पांड्या एंड अश्विन, वाई कोटा यादव प्लेइंग यूजलेस बॉलर। और ये एक फैन की आवाज़ है, और फैन जब किसी अपनी टीम को फॉलो कर रहा होता है तो वो यही चाहता है कि उसकी टीम अच्छा करे। तो सभी फैंस इंडिया के यही चाहते हैं कि हमारी जितनी भी टीम प्लेइंग 11 खेल रहे हैं वो सब बहुत अच्छा खेलें। मुझे लगता है कि अभी रोहित शर्मा शायद ये 10 ओवर के बाद एक फैसला ले सकते हैं कि वो अपने जो कहते हैं ट्रिप का इक्का जडेजा उसको दोबारा एक बार लेके आए और यहाँ पर बॉल कराएं, क्योंकि मुझे पिच स्लो होती नजर आ रही है। यहाँ पर स्पिनर के लिए क्या उसमें से निकलता है तो थोड़ा शायद 10 ओवर के बाद फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लाना चाहिए, मगर अभी दोनों ही पेसर लगा हुए हैं। और हालांकि शामी को वो जो भी बैट्समैन खेल रहे हैं उनको वो बीट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बाउंस डाल रहे हैं या स्विंग करा रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। और ये शायद यही मेरे ख्याल से नीति रहे या कहीं की ये दिमाग रहे रोहित शर्मा का कि क्यों ना हम अपने पेसर्स को यूज़ करें, और वही पेस यूज़ करवा रहे हैं। हालांकि इकोनॉमी जो रन रेट है वो काफ़ी नीचे आ गई, 329 की है। अगर इस तरीके से खेले तो मेरे ख्याल से 2 दिन में ही 400 बना पाएंगे जैसा ये खेल रहे हैं। और स्कोर मुझे 350 ही नजर आ रहा है अभी भी मैं कहूँगा, लेकिन ये बहुत बेहतरीन कट शॉट मारा है स्क्वायर कट पर, और मेरे को लगता था कि शायद ये कैच हो सकती थी, क्योंकि ज़्यादा हाइट नहीं थी बॉल की, और मेरे ख्याल से फील्डर के आसपास से ही गई है। सभी थोड़ा सा हैरान हुए कि शायद ये कैच हो सकती थी, मगर बिल्कुल ये बॉल बैट्समैन के खाते में गई 4 रन। और जिस तरीके से जोखिम लेके उन्होंने कट शॉट खेला तो वो बिल्कुल फील्डर के जस्ट ऊपर से ही गई है, शायद माइट भी हाथ भी लगा है, बट कहीं की काफ़ी तेज शॉट थी और 4 रन मिले। इसी के साथ 73 रन पर ट्रेविस हेड पहुंच गए हैं। और ऐसी गलतियां माफ नहीं की जाती, क्योंकि अगर इतने अच्छे सेट बैट्समैन को अगर आप इस तरीके छोड़ देंगे तो आगे चल आप स्कोर बढ़ा ही देंगे, छोटा स्कोर देंगे। जी बिल्कुल, और जब अपने फील्डर किया हुआ वही जगह पर तो वो उसके उनके इस पास से तो थोड़ा ज़्यादा दुख होता है। यहाँ पर इंडियन बॉलर वो कर रहे हैं कोशिश को पूरा अंजाम तक ले जाने के लिए पूरी टीम एफर्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि बॉलर अकेला ही सब कुछ कर सकता है। कैच को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर अपनी मोराल को बूस्ट रखी इंडियन टीम और नेक्स्ट अच्छी बॉल अच्छी डिलीवरी की तलाश में रहे। और मैं यही चाहूँगा कि शामी कुछ ना कुछ करे। फिर अच्छी बॉल थी यहाँ पर, फिर थोड़ी शॉट पड़ी और फील्डर से थोड़ा सा पहले बाउंस कर गई। विराट कोहली थे वहाँ पर, अच्छी बॉल डाल रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि बेशक से चौका आया, मगर अभी तक चौका के रखा दोनों ही बल्लेबाजों को शामी ने। यस, इस बॉल ने बहुत ही जोर से चौकाया, और क्योंकि पिछला शॉट भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था, इसीलिए वो कैच पहुंचते पहुंचते हाथ से फील्डर के हाथ से निकला। तो पिछली बॉल और ये बॉल देख के लग रहा है कि शामी अब शायद शबाब पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो आउट स्विंग तो कराते ही कराते हैं, उसके साथ वो इन स्विंग भी कराते हैं। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित शर्मा आप। जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पर ब्रेक थ्रू मिलने वाला है इंडिया को। और जिस तरीके की अगर ये बैट्समैन गलतियां कर रहे हैं और अगर फील्डर ने गलतियां नहीं की तो जरूर मुझे लगता है कि एक विकेट जल्दी मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था, इस सेशन में कम से कम 2 विकेट की दरकार है इंडिया को, और 2 विकेट मिलते ही पड़ला बिल्कुल अपोजिट हो जाना है। जी बिल्कुल, विन प्रेडिक्ट
सेक्टर आया हुआ है सामने जिसमें ऑस्ट्रेलिया 68% विनिंग बताई जा रही है, 32% इंडिया बताई जा रही है एज ऑफ नाउ। बट ये आंकड़े कभी भी चेंज हो सकते हैं, एनालिसिस हर बॉल पर चेंज होते हैं। और मुझे यही लगता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर होम ग्राउंड पे हो रहा है तो वहाँ के फैंस भी उनको सपोर्ट करेंगे ना, और ये चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जीते। इसलिए अगर ये प्रोडिक्शन 68% उनकी तरफ फेवर में जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी इंडियन फैंस तो ढंग से देख भी नहीं रहे हैं। अगर वो पूरी तरह से अगर वोटिंग कर देंगे तो मुझे लगता है 98% तक इंडिया को वो जिता भी देंगे। जी बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है, मगर आंकड़े अभी कुछ और ही कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट के नुकसान बढ़ाने वाला जिसमें 36 पर नाम खेल रहे हैं। स्मिथ 127 गेंदें खेली उन्होंने और ट्रेविस हेड 77 रन पर खेल रही है 86 गेंदों में। हालांकि ट्रेविस हेड थोड़ा अटैकिंग खेल रहे हैं। मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल दिख रही है, मुश्किल दिख रही है इंडिया के लिए। फिर से उमेश यादव आए हैं, उमेश यादव की बॉल डाली और वो ट्रेविस हेड उसको हिट करना चाहते थे, पुल करना चाहते थे बेसिकली, और वो मिस हुई, कोई रन नहीं। ये साझेदारी तोड़ना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, अगर इंडिया इस मैच में पकड़ बनाना चाहती है। ये अच्छी बाउंस थी, यहाँ पर मिस शॉट खेला, लूज बॉल थी, वो कह सकते हैं स्लो डिलीवरी थी। 77 रन पर खेल रहे हैं ट्रेविस हेड। फिर से उमेश यादव बॉल लेकर, अच्छी लॉन्ग बॉल थी मगर उसको अच्छी तरीके से खेला है ट्रेविस हेड ने। 2 रन के लिए वो बोल रहे हैं, वो 2 रन पूरे ले भी लेंगे आसानी से। ये देखने वाली बात होगी मैच किस तरह जाता है। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स अपना पक्ष दे सकते हैं कि वो किस टीम को जिताना चाहते हैं, किस टीम को नहीं जिताना चाहते हैं, या जैसा इंडिया खेल रही है तो वो किस बॉलर को चाहते हैं कि उसको लाए और कुछ विकेट ले जाए। तो व्यूअर्स, मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ बने रहें, बोलें कि आपको क्या लगता है। जैसा कि मैं पहले देख पा रहा था कि 58% आई थिंक बिलो 300 सबने गैस किया था, मगर धीरे धीरे वो परसेंटेज नीचे आ रहा है, क्योंकि जैसा ऑस्ट्रेलिया खेल रही है ये मानो थोड़ा सा सबको पता चल गया कि 300 प्लस वाला गेम होने वाला है। सब बिलो 300 से परसेंटेज घट रहा है, और दोनों ही बल्लेबाज मतलब बिना किसी जोखिम के बहुत अच्छे तरीके से खेलते हुए सिंगल तो मानो यूं निकाल लेते हैं जैसे कुछ ही नहीं, प्रैक्टिस मैच चल रहा है। उमेश यादव लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग के साथ, कुछ खास बॉलिंग हो नहीं रही है उनकी, और क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए, बस यही हम दुआ करेंगे कि जल्दी से इंडिया एक विकेट ले, क्योंकि इस मैच में आपको अगर बने रहना है तो विकेट आपके लिए एक ज़रूरी बन जाती है। एक हमारे मैथ मैजिशियन व्यूवर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ऑसीज आर विनिंग। अगर अभी के हालात देखे जाए तो ये कहना ठीक रहेगा, मगर यू नेवर नो कि कब कौन सी बॉल क्या कर जाए। जैसा कि हम कहते हैं कि क्रिकेट में लास्ट बॉल तक आप कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और यहाँ पर मैं यही चाहूँगा कि राहुल द्रविड़ कोच कुछ सजेशन दें हमारे इंडियन कैप्टन को, या कुछ ऐसा करे जिससे कि एक विकेट लेने में जो भी हमारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं वो विकेट लेने में थोड़ी सी आसानी हो और विकेट ले पाएंगे। स्टीव स्मिथ का बहुत ही अच्छा पॉइंट की दिशा पर शॉट और 4 रन। मानो कि उमेश यादव तो जैसे जूझ ही रहे हैं, वो लगातार अब ये मेरे को लग रहा है कि गियर चेंज कराया है ऑस्ट्रेलियन टीम ने, और इजीली वो अपने 200 रन के पास, 200 से 1 रन दूर ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही अच्छा शॉट मारा उन्होंने एकदम बिल्कुल पॉइंट पर, और बहुत आसानी से बॉल, मतलब मेरे को लग नहीं रहा कि वो पेस जैसा उमेश यादव सोच रहे हैं वैसा मिल रहा है, तो इजीली वो बॉल उन तक आती है और वो इजीली उसको बहुत अच्छी तरह से कट कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ऐसा लग रहा है। ये आउट स्विंग डाली मगर काफ़ी दूर थी, तो उसको लेफ्ट किया स्टीव स्मिथ ने। मेरे को लगता है यहाँ पर स्पिनर लगाने की थोड़ी सी मेरे को लगता है कि ज़रूरत है। 60 ओवर हो चुके हैं और 199 रन, यानी कि 200 से 1 रन
दूर है अभी ऑस्ट्रेलिया, 3 ही विकेट गंवाए हैं और बहुत ही अच्छे स्टेज पर है इस समय ऑस्ट्रेलिया। स्टीव स्मिथ 40 पर पहुंच गए हैं 130 बॉलें खेलकर, कह सकते हैं 130 ओवर यानी कि 21 प्लस ओवर खेले हैं। ट्रेविस हेड 89 पर 80, मतलब ऑलमोस्ट 90 प्लस का स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं ट्रेविस हेड, दोनों T20 खेल रहे हैं। ये किस तरफ रुख बदलेगा मैच आगे आने वाले टाइम में ही हम देखते हुए बताएंगे। और ये शामी को ओवर दिया गया और अच्छी बॉल थी, मगर 1 रन वो आसानी से ले लिया उन्होंने। अच्छी बॉल थी मगर वो पूरा अच्छे तरीके से हिट भी नहीं, मगर सिंगल ले लिया क्योंकि ये लगता है आंखें बिल्कुल जम चुकी है, कह सकते हो, क्योंकि 200 रन बना लिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, अपने 200 रन पर पहुंच गई है ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट के नुकसान पर। ये हमारा 59 ओवर चल रहा है जिसकी दूसरी बॉल अब शामी डालेंगे। पहली बॉल पर पहला रन आ चुका है और मैं अपने व्यूवर्स को कहूँगा कि आप किसको जल्द प्रे करें, इंडिया के लिए प्रे करें और अपने अपने व्यूवर्स कमेंट दें ताकि हम उनके साथ जुड़े रहें, उनके आपके नाम बताएं, आपके नाम को हम आपके नाम से कमेंट बताएं कि ये आप किस टीम, किस प्लेयर, किस की प्लेयर को देखना चाहते हैं और कौन सा प्लेयर आपके लिए विकेट लाए। माइट बी चांसेस कि अगर आप जिसको विश करो तो माइट बी कब कौन सी चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएं, कुछ पता नहीं होता है। और हमारा जो वोटिंग है अभी तक चल रहा है, ऑलमोस्ट 2500 लोग वोट्स कर चुके हैं, जिनमें से 48% लोगों ने कहा है वोट 300, जो कि परसेंटेज धीरे धीरे डाउन हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया 300 की करीब जाने लगी है, 200 प्लस कर चुकी है, 200 जोन ऑलरेडी वो बॉर्डर बना चुकी है। तो मुझे लगता है कि वो परसेंटेज धीरे धीरे गिर रहा है और 300 350 का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे अप होगा क्योंकि माइट भी ये आज के सेशन में मेरे ख्याल से हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया 300 प्लस रन बोर्ड पर बना दे और अगर विकेट ना गिरी तो। अभी हमारे एक सुनील अहिरवार हैं, उन्होंने कहा ट्रेविस हेड 80 रन गॉट आउट, ऐसा वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, देखना होगा 88 पर। अभी उन्होंने चौका लगाया, उनकी बात शायद उन्होंने सुन ली है और शामी को उन्होंने चौका जड़ दिया। देखने की यही बात रहेगी कि कब तक हमारे इंडियन बॉलर्स ऐसे ही जूझते रहेंगे कि जब वो डाउन डाल दे रहे हैं तो वो आराम से कट मार दे रहे हैं स्लिप के ऊपर से 4 रन। 205 पर 3 ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के बॉलर्स हताश। आप अपने कमेंट्स देते रहिए, हम आपको लगातार सूचित करते रहेंगे क्या मैच में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप अपने विशेष भी दे सकते हैं किसी अगर पर्टिकुलर आप और अगली बॉल पे फिर से 6 रन, सेम शॉट बट इस बार ज्यादा अच्छा टाइम था और 6 रन स्लिप के ऊपर से। व्हाट अ बैटिंग बाय ट्रेविस हेड, एकदम T20 गेम खेल रहे हैं और ट्रेविस हेड यहाँ पर 91 पर 92 बॉल्स पर 91 रन, यानी कि हेड इज हेडिंग टू हिज 100 और स्मिथ भी धीरे धीरे अपनी 50 की तरफ। शामी अपनी आखिरी बॉल लेके ट्रेविस हेड की तरफ। अभी तक तो उन्होंने काफ़ी रन दे दिए इस ओवर में। लास्ट बॉल और अच्छे तरीके से उसको पॉइंट की दिशा में खेला 1 रन के लिए। ऑस्ट्रेलिया 212 पर 3। इंडिया के बॉलर्स जूझते हुए। अभी थोड़ी देर पहले मैं हमारे व्यूवर्स की बात कर रहा था, सुनील अहिरवार जो बोल रहे थे 80 रन पर कोट आउट ट्रेविस हेड। मुझे लग रहा है कि उनकी जो ये गणना थी वो गलत रही। अभी ट्रेविस हेड 92 रन पर खेल रहे हैं तो और ये चंद बिट कोई हैं जो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया 500 प्लस बनाएगा अपनी फर्स्ट इनिंग में।
तो देखते हैं कि कौन सही रहेगा कौन गलत, बट अभी तक तो ट्रेविस हेड अपनी जो लग रहा है कि सेंचुरी आज आराम से बना लेंगे, क्योंकि बहुत अग्रेसिव खेले हैं वो, T20 की तरह खेले हैं, जैसा T20 में खेला जाता है वैसा गेम खेल रहे हैं। और उमेश यादव को फिर से अपना और फिर सिंगल मेरे ख्याल से लेग पे आराम से कट किया और लेग साइड पर बॉल गई और 1 रन। ऑस्ट्रेलियन फैन काफ़ी खुश, ट्रेविस हेड और स्मिथ की ये साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया अभी बहुत अच्छे टर्न पर खेलती हुई, इंडिया के बॉलर्स और इंडियन टीम थोड़ा सा मुश्किल में है यहाँ पर। उमेश यादव को कोई करिश्मा ही करना पड़ेगा मुझे लगता है अगर यहाँ पर विकेट चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा लगातार उमेश यादव से चाह रहे हैं कि उन्हें ब्रेक थ्रू में दिलाएं इंडिया की टीम को, और उमेश यादव भी अपनी लाइन और लेंथ को शायद वो पूरे अच्छे तरीके से अभी तक ला नहीं पाए हैं। और ऑस्ट्रेलिया 213 रन पर 3 है, स्मिथ उनके सामने, उमेश यादव के सामने। और अच्छी बॉल, उसको आराम से डिफेंस किया स्टीव स्मिथ ने। स्टीव स्मिथ 133 रन बना 133 बॉलों पर 41 रन बना दिए, मतलब यानी कि आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 22 ओवर्स खेल चुके हैं। अब तो वो मैं मानूं कि बॉलें उनको फुटबॉल नजर आ रही है, क्योंकि जितनी बॉलें वो खेल चुके हैं। ट्रेविस हेड 93 पर है, 94 बॉलों पर, 5 का रन रेट, 5 प्लस रन रेट ऑस्ट्रेलिया ने बना लिया है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले 3.5 का चल रहा था। अच्छी बॉल, फिर से उसको लेफ्ट किया और कोई रन नहीं, सीधा कीपर के पास। व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब धीरे धीरे ये बिलो 300 वाला परसेंटेज नीचे आ रहा है और जैसा सबको प्रतीत हो रहा है कि हमारे इंडियन बॉलर्स कुछ मैजिक नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारे 3 ही पेसर ने 3 विकेट लिए हैं, बाकी अभी तक सर जडेजा और उमेश यादव विकेटलेस रहे हैं। रोहित शर्मा लगातार अपने बॉलर्स को पुश करते हुए कि यू कैन डू दैट, यू कैन डू इट। और बहुत ही अच्छी मतलब लेंथ बॉल थी, सीधा स्ट्रेट शॉट, स्मिथ के बैट से 4 रन, कोई जवाब नहीं किसी फील्डर के पास, सीधा खेला सीधे हाथ से और कोई मतलब बाउंड्री पर जाकर सीधा बॉल। उमेश यादव लगातार जूझते हुए अपनी लेंथ को ढूंढ रहे हैं और लेंथ मिल नहीं रही, लेंथ मिल रही है स्टीव स्मिथ को। 217 रन बनाकर 3 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया। स्टीव स्मिथ ने अब तक 6 चौके लगाए हैं, छक्का एक भी नहीं लगाया है। देखते हैं क्या कि और ये धीरे धीरे रन रेट बढ़ता है, 5.5 के आसपास रन रेट आ चुका है। जो रन रेट हम पहले बात कर रहे थे कि रन रेट जो है वो बहुत नीचे है, इतने रन नहीं बनेंगे, मगर यहाँ से मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही स्कोर देख रही है। जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा अच्छे, जैसा हमारे एक व्यूअर्स ने प्रिडिक्ट किया है 500 प्लस, तो माइट बी दे थिंकिंग अबाउट दैट। और ये अच्छी बॉल थी मगर इसको भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खेला और डीप स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन। उमेश यादव मतलब वो उस लय में नजर नहीं आ रहे, लगातार वो अपनी लेंथ को ढूंढते हुए, और वो लेंथ ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को ही मिल रही है आई थिंक। और स्टीव स्मिथ 1 रन दूर अपने 50 रन से, अपने अर्धशतक से 1 रन दूर, 137 रन बनाकर उन्होंने बनाए हैं 49 रन। और वहीं पर ट्रेविस हेड हैं जो 94 बॉलें खेलकर 93 रन, 93 रन बना चुके हैं। 60 ओवर का गेम हो चुका है, 30 ओवर बाकी हैं और मुझे लगता है अगले 30 ओवर में अब मैं यही चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स सजेस्ट मतलब वो अपना प्रेडिक्शन करें और मैं उनको मतलब उनके अपने कमेंट्स पढ़कर बाकी और व्यूअर्स को बताऊँगा कि ये प्रेडिक्ट किया गया है और आप बताएं कि ये प्रेडिक्शन सही है या नहीं है। जैसा कि हमारे हमारे व्यूअर ने बताया कि 500 प्लस ऑस्ट्रेलिया बनाती हुई दिख रही है उनको, तो अभी तक तो वो ठीक लग रहे हैं, क्योंकि अगर विकेट नहीं गिरी है यहाँ पर, अगर विकेट नहीं गिरती है तो मेरे ख्याल से अब देखिए सेशन 1 में जो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रहे थे 3.17 के हिसाब से खेल रही थी और दूसरे सेशन में भी मोरलेस वहीं पर थी 3.5 के आसपास। जैसे ही थर्ड सेशन शुरू हुआ तो वो 5 प्लस पे आ गई है, 5.5 पर आ गई है। तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है मेरे ख्याल से इंडियन बॉलर्स के लिए और इंडियन टीम के लिए।
कोई बात नहीं ज्योति लक्ष्मी, आप कह रहे हैं कि आपको मैच नहीं देख सकती, आप मैच नहीं देख सकती, मगर हम आपको मैच का देखा जोखा बताते रहेंगे। आप अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने 221 रन बनाकर 3 विकेट के नुकसान पर 221 रन बना चुके हैं, जिसमें स्टीव स्मिथ 49 रन पर खेल रहे हैं, 1 रन दूर अपने अर्धशतक से, और ट्रेविस हेड 94 6 रन दूर हैं वो अपने शतक से। तो यही वाली बात है। शुभम सांगले ने कहा है कि 400 प्लस फॉर श्योर फॉर ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ बिल्कुल, और ये दिख भी रहा है और लग भी रहा है कि इजीली अचीव कर लेगी ऑस्ट्रेलिया इस स्कोर को। और ये अभी तक पूरा का पूरा जो इनिंग है, अभी तक ऑस्ट्रेलिया के पूरे हाथों में पूरी ग्रिप अपनी जो है वो टाइट की हुई है, और पूरी ग्रिप में इसमें मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। आज का दिन अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया के ही पक्ष में लग रहा है। 222 रन बनाए हैं अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर, और अपने एक अर्धशतक से 1 रन दूर हैं स्टीव स्मिथ। और ये बॉल शामी की तीसरी बॉल स्टीव स्मिथ को, इट मे बी 100 और 50 और डॉट बॉल। अभी और इंतजार करना पड़ेगा स्मिथ को, शायद एक दो बॉलों का। और यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होती है बैट्समैन को, क्योंकि जब वो अपने अर्धशतक या शतक के पास होता है तो थोड़ा सा नर्वस खेलता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई अपने स्कोर भी देखता है, बट यही है यहाँ पर स्मिथ इजीली अचीव करेंगे अपना अर्धशतक। 139 बॉलों पे 49 रन और 95 बॉलें खेलकर 94 रन है ट्रेविस हेड के। और हमारे साथ एक व्यूवर जुड़े हैं क्रिकेट शेख, जो कह रहे हैं हाय हाय क्रिकेट शेख, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कितने रन अपने फर्स्ट इनिंग में देगी इंडिया को चेस करने के लिए। शुभम सांगले हैं वो, पहले उन्होंने 400 मेरे ख्याल से 500 प्लस, आई थिंक उन्होंने 400 प्लस फॉर श्योर कहा था, और अभी उन्होंने फिर दोबारा से कमेंट करके कहा है कि अगर ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया खेलती रही तो मतलब जीत निश्चित है ऑस्ट्रेलिया की। और हमारे साथ ज्योति प्रकाश भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया विल विन द WTC फाइनल। वही हमारे व्यूवर्स लगातार अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट दे रहे हैं, और वो नाखुश इंडिया की परफॉर्मेंस से, क्योंकि अभी तक किसी भी बॉलर ने ऐसा नहीं करके दिखाया कि जो कि किसी भी बैट्समैन को वो ऐसा रोक दे या परेशान करे। परेशान वाली बॉलिंग सिर्फ शुरुआत में ही कुछ ओवर हुई थी, जहां उनको विकेट भी मिले। शामी 14 ओवर में 1 ही रन दिया उन्होंने, शामी भी अभी तक 1 ही विकेट लिया है उन्होंने, और 2 मेडन ओवर बनाए हैं 14 ओवर में, 51 रन दे चुके हैं। 61वां ओवर भी समाप्त हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के 222 रन हैं 3 विकेट के नुकसान पर। स्टीव स्मिथ अपनी अर्धशतक से 1 रन दूर अभी भी। ट्रेविस हेड 95 बॉल्स पर। देखना होगा कि उमेश यादव को लगाते हैं या शार्दुल ठाकुर को या सिराज को या फिर सर जडेजा को। राक्षी चौहान है हमारे साथ, जो कह रहे हैं इंडिया इंडिया। यही जज्बा चाहिए हर व्यूवर्स को, हर इंडियन फैन को, कि वो इसी तरह प्रे करे और चाहे कि इंडिया ही जीते। और शुभम सांगले कह रहे हैं हाईली डिसअपॉइंटेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। कोई बात नहीं, अभी टाइम है सांगले जी, अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टर्न अराउंड होगा और इंडिया अपना सा कब्जा दोबारा बना लेगी। मुझे लगता है पवेली ने उनसे सिराज को बुलाया है, रोहित शर्मा ने, कैप्टन रोहित शर्मा ने। आप चाह रहे थे जडेजा की इकनॉमी, बिल्कुल जडेजा जी भी अभी तक विकेटलेस ही हैं, और इकनॉमी ठीक ही है उनकी, 2-3 के आसपास इकनॉमी है। अभी ओवर हो चुके हैं 29 बाकी हैं। सिराज बॉलिंग कराने को अच्छी बाउंड आई और ट्रेविस हेड गिर भी गए, हालांकि उनको बॉल नहीं लगी और बॉल हेड के ऊपर से गई, मगर अच्छी बॉल। और ये मेरे ख्याल से पहली काफ़ी देर बाद हमने एक बाउंस देखी जिसमें उन्होंने बैट्समैन को दिखा दिया कि आई एम बैक, दैट्स सिराज
सिराज ने अच्छी बाउंसर मारी। अभी रोहित चौहान पूछ रहे हैं कि कितने ओवर बाकी हैं ओवर, तो मेरे ख्याल से ये 62 ओवर चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बचेंगे 28 ओवर बचेंगे, क्योंकि 90 ओवर्स के आसपास ओवर होते हैं। डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन होंगे, जैसे 90 ओवर्स का ही मैच होता है पर डे। और देखते हैं ये सिराज अपनी दूसरी बॉल लेकर, और ट्रेविस ने अच्छा शॉट खेला है, मगर वहाँ पर फील्डर मौजूद है। 2 रन मेरे ख्याल से 2 रन ले लेंगे आराम से, और 2 रन ले भी लिए। ट्रेविस धीरे धीरे अपने 100 के पास 96 बना लिए हैं ट्रेविस हेड ने, और देखना होगा कि 61.2 ओवर हो चुके हैं, यानी कि 62 ओवर चल रहा है। यहाँ पर 224 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। तो मेरे ख्याल से 28 ओवर और 4 गेंदें बची हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन बाकी बचे ओवर में ऑस्ट्रेलिया कितनी बनाती है। मुझे लगता है ट्रेविस हेड अपनी सेंचुरी बनाने के बाद और फिर अच्छी बॉल, बिल्कुल हैंडनेट पे लगी है बॉल, और सिराज थोड़ा सा एग्रेशन दिखाते हुए, हालांकि मैंने ट्रेविस हेड से पूछा आर यू ओके, और उन्होंने जवाब दिया आई एम ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्मा गर्मी, क्योंकि सिराज भी थोड़ा सा एग्रेशन रखते हैं और एग्रेसिव बॉलर हैं काफ़ी। 61.3 ओवर्स रनिंग, और अभी 28.3 ओवर्स लेफ्ट। तो देखते हैं, डे 1 का सेशन 3rd चल रहा है। ये सिराज ने अभी तक 3 बॉलों में 2 रन दिए हैं, और सिराज और ट्रेविस हेड के बीच थोड़ा सा आनी हुई, मगर बहुत ही अच्छे तरीके से बॉल करा रहे हैं सिराज को वापस लाना एक अच्छी बात रही है इंडिया के लिए। देखते हैं ये क्या करते हैं इसमें। हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े रहें, आप भी मैच का मजा लीजिए और अपने कमेंट्स शेयर कीजिए। आप किस टीम को जिताना चाहते हैं। अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि उनके 3 ही विकेट हुए हैं। चल रहा है 3rd सेशन, और 224 रन ऑलरेडी स्कोर बोर्ड पर बना चुकी है ऑस्ट्रेलिया। यस, और ये फिर अच्छी बॉल थी, मगर इसको अच्छी तरह से बैट पे नहीं ले पाए ट्रेविस हेड, और 1 ही रन से उन्हें उठना पड़ेगा। ये अभी तक 4 बॉलें डाली हैं, 3 रन दिए, तो बड़ा अच्छा ओवर रहा है। मगर मैं यही कहता हूँ कि अगर ट्रेविस हेड की सेंचुरी होगी तो उसके बाद ज़्यादा वो अटैकिंग खेलेंगे, क्योंकि अपने 100 वो बना चुके हैं, और वो चाहेंगे कि जितनी जल्दी अब मेरी बची है मैं और तेज़ी से खेलता हूँ, ताकि मैं और रन स्कोर बोर्ड पर बना पाऊँ। यहाँ बिल्कुल शुभम सागले कह रहे हैं इंडियन टीम प्लेड फॉर स्मिथ ट्रेविस हेड। मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं कि उनके सिलेबस में है या नहीं, ये जानने वाली बात है। मगर अच्छी बॉल यहाँ पर सिराज कराते हुए, और रोहित शर्मा ने अपने सबसे जो कह सकते हैं कि अभी तक का जो इकोनॉमिकली बेस्ट बॉलर है या अच्छा बॉलर जो अब तक साबित हुए हैं, वो सिराज ही रहे हैं। 4 पेसर्स के साथ इंडिया खेल रही है, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर। एक स्पिनर खिलाया है जो रविंद्र जडेजा, राहुल डी राइडर। तो टोटल ओवर 90 हुए आई थिंक, और 90 में से अभी तक 62 ओवर की लास्ट बॉल चल रही है, या 62 ओवर हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से 28 ओवर लेफ्ट। और स्मिथ की 50, यहाँ पर स्मिथ ने अपना अर्धशतक पूरा किया 144 गेंदों में। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक एंड अपना संभाल के रखा है, और अपने साथ खेलते हुए प्लेयर्स को हमेशा वो सजेस्ट करते रहे हैं
क्योंकि वो पहले ज़्यादा खेल चुके हैं और उनसे पहले से खेल रहे हैं, तो वो सजेस्ट करा उनको, एक तरीके से लीड दी कि ऐसे खेलिए, और लगातार वो स्ट्राइक भी दे रहे हैं, उनको रोटेट कर रहे हैं। यही एक अच्छे बैट्समैन की वो होती है कि वो लंबी साझेदारी खेले, और लंबी साझेदारी का यही फ़ायदा होता है कि आपका एक एंड हमेशा से सेफ रहता है। जिस तरीके से स्टीव स्मिथ अपना बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब वो भी आज नहीं तो कल अपनी सेंचुरी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अभी वो भी पूरे लय में हैं, और किसी बॉलर को अब तक उन्होंने ऐसे नहीं खेला है कि कोई बॉल मिस की हो या किसी बॉलर ने उन्हें बीट करा हो। यहाँ पर हम देखेंगे शामी आए हैं, शामी अपने अगला ओवर लेके, और ये अच्छी बॉल, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लॉक कर दिया है स्टीव स्मिथ ने। अच्छी बॉल करा रहे हैं शामी और सिराज, उन्होंने फिर से दोबारा से अपने ओपनिंग स्पेल उसको लगाया है, और स्टीव स्मिथ ने अपनी हाफ सेंचुरी बना ली है 144 गेंदों की। बहुत ही अच्छी और शानदार पारी कह सकते हैं इसको, बहुत अच्छे तरीके से अनुभवी पारी कह सकते हैं इसको, जिस तरीके से अनुभवी पारी खेली है इन्होंने। और यहाँ पर हमारे साथ और भी दर्शक जुड़े हुए हैं, व्यूअर्स जुड़े हुए हैं हमारे, और ये फिर से दोबारा से बहुत अच्छी बॉल, आउट स्विंग कराई, हल्की सी आउट स्विंग है मगर बहुत ही अच्छी बॉल, मतलब स्टीव स्मिथ को वो चकमा दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि बॉलर्स को थोड़ा पुश किया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे बॉल डालिए, बॉलर बैट्समैन के हिसाब से, और बैट्समैन को मतलब बैट्समैन की लाइन पे बॉल मत डालिए, थोड़ा सा उन्हें अब थोड़ा निकल के खेलने का सोच चाहिए, ताकि वो आपको खेलने के लिए मजबूर हो बाहर आकर, और वही शायद रणनीति रही होगी। और जिस तरीके से बॉल करा रहे हैं शामी, और 3 स्लिप के साथ इंडियन टीम फील्डिंग कर रही है, अच्छा पर छोटा थर्ड मैन की तरफ, और 2 रन ले लेंगे आराम से स्टीव स्मिथ। बहुत ही अच्छे तरीके से दिशा दिखाई है, थर्ड मैन की तरफ भेजा बॉल को, और यहाँ पर आराम से 2 रन ले लिए। ट्रेविस हेड 97 पर है 99 बॉल खेलकर, और स्टीव स्मिथ 52 रन्स फॉर 147 बॉल्स खेलकर। ऑस्ट्रेलिया लगा अपना दमखम दिखाते हुए, और फिर दोबारा से लेफ्ट कर दिया, अच्छी बॉल डाल रहे हैं शामी इस बार, मतलब बहुत टप्पा जो है बिल्कुल लेंथ पर जा रहा है, और कोई मौका नहीं मिल रहा है स्मिथ को कि, और ना ही स्मिथ मेरे को लगता है कि कोई जोखिम लेना चाह रहे हैं, वो इजीली लेफ्ट कर रहे हैं बॉल को। 228 रन बना दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने डे 1 के सेशन 3 में। देखना होगा कि यहाँ से अब किस तरफ रुक जाता है। अगर पिच अब बिल्कुल मेरे को लगता है कि ज़्यादा मदद नहीं हो रही है मेरे ख्याल से बॉलर्स को, इसलिए वो बॉलर्स के साथ नहीं, मतलब बैट्समैन के साथ थोड़ा सा दिख रही है अभी पिच। शामी अपनी 5वीं बॉल लेकर, ये अच्छी बॉल थी, लेग साइड पर उन्होंने कट किया, और आराम से 1 रन ले लेंगे। यहाँ पर लास्ट बॉल शामी की रह गई है, जो खेलेंगे अब ट्रेविस हेड। देखते हैं सिंगल लेते हैं या बाउंड्री मारकर अपने 100 पूरा करते हैं ट्रेविस हेड। व्यूअर्स से भी पूछना चाहूँगा कि एक वनडे में, एक दिन में, टेस्ट मैच में एक दिन में कितने ओवर्स होते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें और हमारे साथ बने रहें। और यहाँ पर 60 लास्ट बॉल 63 ओवर्स की, और उसको भी बहुत अच्छी तरीके से खेला है ट्रेविस हेड ने। सिंगल ही लेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो चाहेंगे अगला ओवर खेलें और अपनी सेंचुरी बनाएं। अनमोल शर्मा पूछ रहे हैं कि आप बताएं बैटिंग कौन अच्छी करता है, अश्विन या जडेजा? मेरे ख्याल से तो जडेजा ही बैटिंग अच्छी करते हैं, मगर ये डिपेंड ऑन द डे, बट अश्विन भी बुरी बैटिंग नहीं करते हैं। टेस्ट में उन्होंने भी शतक बनाया हुआ है, टेस्ट मैच में एक शतक मारा हुआ है अश्विन ने भी। और ये कहना अभी टफ क्या, मतलब अश्विन तो प्लेइंग 11 में है ही नहीं, तो अब उनकी क्या कहा जाए। तो यही चाहेगी इंडियन टीम की सर जडेजा अच्छा खेले,
जैसी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि अच्छी बैटिंग भी करें। तो मैंने जैसा पूछा सबसे, आप बताएं कि एक दिन में कितने ओवर कराए जाते हैं। आप सभी लोग से मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट सेक्शन में दें। कह रहे हैं कि मैंने लास्ट मोमेंट पे स्टीव स्मिथ को कैप्टन कर दिया है। बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह की पारी वो खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आराम से अपना टेस्ट 100 बना सकते हैं जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। और काफ़ी बॉलें खेल चुके हैं, आंखें पूरी जम चुकी हैं। यहाँ से उनका या दोनों ही बल्लेबाजों का किसी का भी आउट होना मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अपनी पूरी भूमिका निभाते हुए हैं। फील्ड हालांकि खोल दी गई है, काफ़ी 30 आउट से काफ़ी लोग काफ़ी फील्डर बाउंड्री पर तैनात हो गए क्योंकि बाउंस की ट्राई कर रहे हैं। सिराज लगातार बाउंस की ट्राई कर रहे हैं और ट्रेविस हेड बाउंस को मारने शॉट मारने की सोचेंगे तो माइट बी वो थिंकिंग रहेगी सिराज की, इसलिए वो सिराज की फील्डिंग ऐसी लगाएंगे। ट्रेविस हेड भी समझदार हैं और उन्होंने वो बाउंस पे शॉट ट्राई ही नहीं करा और हैंड पर बॉल लगी। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर सिराज द्वारा। स्मिथ तब फेस करेंगे मोहम्मद सिराज को। तीसरी बॉल है सिराज की और ओवर रनिंग है 64 ओवर की थर्ड बॉल। यहाँ पर फेस करेंगे स्मिथ खेल रहे हैं 53 रन तक 149 गेंदें खेलकर। ट्रेविस हेड 99 एक रन दूर अपनी सेंचुरी से, अपने शतक से 102 बॉलों पर। ऑलमोस्ट T20 का स्ट्राइक रेट है, 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं ट्रेविस हेड। ये अच्छी बॉल थी, सीधी विकेट की सीध में थी और उसको बहुत ही इजीली उन्होंने डिफेंस कर दिया। आप कह रहे हैं हमारे पास एक व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि कौन जीतेगा भाई लोगों। अभी पहले दिन में कौन जीतेगा ये कहना तो बड़ा ही मुश्किल होगा क्योंकि 5 दिन का मैच अभी 4 दिन का मैच और अभी बाकी है। और कुछ ऑस्ट्रेलियन फैंस भी हैं जो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और जी हाँ ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की पलड़ा भी भारी है। मगर हाँ अभी बहुत इट्स टू अर्ली टू से कि कौन जीतेगा। हाँ मगर यू कैन प्रेडिक्ट करना कोई वो नहीं है और हर फैन चाहेगा कि इसको टीम जीते तो वो प्रेडिक्ट उसी तरीके से करते हैं। मैं यही चाहूँगा कि यहाँ से बॉलर्स अपना थोड़ा दमखम दिखाएं और एक विकेट ज़रूर चाहेगी इंडिया इस समय कि इंडियन टीम थोड़े से अपने पोजीशन में आए और विकेट ले ताकि वो थोड़ा सा जो मोरल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम का थोड़ा सा डाउन हुआ है क्योंकि जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर एक विकेट की बिल्कुल विकेट चाहेगी इंडियन टीम और सिराज को इसलिए लगा ताकि बैट्समैन कोई गलती करे, शॉट लगाने की कोशिश करे ताकि वो कैच उछले और सीधा फील्डर के हाथ में जाए। रोहित शर्मा की अच्छी मेरे को लग रहा है ये नीति रहेगी। हो सकता है कोशिश करना कोई गलत बात नहीं होती और हमारे साथ कई सारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं। अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते रहिए। जी बिल्कुल रोहित शर्मा फील्डिंग बॉलर्स के हिसाब से लगाते हैं, बॉलर्स बताएगा फील्डिंग लगाएंगे मगर अपना भी तर्क होता है कि वो बॉलर्स को बोले कि आप ये बॉल डालिए शायद विकेट आए क्योंकि बॉलर्स कोशिश कर रहे हैं। अगर एक ओपिनियन देना कोई गलत बात होती है और कैप्टन अगर ओपिनियन तो रहती है उसके दिमाग में। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सजेस्ट कर रहे हैं हम अपने बॉलर्स को कि आप ये बॉल डालिए और वो फील्डर वहाँ लीजिए और यही अच्छे कप्तान की कप्तानी होती है कि वो बीच बीच में अपने बॉलर्स का मोराल बूस्ट करे। और 232 रन बना लिए हैं ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट के नुकसान पे और स्मिथ 53 पर नाबाद 53 रन बनाए हैं 153 बॉल्स पर। ट्रेविस हेड अपने शतक से 1 रन दूर। पार्था घोष भी हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं।
काफ़ी पार्था घोष भी जुड़े हुए हैं, साथ के भी एक जुड़े हुए हैं, अकल जी भी जुड़े हुए हैं। और कोई कह रहे हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि बॉल स्विंग हो रही है, मगर इंडियन बॉलर्स वैसी स्विंग नहीं करा पा रहे हैं। तो बिल्कुल बॉलर कोशिश करता है और कोशिश करना ही उनका काम है। कई बार आपका दिन सही नहीं होता, तो जैसा हम उसके लिए कह सकते हैं, उमेश यादव के लिए कहते हैं कि उनका दिन आज शायद सही नहीं है। भी हो सकता है कि कल उनकी लाइन ऑन लेंथ बहुत ही ज़बरदस्त हो, मगर आज उनका दिन नहीं है, हम सब मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी बॉल ऐसी नहीं रही कि जिसमें ये कहा जा सके कि बहुत ही अच्छी बॉल कराई है। जी मॉलकल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सिर्फ सिराज हैं जिन्होंने अब तक अच्छी बॉल डाली है। शामी को लगाया गया है, उनका 16वां ओवर है, और यहाँ पर ट्रेविस हेड अपनी सेंचुरी के लिए और शामी सामी, और ये बिल्कुल शॉर्ट लेग पर उन्होंने फील्डर लगाया हुआ था, और कोई रन नहीं यहाँ पर। शामी की पहली बॉल डॉट बॉल। 65th ओवर रनिंग है, जिसमें एक बॉल हो चुकी है। ट्रेविस हेड एक शतक दूर, एक रन दूर अपने शतक से, और ये फेस भी ट्रेविस हेड कर रहे हैं शामी को। दूसरी बॉल है शामी की। देखना होगा कि सेंचुरी बनाते हैं या 99 पर घर जाते हैं, मगर मुझे लग रहा है कि सेंचुरी तो बना ही लेंगे। जी F4 Rex, यस आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अच्छी बॉल थी, अच्छी बाउंस थी, जरा से बचे, और यहाँ पर शामी पूरा दम दिखाते हुए कि सेंचुरी ना हो। यहाँ पर मानो कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच नहीं, सिर्फ ट्रेविस हेड और शामी के बीच हो रहा है। जिस तरीके से बॉलिंग करा रहे हैं वो, पहले तो बॉल मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है शायद ट्रेविस हेड को, क्योंकि वो बॉडी बॉल नहीं खेल पा रहे, बॉडी लेंथ बॉल नहीं खेल पा रहे हैं, जिस करके वो सिर्फ उसको लेफ्ट कर दे रहे हैं, या फिर बाउंस को भी वो इतना अच्छा नहीं खेल रहे, जैसा कि अब प्रतीत हो रहा है इंडियन बॉलर्स को, कि वो लगातार बाउंस अटैक कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पर। रन रेट दोबारा से 3.6 पर आ गया है। शामी की अगली बॉल, और फिर उसको, और अच्छी बॉल, अच्छा कट, मगर कोई रन नहीं, और लगातार बाउंस। शामी ये सीधा शामी वर्सेस मुझे लग रहा है ट्रेविस हेड चल रहा है, क्योंकि ट्रेविस हेड को एक रन चाहिए अपनी सेंचुरी के लिए, और शामी ने 3 डॉट बॉल डाल दी है, क्योंकि वो भी बिल्कुल नहीं चाह रहे कि मेरी बॉल पर वो सेंचुरी लगाए। और देखते हैं, प्रेम जी कह रहे हैं कि या तो आउट हो जाए या फिर 6 मार दे। एक पर अटक गया है हमारे, ये शॉट मार दिया फाइनली, एक शॉट मार दिया, और एक आराम से चौका मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रेविस हेड की सेंचुरी बन गई, एक ही रन आएगा, एक रन बनाया और सेंचुरी यहाँ पर पूरी कंप्लीट कर ली अपनी ट्रेविस हेड ने। 106 गेंदों पर 100 रन, इतना मतलब स्टैंडिंग ओवेशन दिया है उनको टीममेट्स ने, और पवेलियन में वो बैठे हैं, उन्होंने सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है उनकी इस पारी पर। जी बिल्कुल, जिस हालात में आए थे और जहाँ से अपनी उन्होंने जो साझेदारी दिखाई है टीम के लिए, ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, वो काबिल तारीफ है। जिस तरीके से उन्होंने इन हालात में आगे सेंचुरी लगाई है, मतलब बहुत ही शानदार बैटिंग का उन्होंने आज मुजाहरा फरमाया है। शामी की चौथी गेंद पर आखिरकार उन्होंने एक रन बना लिया, और यहाँ से मुझे लगता है कि मोमेंटो शिफ्ट करेंगे और थोड़ा सा गियर शिफ्ट करेंगे, और अपने सेंचुरी कंप्लीट के बाद वो थोड़ा सा अग्रेसिव खेलने की कोशिश जरूर करेंगे। शामी अपनी अगली बॉल पर, और ये बॉल ज़्यादा बाउंस हो गया, और पीछे कीपर भी उसको पकड़ने में नाकाम रहे, और 4 रन। अच्छी बॉल थी, अच्छी बाउंस थी, मगर वही कह सकते हैं कि ये 4 रन देके गई है। बाउंस कराई है इस ओवर में शामी ने, मतलब पूरा दमखम दिखाया है कि किसी भी तरह से मैं रन नहीं दूंगा, ट्रेविस हेड को बिल्कुल भी सेंचुरी नहीं बनाने देंगे। मगर एक रन लेना इतना भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो बंदा 99 रन पर खेल रहा है, तो एक रन तो वो आसानी से बना ही लेगा। देखते हैं किस तरीके से खेलते हैं आगे ट्रेविस हेड, और यहाँ पर बहुत अच्छी बॉल थी, और ये भी डॉट बॉल वाइड के साथ चौका दिया, क्योंकि काफ़ी बाउंस थी वो बॉल, लास्ट जो बॉल डाली है उन्होंने उस डॉट बॉल से पहले, तो वाइड के साथ 4 रन हुए। काफ़ी हाइट थी बॉल में, बाउंस में, जो कि कीपर भी नहीं पकड़ पाए, और
ये बहुत ही अच्छी शानदार बैटिंग की है आज ट्रेविस हेड ने। मतलब स्टीव स्मिथ के बैटिंग करने के बैटिंग का आने के बाद आए थे, मगर एकदम T20 टाइप बैटिंग की है और मतलब ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने सेंचुरी बनाई है। T20 नहीं, मतलब वनडे टाइप ऑफ बैटिंग है ये, और ये अच्छी बॉल थी मगर उसको बहुत ही अच्छे एहतियात से खेला। सिंगल खेलना चाहते थे मगर नहीं गई और डॉट बॉल। बहुत अच्छी बॉलिंग मैं कहूँगा अभी तक नहीं हुई है इंडियन बॉलर से। सिर्फ एक सिराज कह सकते हैं जो बॉलर्स जो बैट्समैन को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भी, क्योंकि ऑब्वियसली अब दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी रन बना चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा या करना भी बड़ा मुश्किल होगा कि बॉलर बैट्समैन परेशान हो रहा है किसी भी बॉल से, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट 100 बॉलें प्लस खेल चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब थोड़ा मुश्किल होना, अब तो कोई करिश्मा ही दिखा सकता है, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग करा रहे हैं तो ये तो मुझे लग रहा है कि 5 दिन दोनों बल्लेबाज खेल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ करिश्मा करने की ज़रूरत है इंडियन बॉलर्स को। अब देखते हैं रोहित शर्मा किस विकल्प को देखते हैं या सिराज को दोबारा लाते हैं, क्योंकि मोमेंटो शिफ्ट हो रहा है। मोमेंटो शिफ्ट होना अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अपनी बढ़त बनाती हुई है, बिल्कुल स्कोर बोर्ड में इजाफा बनाती हुई है। 238 रन बना दिए उन्होंने 3 विकेट के नुकसान पर, जिसमें स्टीव स्मिथ के 53 रन और ट्रेविस हेड के 100 रन पूरे। दोनों ही नाबाद हैं और अच्छा खेल रहे हैं। 65 ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं, 25 ओवर का आई थिंक गेम बाकी है। मोहम्मद शामी ने 16 ओवर कराए हैं, 2 मेडन और 61 रन दिए हैं, 1 विकेट लिए। तो अच्छा तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि 4 की इकोनॉमी से तो उन्होंने भी रन दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे अब रोहित शर्मा किस बॉलर के साथ जाते हैं, किस बॉलर को बॉल पकड़ाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा टफ बॉल हो गई है रोहित शर्मा के लिए, कैप्टन रोहित शर्मा के लिए। अब ये यहाँ पर लाए हैं मोहम्मद सिराज दोबारा से अटैक करते हुए बैट्समैन पर। वही सेम रणनीति, बाउंस डाल रहे हैं, बैट्समैन को परेशान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी मेरे को लगता है 90 ओवर्स अब ये होते हैं, तो अभी मेरे ख्याल से 25 ओवर बाकी हैं, और उसमें अब डिपेंड करता है कि जो रोशनी है, लाइट है, वो कितनी चली जाती है। बट 90 ओवर्स एक दिन में होते हैं, तो 25 ओवर बचे हैं अभी, 65 ओवर हो चुके हैं। यहाँ पर सिराज फिर से अटैक करते हुए बॉलिंग और बाउंस, लगातार बाउंस बॉल डाल रहे हैं, क्योंकि और फील्डर भी उन्होंने उसी तरीके से बाहर लिए हैं कि कहीं कोई गलती करे बैट्समैन और वो कैच जाके सीधा फील्डर की गली में गिरे। काफ़ी अच्छे शॉट लगाए हैं आज ट्रेविस हेड ने। 14 चौके और 1 छक्का लगाया है, जिसमें 101 पे नाबाद हैं और 14 चौके और 1 छक्का। कमाल की पारी है और अच्छा खेले हैं, मतलब जहाँ बॉल लूज मिली वहाँ पर शॉट मारा है और अपना बहुत ही जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई है उन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ, ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। 239 रन बोर्ड पर बन चुके हैं, 3 ही विकेट हैं। फर्स्ट डे सेशन 3। देखना होगा कि सिराज के अलावा क्या विकल्प है रोहित शर्मा के पास। सर जडेजा, शार्दुल ठाकुर या उमेश यादव। सिराज लगातार कोशिश करते हुए कैसे भी इंडिया को एक ब्रेक थ्रू की तरफ देख रहे हैं। सेशन 3 चल रहा है, देखना होगा कि ब्रेक थ्रू सिराज दिलाते हैं, शामी या फिर शार्दुल ठाकुर या उमेश यादव या जडेजा। रोहित शर्मा
कोशिश करते हुए लगातार कि किस बॉलर से बॉल कराई जाए। राजेश गौरेला बोल रहे हैं कि 400 प्लस। जी बिल्कुल, अब जैसा दिख रहा है और प्रतीत हो रहा है तो 400 प्लस तो है ही है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई परेशानी हो रही है किसी प्रकार की बॉल खेलने में। जी बिल्कुल, क्योंकि जापान ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग फर्स्ट टाइम WTC फाइनल, सुपर बैटिंग। यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसी बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया खेल रही है और कर रही है, मतलब मानो ये चैंपियंस टाइप ऑफ बैटिंग है और उसी तरीके से खेल रहे हैं। अब हमारे रिसर्च मैन हैं वो कह रहे हैं इंडिया ही जीतेगा। देखते हैं, अभी इंडिया की बैटिंग भी आनी है और इंडिया की बैटिंग कितनी बढ़िया होती है, कितनी कारगर। और यहाँ पर मिस फील्ड, पुअर फील्डिंग, बाउंड्री जिसमें कि रोक सकते थे मगर नहीं रुकी और बाउंड्री पर बॉल चली गई। 4 रन मिले यहाँ पर स्टीव स्मिथ को। बॉलर्स का मोराल थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउन है, मगर फील्डर्स अगर ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा बॉलर्स के लिए भी थोड़ा मुश्किल ही होगी। 243 रन बना लिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर। स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं 57 रन पर 160 बॉल पर और ट्रेविस हेड 101 रन 108 गेंदों पर। आगे का मैच जारी है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखने वाली बात यही होगी कि कैसे ये ब्रेक थ्रू मिले इंडिया को। इंडिया को इस समय विकेट चाहिए, विकेट। अब कैसे कौन दिलाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा टफ होता हुआ इंडिया के लिए अगर यहाँ पर विकेट नहीं मिली तो ये काफ़ी बड़ी साझेदारी होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही स्टीव स्मिथ भी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 60 के आसपास पहुँच गए हैं। और ट्रेविस हेड अब वो अग्रेसिव खेलेंगे। अगर अग्रेसिव खेलना मीन्स कि अगर वो जल्दी से अपनी 150 प्लस 150 के पास पहुंच जाते हैं तो वो 200 जरूर देखेंगे। शामी को लगाया गया है, शामी ट्रेविस हेड, और अच्छी बॉल थी, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से खेला उन्होंने और कवर की दिशा पे खेला और 4 रन। बहुत ही मतलब तो आंखें मानो कि बिल्कुल जम चुकी हैं और कोई परेशानी नहीं हुई बैट्समैन को। रोहित शर्मा भी हताश हैं कि क्या करा जाए क्या ना करा जाए, और सभी फील्डर जितने भी इंडिया के हैं वो बस हताश से ही दिख रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि थोड़ा पंप अप करें अपने आप को और जैसे भी अपने बॉलर्स को पुश करें, अपने फील्डर्स को थोड़ा सा पुश करें, ताकि यहाँ पर थोड़ा मोमेंटो शिफ्ट हो, मोमेंटो बने। राहुल शर्मा कह रहे हैं 350 टू 375 भैया आज का स्कोर, या आई थिंक वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की इनिंग का स्कोर। ये फिर से बाउंस मारी थी, उस पर बड़ा शॉट मारने का मगर मिस हुए और कोई रन नहीं। 250 के आसपास पहुंच गई, 250 पे पहुंच गई, 3 रन ही दूर है 250 से ऑस्ट्रेलिया, और बहुत ही अच्छी स्थिति में इस समय ऑस्ट्रेलिया। 67 ओवर रनिंग है और मेरे ख्याल से यहाँ से 23 ही ओवर रह जाएंगे बाकी, और अभी तक पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया हावी। सुभाष कालरा हैं जो कह रहे हैं 499। अच्छा, वो कह रहे हैं 499 रन ऑस्ट्रेलिया बनाएगी या 499 तो ऑल आउट हो जाएगी, आई डोंट नो, ऐसा वो कह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ और भी व्यूअर्स जुड़े रहें और वो बताएं कि कितने रन आज ऑस्ट्रेलिया बनाएगी, आज या ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बनाएगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स में शेयर करें और हम उसी तरह से आपसे बात करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, क्योंकि अकेले मैच देखने का मज़ा तो नहीं आता है, आप लोग सब जुड़े हुए हैं तो मज़ा डबल हो जाता है। यहाँ पर फिर दोबारा से शामिल कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। ट्रेविस हेड को लगातार बाउंस डाल रहे हैं इंडियन बॉलर्स, क्योंकि शायद ये इनकी कमी ढूंढ रहे हैं और बाउंस कर रहे हैं, बाउंस को ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं और ऑलरेडी 2 बाउंस हो चुकी हैं इस ओवर की, और 2 बाउंस के बाद यानी कि अगर नेक्स्ट बाउंस जाएगी तो आई थिंक कि वो वाइड करार दी जाए। यहाँ पर रोहित शर्मा थोड़ा सा चिंतित नज़र आ रहे हैं। इंडियन फैंस भी काफ़ी हताश दिख रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। पीसीबी हम कह रहे हैं 500 प्लस। जी बिल्कुल हो सकते हैं 500 प्लस, क्योंकि 250 तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट के नुकसान पर, और अभी तक कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है बॉलर हमारा इंडिया का कि जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन को परेशान कर पाए, एक सिराज के अलावा। एक सिराज एक एक्सेप्शनल
बिल्कुल हो सकते हैं 500 प्लस, क्योंकि 250 तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट के नुकसान पर। और अभी तक कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है बॉलर हमारा इंडिया का कि जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन को परेशान कर पाए, एक सिराज के अलावा। सिराज एक एक्सेप्शनल प्लेस है जो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। शामी भी बहुत ट्राई कर रहे हैं। शामी और सिराज दोनों ही लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को। बहुत ही इजीली दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खेल रहे हैं। कोई मौका नहीं दे रहे हैं किसी बॉलर को कि आप हमें परेशान करें। और यहाँ पर मैं यही चाहूँगा कि इंडियन बॉलर्स थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट करें, गेयर अप करें और थोड़ा सा अग्रेसिवली बॉल कराएं, ताकि बैट्समैन को थोड़ी परेशानी हो और वो उस परेशानी में विकेट दे। ये बहुत ही अच्छी बॉल थी, ये बिल्कुल मिस्ड कर गए और मेरे को लगता है कि बैट दोनों पे लगी थी आई थिंक। और ये फिर से मेरे ख्याल से टी ब्रेक हुआ है, मेरे ख्याल से इन ब्रेक है। तो यहाँ पर फिर से एक ब्रेक। तो आप लोग सब हमारे साथ जुड़े रहें। यस बिल्कुल कॉमर्स स्पॉट कह रहे हैं ट्रेविस प्लेइंग T20। और सब कुछ बिल्कुल जिस तरीके से बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, तो लगता तो यही है कि वो T20 ही खेल रहे हैं। 67 ओवर हो चुके हैं और 247 3 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया। और स्टीव स्मिथ 57 रन पर खेल रहे हैं नाबाद की। ट्रेविस हेड खेल रहे हैं 105 रन पर। तो यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज सेट है। देखना होगा आगे हमारे इंडियन बॉलर्स क्या करते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हम इसी तरह से आपको मैच की जानकारी देते रहेंगे।
बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो एक बैटर 95 पे है तो दूसरा 146 पर। अब आज क्या क्या हुआ और कल क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में हम बात कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट से, और उसके लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ आनंद नरसिम्हन एंड ताउस रिजवी। Well, let's welcome them. Hello, Anand. Actually, Anand, I was listening to your comments in the lunch break session. आपने कहा कि at the end of the day, it all comes to the team selection. काफी बातचीत चली उसमें टीम सिलेक्शन के बारे में. Now when the day has ended, क्या लगता है ये अश्विन को ना रखना काफी भारी पड़ा? बाकी सबने कैसा परफॉर्मेंस दिया? सब कुछ बताइए.
देखिए यहाँ से अगर इस तरह से if Australia continues to play like this and even if they bat say 2 sessions tomorrow or 1.5 sessions tomorrow, Australia will not have to bat again in this test match. इस तरीके से उन्होंने खेल खेला है, करीब 4 रन के औसत से डे 1 पे अगर आपके बल्लेबाज स्कोर करते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन बैटिंग फॉर्मूला हमेशा से रहा है कि अगर आप सेट हो गए तो उसके बाद आप रन बटोरना शुरू कीजिए और कर दीजिए। अगर 250 270 पे अगर आप आके रुकते तो आप फिर भी अपने आप को थोड़ा चांस गिन सकते थे, लेकिन द वे थिंग्स आर पैन्ड आउट, नॉट ओनली हैव दे गॉट देयर सिलेक्शन रॉन्ग, दैट they don't have Ravichandran Ashwin in the mix. They should have had him. I'll tell you why in a bit. But even their regular bowlers, even with Siraj, Shardul, Shami, and Umesh Yadav, they have bowled the wrong lengths to Travis Head. The lengths at which they have bowled to Travis Head, he scored the maximum runs at the length that they have bowled to him the most. He scored 107 runs in that just slightly back of the length this one out of his 136 runs. The length that troubled him and also the period when he was looking dodgy, they allowed him to get away. And every time the Indian bowlers have built a certain amount of pressure or a semblance of pressure, somebody has come and played the CT of the pressure cooker कि आपका प्रेशर निकाल दिया। पहले 12 ओवर आपने प्रेशर बनाया, उमेश यादव को बॉलिंग दी पूरा बार। Same thing happened after 50 odd overs. So this is exactly what and that's where you are going to turn around and ask, is Rohit Sharma really the guy who should lead the testing and is he the right captain? So there are a lot of questions that come across based on how the decisions they have taken before the toss, at the toss and throughout the day's play. True. Taus यहाँ पे विनीत कुलकर्णी कह रहे हैं राहुल द्रविड़ and रोहित शर्मा can resign and you know their resignation might come out soon. आनंद ने अभी बात करी कि कैप्टनसी पे बड़ा सवाल उठता है. What are your thoughts? Do you think ये कैप्टनसी की तरफ से काफी बड़ा ब्लंडर है जिस तरह से आपने अपने बॉलर्स को आज यूज किया है? टीम कॉम्बिनेशन छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, अभी बात करते हैं जो बॉलर्स थे हमारे पास. क्या लगता है आपको कि बॉलर्स को यूज करना गलत था? ताउस ये देखिए मोहम्मद The comment from Vineet is like very emotional कि immediately resign कर लो. Obviously ऐसा नहीं हो सकता है, वो कैप्टन वो तो पूरा वर्ल्ड कप तक रहेंगे और वर्ल्ड कप के बाद भी कैसे देखेंगे नेक्स्ट एक और वर्ल्ड कप है. बट हाँ देखिए तो उसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं ओडीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट की कैप्टनसी विनीत का मैं बोल रहा हूँ. हाँ टेस्ट पे रोहित शर्मा की कैप्टनसी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. जो रिसेंटली इंडिया में कंक्लूड हुआ सीरीज एंड अभी आज जो डे 1 में मैंने उसको देखा, दैट्स व्हाई. चलो बाकी आप बोलिए फिर मैं बात. नहीं मैं विनीत का कमेंट कर रहा हूँ कि वो इमीडिएटली बोल रहे रिजाइन कर दे, तो इमीडिएटली ऐसा नहीं होता, तो मतलब वक्त देते हैं. तो बट हाँ मतलब देख क्वेश्चन मार्क तो डेफिनेटली आएगा कि बट आई वुड से कि अगर आप ग्रीन टिंज देख रहे हो तो आप एक लालच में आ जाते हैं. हम अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हैं एक वक्त पे, हम अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हैं कि भाई हमारी स्ट्रेंथ है जिनकी वजह से हम फाइनल तक पहुंचे. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उमेश यादव एज अ थर्ड ऑप्शन आ रहे हैं जो इतना ज्यादा क्रिकेट खेलने नहीं मिला. इंडिया में खेले, रिवर्स स्विंग अच्छा किए थे पिछले टेस्ट सीरीज में जो उनको लास्ट में मौका मिला, अच्छे विकेट्स निकाले थे. मगर दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. मगर जब बात अश्विन की आती है, जब विकेट टेकिंग गेंदबाज है आपके पास शार्दुल ठाकुर है जो एक वीक लिंक समझिए. देखिए उनका रोज परफॉर्मेंस नहीं आता है शार्दुल ठाकुर का, बट उनको खेलना था क्योंकि आपको एक स्विंग बॉलर चाहिए, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए हार्दिक पांड्या नहीं होने की वजह से. तो उन्होंने पिच को फेल किया रीड करना. दूसरा कोई भी होता तो वैसे ही हो जाता और उन्होंने मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे. देखिए ग्रीन टेंच हम सब कह रहे थे, मैं खुद कह रहा था कि हमको 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए जो कि अश्विन और जडेजा डेफिनेटली. और जडेजा इज समबडी who is not somebody like Ashwin वो attacking bowling नहीं करते. जैसे मतलब Jadeza can contain the batsman and those one odd left arm spin will help you. But वो one odd कब निकलता है वो आपने देखा था बीच में एक बड़ा टर्न हुआ जिसमें ट्रेविस हेड बीट हो गया. बट अश्विन इज अटैकिंग क्योंकि आपको यहाँ पर चांस भी लेना है. टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन का गेम है, तो आपको 5 दिन में स्प्रेड करना है जिसमें आपको अश्विन को लाके एक चांस लेना है, चाहे वो आपका ग्रीन टर्न हो या नहीं हो. मगर इसमें रोहित शर्मा ऑब्वियसली ओवर एक्साइटेड हो गए ग्रीन थिंग्स देखकर कि भाई हमारे पास सीमर्स है 4 उमेश यादव. यहाँ पर मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को बड़ा मिस किया. अगर उमेश नहीं होते तो भी मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह आके तीसरे फास्ट बॉलर होते, मतलब फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर हमारे होती, मगर शार्दुल ठाकुर डेफिनेटली खेलते. बट यहाँ पर एक अश्विन नहीं होने की वजह से बहुत बड़ा फैक्टर हो गया. और
फेल कर दिया उन्होंने, पिच फेल किया रही ना, जिसकी वजह से वन ऑफ द कैप। बट कैसे साहब कैसे कह सकते हो? हाउ कैन यू इवन से कि पिच फेल करने को ठीक पता है? इट्स अ बिग ब्लंडर। आई टेल यू व्हाई। इंडियन प्लेइंग 11 में आप देखिए कितने यहाँ ओवर पे पहले खेल चुके हैं। क्या मैच की कमेंट्री के दौरान रिकी पॉन्टिंग जैसा बंदा कहता है कि घास है लेकिन नीचे पूरा ब्राउन है, पूरा भूरा है, एंड दिस इज डे 2, डे 3, डे 4, इट्स गुड। अरे यू एंड मी, हम लोग तो मैं तो बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेला, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन मुझे वहां दिखा कि जैसी धूप आ गई, मुझे लगा कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जडेजा और अश्विन टैंडम में बॉलिंग करें, क्योंकि जडेजा ने पहले 7 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए। उस वक्त उनको अगर 7 ओवर में 12 रन दिए और वो प्लेयर्स, और दूसरी तरफ से अगर अश्विन होते तो आप सोचिए हमारे पास ब्रेक थ्रूज होते, बिकॉज़ Aussies were on the back foot at that time after having lost 3 wickets. दूसरी बात, लास्ट सेशन में आप देखिए कितनी बॉलें घुटने के नीचे गई हैं। They have not even carried through to Srikanth Bharat. They've gone on a bounce, and look at that ball from Shami, which it was actually an off spinner. वो फास्ट बॉल थी, लेकिन वो बॉल कैसे घूम गई? क्योंकि वो पिच जो है वो सॉफ्ट है। जितनी बार वो ड्यूक्स की बॉल गिरती है वहां पर इंडेंटेशन आएंगी, और इन इंडेंटेशन का फायदा नितिन लियोन अब उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास रविचंद्रन अश्विन नहीं है। मैं कहने वाला था, उमेश लायन यादव के आने के बाद एसजी पता बॉल, चल जाएगा। आपने डिफरेंट बॉल गेम की बात की, उमेश यादव के लिए डिफरेंट बॉल भी है और डिफरेंट गेम भी है। क्यों? क्योंकि बॉल वो एसजी बॉल से माहिर है, ड्यूक्स बॉल से नहीं है माहिर। और यहाँ ड्यूक्स बॉल की बात थी, और ड्यूक्स बॉल में उमेश यादव वाज द रॉन्ग चॉइस। क्योंकि देखिए जब भी प्रेशर लिफ्ट हुआ, इवेंचुअली देखिए शार्दुल ठाकुर का इकोनॉमी रेट सबसे हाईएस्ट होगा, लेकिन कोई भी एक बॉलर है जिसका इकोनॉमी रेट 3 से नीचे है, सब के सब 3.5 के आसपास घूम रहे हैं। आप फिर किसको फॉल्ट कीजिएगा? तो दिस इज व्हाट दे ऑल लीग रन्स, नो? एब्सोल्युटली। और हम अपने स्ट्रेंथ पे ही नहीं खेल रहे, वी आर नॉट प्लेइंग अप टू द स्ट्रेंथ, जो मैंने पहले ही कहा है। एक बात ये है कि हम बात कर रहे हैं कंडीशंस की, श्रीनी हमारे साथ जुड़ते हैं तो अक्सर उन्होंने पिछले लाइव सेशंस में कहा अगर धूप निकलेगी तो आप 2 स्पिनर्स को खिलाइए, धूप निकलेगी। यहाँ पे जब एक आप बाहर से बैठ के व्यक्ति बोल सकता है कि जब धूप निकलेगी तब आप 2 स्पिनर्स को खिलाइए। यस सुरम्या, मैं आप टॉस, हम लोग सब नोएडा में रहते हैं ना, तो हम लोग को एक ही स्काई दिखता है। रोज सुबह 10 बजे जब बाहर जाते हैं तब टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है। दोपहर को 2 बजे जब बाहर निकलते तब, और शाम को 5 बजे हम सबके लिए टेम्परेचर सेम होता है। ये इंडियन पूरी टीम जो है पिछले 10 दिन से लंदन में, इंग्लैंड में है, और पिछले 5 दिन से लंदन में है। और वहाँ क्या हो रहा है कि सुबह 10, 11:30, 12:30, 1 बजे तक ओवरकास्ट रहता है लोकल टाइम, लंदन टाइम में। बाय टिल अबाउट 12:30, 1 o'clock it's overcast. By 1:30 latest, by 2 o'clock it is sunshine. So 10:30 a.m. start till 1 p.m. is 1.5 sessions. उसके बाद के सेशन तो आपको धूप में खेलने हैं ना, and you got to play the rest of the 4-5 days. आज तो पहले घंटे में धूप निकल गई, तो how can you say this? Absolutely. मगर जो लास्ट के 2 वेदर, I was just looking at the weather. ईशान किशन का पोस्ट चेक करिए, थोड़े दिन पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है, एक जैकेट पहनी है, बाकी सबने भी जैकेट पहनी है, और उन्होंने कहा है कि यार वेरी डिफरेंट वेदर, जैकेट पहनी है बट सन इज आउट देयर। उन्होंने कहा ऐसे ही हालचाल चल रहे हैं आजकल यहाँ पर लंदन में। जब आपका टीम मेंबर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिख रहा है कि देखो सुबह तो मैंने जैकेट पहनी थी, अब बाहर धूप निकल रही है, इट्स क्वाइट वार्म, तो आप ये अपना प्लेइंग 11 डिसाइड करते हुए स्वेटर पहना है और 95 रन बनाया। स्टीव स्मिथ ने हाफ स्वेटर पहन के 95 रन बनाया ना, तो आप देखो तो सही, आप देखो कि कंडीशंस आर लाइक दैट। जब धूप ऐसी आ रही है and you have a pitch, how Rahul Dravid has played Leeds 2001, 2002, 2003. How many times has Rahul Dravid played in England? How many times you look at the players who are there, they have played so many times in England and at the Oval, and you are telling me they didn't read the pitch? यार मैं नहीं मान सकता हूँ यार, ऐसा ये नहीं हो सकता ना। आप एक क्लीन सेट माइंडसेट के साथ गए हैं, और ये माइंडसेट आपके लिए महंगा पड़ेगा। और दूसरी बात, आपने जैसे कप्तानी की, आप शुरू से ही डिफेंसिव पोजीशन, जैसे ही उमेश यादव बॉलिंग करने आया, एक फाइन लेग हो गया, एक उधर आपने पीछे ये किया कि भाई ये पिटेगा, इसको ठोकेंगे, तो इसके लिए थोड़ा मेरे को कवर चाहिए, थोड़ा कुशन चाहिए। आपने इस तरीके की फील्ड सेटिंग की है, जिस तरीके की आपने फील्ड सेटिंग की है, आपका एग्रेशन कहाँ था?
Absolutely. नहीं, यहाँ पूरा कनव कह defensive रहे हैं कि mindset these are defensive mindset blunders. हो जाता है. India never kept Murli out, and Australia never kept Vaughan out. Then why Ashwin? Ashwin is world's #1 test bowler. आप देख लीजिए, economy देख लीजिए, ratings देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए. Ashwin is the #1 bowler. Then why this decision? Yes. Let me Absolutely. Both of you are asking. Every team has one spinner. Who's the spinner in the Indian team? England, Australia, Nathan Lyon is the spinner. ठीक है? Yeah. Indian team का spinner कौन है? Undoubtedly, it's Ravichandran Ashwin, जिन्हें आपने अभी बाहर रखा है. अभी playing 11 में Indian team का spinner कौन है? रविंद्र जडेजा का आपने स्पिनर के लिए रखा है कि क्योंकि उसने इंग्लैंड का 100 बनाया था, इसलिए आपने उसको रखा है. वही तो उनका माइंडसेट यही है कि बैट्समैन के हिसाब से चलेगा कि रविंद्र जडेजा अगर मोस्टली उनको ऑलराउंडर के हिसाब से उनको जगह मिली है. लेफ्ट आर्म स्पिन ऑब्वियसली जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, ही इज नॉट योर टिपिकल स्पिनर. जो अश्विन, जो एक ऑर्थोडॉक्स स्पिन, जो कन्वेंशनल स्पिन लेके आते हैं अश्विन. और यहाँ पर मुझे लगता है नेथन लाइन, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि Rohit Sharma has failed to read the wicket, which means that's a bad decision. ये मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा जैसा आपको लगा. He has failed. मैं ऐसा नहीं बोल रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि अभी पता चलेगा नेथन लायन. मैं एक बात बता रहा, आप जानो ऑस्ट्रेलियन टीम में कितने बॉलर्स हैं, कितने प्लेयर्स हैं who can roll their arm, who can bowl leg spin, who can bowl off spin if required. If this pitch starts turning square, if there are too many indentation, other than Nathan Lyon, कौन bowling कर सकता है? स्टीव स्मिथ कर सकता है, ट्रेविस हेड कर सकता है, ट्रेविस हेड कर सकता है. ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शंस है ना. वो ट्रेविस हेड एंड स्टीव स्मिथ बिटवीन देम कैन बोल 15 ओवर्स, 5-5, 7-7 ओवर कर सकते हैं. इंडियन टीम में कौन है रविंद्र जडेजा के अलावा जो बॉलिंग करेगा, स्लो बॉलिंग करेगा? नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है. इनफैक्ट यू हैड ऑस्ट्रेलियन टीम में लेफ्ट हैंडर्स 4-4 खेल रहे हैं. डेविड वार्नर आपको समझ जाना चाहिए कि भाई जब आप अगेंस्ट दी करोगे फिर अगेंस्ट, तो वही मतलब मुझे लगता है. आई एम नॉट डिफेंडिंग रोहित शर्मा हियर, आई एम जस्ट सेइंग कि ही हैज फेल्ड टू रीड द विकेट, व्हिच मींस there are doubts about his captaincy, although ये defensive decision I would say that रोहित शर्मा के साथ साथ वहाँ राहुल द्रविड़ दोनों डिफेंसिव है माइंड यू. आ गया कैसे अगर मुझे रवि शास्त्री और विराट होते तो मुझे लगता है ये दोनों अटैकिंग क्रिकेट खेलते और जाते अश्विन के साथ. मुझे तो ऐसा लगता है और बहुत टाइम से मैं यही फील करता हूँ. व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन दे है. ट्रू. तो क्या लगता है कि देखो प्रत्युष क्या कह रहा है? सॉरी, प्रत्युष कह रहे हैं कि for Jadea to be effective he needs Ashwin or ये exactly. देखो one contains the other attacks, तो दोनों में से किसी एक को विकेट मिलने लगते हैं. और फिर ये दो जो प्रेशर बनाते हैं उसके पीछे अगर आप सिराज को लेके आते हो या शमी को लेके आते हो, आपका ब्रेक थ्रू गारंटीड है. ये भी आपको समझना चाहिए कि जब वहीं पे आपको विकेट्स मिलते हैं. दूसरी बात आप देखिए, शमी ने लाबुशेन को कैसे आउट किया. शमी ने लाबुशेन को वो लेंथ डाली जो उन्होंने तब तक लाबुशेन को डाली नहीं थी. जस्ट अ लिटिल, हाँ, बैकअप लेंथ डाल रहे थे, उसको उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, गुड लेंथ डाला, लाबुशेन लाइन ही मिस कर गए, बॉल अंदर घुस गई, बोल्ड हो गए. उसके बाद फिर कितनी बार इन्होंने लेंथ के साथ खेल खेला, या तो दे बोल टू फुल or they bowl backward length. They could not get the length right. Now you know what the Aussie bowlers will do. Aussies आएंगे, उनको पता है कौन सी लेंथ डालनी है और उनकी 12 में से 11 बॉलें उसी लेंथ पे गिरेंगी. ये एक और प्रॉब्लम है हमारा. अरे थोड़ी सी घास देखी तो सब छोटी डालने की कोशिश करते हैं. छोटी डाल रहे हो यार. वहाँ तो बॉलिंग 100 से ऊपर बना लिए, 150 पे पहुंच रहा है वो सेम बॉल खेल के. आप जब भी आ रहे हो वही बॉल कर रहे हो. यस इज सेइंग समथिंग. यस इट्स अ ह्यूज टारगेट. आई एम सेइंग कि फर्स्ट इनिंग्स इतना बड़ा हाथ से खोना, कल 2 सेशन एक बार कर लिया उन्होंने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा बाउंस बैक कर. ऊपर से आपको यहाँ पर बैटिंग भी करना है. आपने आनंद सही बोला कि जब फुल डालेंगे ऑजीज अपना लेंथ पकड़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा. और हमारे बैट्समैन अभी T20 क्रिकेट खेल के आ रहे हैं. ये तो स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ये सब खेल रहे थे काउंटी क्रिकेट. So they were used to all these conditions. They knew exactly how to go about it. ये तो अरे एक चीज देखो, एक बंदा towards the end of the day, एक बंदा 91 पे है, एक बंदा 136 पे है. 95 शॉट लगता है. नहीं रुकिए, सुनिए तो सही. शॉट लगता है
और वो लोग 3 रन दौड़ते हैं, 3 रन स्क्वायर ऑफ द विकेट, हाँ। शॉट लगता है एंड दे रन फॉर 3 इन द लास्ट ओवर ऑफ द डे, दे हैव रन 3 रन्स। मुझे बताओ कौन सा हमारा इंडियन बैटिंग पेयर है जो लास्ट ओवर ऑफ द डे पे 3 रन दौड़ेगा, जबकि कोई एक 150 के पास है और कोई 90 100 के पास है। ये इनका इंटेंट है, आप देख रहे हैं, लुक एट द इंटेंट एंड दैट इंटेंट कम्स फ्रॉम स्टीव स्मिथ एंड ट्रेविस हेड। They don't want to give a single inch, and now Steve Smith is setting himself up for a double 100. He's not grinded this whole day out to get out at 100. He's setting himself up for a massive double 100. That's what he wants to do. And if Steve Smith gets a double 100, Travis Head gets a double 100, Australia are 600 plus. They bat only once in this entire in this championship. They'll bat only once. क्वेश्चन भी आ गया है, कैन वी स्टिल बी होपफुल एट द ओवल? कितनी होप्स रखनी चाहिए? परसेंटेज बता दीजिए आप श्वेता मिश्रा को। देखिए 10% होप है, और उस 10% में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कल सुबह के पहले 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कम से कम 4 विकेट चले जाते हैं, तब हमारे पास होप है। यानी कि 4 more wickets, यानी ऑस्ट्रेलिया 7 down by 11:30 AM local time. That's the only hope we have. ट्रू। अब देखिए क्या होता है। आज में हमारे पास श्रेणी भी जुड़ रहे हैं लंदन से। श्रेणी, कैन यू हियर मी? आई थिंक कुछ नेटवर्क कनेक्शन है, उधर से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आनंद और ताउस, हम लोग बात कर रहे थे जिस तरह से आज बाकी सारे बॉलर्स ने बॉलिंग करी है, ये वो। और आनंद और ताउस, मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से, जिस तरह से इन दोनों बैटर्स ने बैटिंग करी है, स्टीव स्मिथ एंड ट्रेविस हेड, क्या आपको लगता है कि इंडिया के पास ऐसे 2 बैटर्स हैं जो इतना लंबी बैटिंग कर सकते हैं? आपका टॉप ऑर्डर आउट हो जाए, टॉप ऑर्डर में से बैटर्स बैठ गए हैं, 3 आउट हो चुके हैं, फिर ऐसे कोई बैटर्स हैं आपके पास कि जो इतना लंबा खेल ले? नहीं सुनिए, टॉप ऑर्डर ही खेलना है आपको, यहाँ पर नीचे कोई नहीं खेलने वाला है। टॉप ऑर्डर ही खेलना है। देखिए शुभमन गिल ये सब जो आईपीएल का फॉर्म लेके आ रहे हैं ना, उसी को ही कैरी फॉरवर्ड करना, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। ड्यूक्स बॉल है, आनंद जैसे खेल रहे थे, एसजी अलग होता है, ड्यूक्स बॉल अलग होता है। यहाँ पर वाइड एसजी से खेल रहे थे, और ड्यूक्स बहुत आसान होता है एसजी से खेलना, बट ड्यूक्स इज अ बिट वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड द मोर इट स्विंग एंड रेड उस दिन मरून, एकदम डार्क मरून है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू साइड दिस ड्यूक्स बॉल व्हाइल आवर एसजी इज ब्राइटर देन ड्यूक्स। तो यहाँ पर तो पूरा चेंज करना, ऑब्वियसली वो लोग खेले होंगे। नाउ डिपेंड्स ऑन विराट, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन विराट एंड पुजारा एंड मोर देन दैट, सिर्फ पुजारा पे नहीं, पुजारा यहाँ पर हमको सिर्फ बैठना नहीं है, वहां पर आपको स्कोर भी करना, आपको अगर उनको ओवरकम करना है, ओवरहॉल करना है बड़ा टारगेट, तो विराट पुजारा के आने से पहले रोहित और शुभमन गिल को 250 रन बनाने पड़ेंगे, तब उसके बाद पुजारा आएगा या विराट कोहली आएंगे, उनको फिर 250 रन और जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके वो ऑस्ट्रेलिया से फिर से बल्लेबाजी करवाएंगे। प्लीज यू सी द होल स्टोरी इज India need to make Australia bat again. Now the challenge is not Indian batting. The challenge now going forward is, Suramya, how it's building up to, is that India has to make Australia bat again. That's what they're going to do. आनंद, मैं अभी थोड़ी देर पहले ना ट्विटर पे रिएक्शंस देख रही थी, और मैंने देखा कि ट्विटर पे कैसे लोग बात कर रहे हैं कि शुभमन गिल को बड़ा खेलना होगा, कोई और बैटर हो ना हो, शुभमन गिल। मुझे बड़ी आयरॉनिकल सी बात लगती है यार, टीम में इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं आपके पास, एंड देन इट ऑल कम्स टू दैट 23-year-old गाय शुभमन गिल, एंड ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिम, कि अगर शुभमन गिल नहीं खेले तो हमें नहीं लगता कि पुजारा एंड देन रहाने, ये सारे बैटर्स आगे ले जा पाएंगे। डोंट यू थिंक दिस इज अनफेयर फॉर दैट 23-year-old? No, it is unfair. It is unfair, and it is a statement on Rohit Sharma, Virat Kohli, Ajinkya Rahane, and Cheteshwar Pujara. That between them, they have more than about 50,000 runs in Test cricket. Between them, if you add up all of them, nearly 50,000 runs they should get. They are not being counted, and a 23-year-old who's had a brilliant run through 22-23 last 2 years. He's had a fantastic run across formats. उससे उम्मीद रखी है, लेकिन ये व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं है, ये रेड बॉल क्रिकेट है। 2 बार ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमने शुभमन गिल को टेम्परामेंटल मिस्टेक करते हुए अपनी विकेट को खोते हुए देखा, और यही टेम्परामेंटल मिस्टेक अगर वो कल कर देते हैं तो फिर शुभमन गिल क्या करेंगे? आपकी उम्मीदें उन प्लेयर से होनी चाहिए जिन्होंने ये फैसले लिए हैं और जो पहले यहाँ पे खेल चुके हैं, और वो प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे। ये 4 प्लेयर्स से मेरे को कम से कम 400 रन चाहिए। That is when Australia is going to bat again.
ट्रू एब्सोल्युटली, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर आज खड़ा कर दिया है, कल भी आएंगे बल्लेबाजी करने, ऑब्वियसली बड़ा स्कोर जाने वाला है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो श्रीनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लंदन से। हेलो, Yes, I can hear you. I'm so sorry. It was so chaotic. The entire Indian crowd was waiting there for Rohit Sharma to come out. I think so that they could ask him why he didn't play Ashwin. or he didn't play Ashwin. हाँ, on top Yeah, of we have everybody, the completed whole this of India's mind, एक 100 करोड़ 140 करोड़ लोग पूछ रहे अश्विन क्यों नहीं खेला। Hello? Yeah, Yes, can you hear me? I don't know if I was yeah. audible. I don't. Yeah, they were waiting for him. Rohit Sharma. Rohit Sharma. Yes. Yes. So I was like, they're still standing there. हालांकि उनको पता नहीं कि वो अलग गेट से जाने वाला है. I felt like telling them, but मैंने कहा जाने दो. To ask him what? To ask him, I am thinking to ask him about everything. Whatever he did, why did he do? अश्विन को क्यों नहीं खिलाया? टॉस क्यों नहीं टॉस जीत के तुमने ये क्या कर दिया? काइंड ऑफ थिंग. मतलब श्रीनी ब्लंडर्स हुए, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैंने सुना था लंच ब्रेक में आप कह रहे थे कि अश्विन को ना रखना सबसे बड़ा ब्लंडर है, बट डू यू थिंक आज पूरी तरह से ब्लंडर पे ब्लंडर हुए? So I believe that what, winning the toss is in conditions like these, what winning the toss is winning half the game. I mean that's how you would approach a test match, right? So when you have won the toss, why would you go with a combination that you are not sure of? She seems pissed out there. उनका connection बार-बार आ रहा है जा रहा है, लेकिन yes, Anand, I presume that you are enjoying his comments out there because If you would have lost the toss today, and then nobody would have asked you what happened, because again you lost the toss, nothing was in your hands. You won it. The initiative was with you. Now I want to understand what made this Indian team think that the conditions. Not today. Today was very bright. The sun came up at noon. Remember, the sun usually has been coming here between 2 and 2:30. The sun today came up at noon. What exactly made you think that even if the sun would have come up at 2:30, that this was a wicket meant for 4 seamers? And by the way, आप Andy Roberts, Michael Holding, Malcolm Marshall को लेके नहीं जा रहे हो ना? आपके choices यहाँ पे शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनड़कट है. तो आप थोड़ा practically सोचिए कि आपके सामने उनका कनेक्शन आ रहा है जा रहा है, बट चलिए जुड़ेंगे तो हम बात करेंगे. सो आनंद, यस, आप I काफी think enjoy worse. No. I don't think that India इतनी कोस रही ऑस्ट्रेलिया को जितनी right now England कोस रही होगी. You've woken up a sleeping. Yeah. Yes, again, his connection loss. Yes, Anand and Taus, क्या आप कहना चाहेंगे जो श्रीनी कह रहे हैं? अरे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज जो फास्टेस्ट बॉल डाली वो मोहम्मद सिराज ने डाली 144 क्लिक्स पे. कल सुबह कल या परसों जब भी इंडिया बैटिंग करने आएगी, स्कॉट बोलैंड सबसे पहली बॉल 144 पे डालने वाला है. आप समझ रहे हो? तो स्कॉट बोलैंड, पैट कमिंस 144 145 पे ही डालने वाले हैं. ये लोग का सिराज का फास्टेस्ट बॉल 144 पे था. So in the middle of the 81st over, India took the new ball. क्या वो शमी के ओवर के बीच में वो न्यू बॉल आया. तो I remember मैं जहाँ बैठा था, just a couple of meters away, somebody said, "Oh, the new ball has come." I mean, yes, new ball has come, but boss, the toll that they have taken with the old ball. I mean, तुम कितना भी नया बॉल फैक्ट्री से ला लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. You understand what I'm saying? Yeah. Like, come on. I mean, the day of badgering, I in fact I wrote a piece for Cricket Next today, and that's how I started it. That in the morning when I entered the stadium, I mean every second thing was a cheer so loud that you could have heard it probably in all the suburbs surrounding the oval. And by the time we had entered into the last session of play, I had to remind myself to figure out if people had fallen asleep. This is a telling story. This is a telling story because if 15,000 people would have attended today's play, I'm saying 14,000 were Indians. And not just that. See, another thing, Srini. Look at that. You've gone in. Okay, you left Ashwin out. You got 4 pacers. Okay,
You have not even used them in such a way that you have at least one pacer who's fresh in the last session to bowl 10 overs at 140 plus clicks. आपने सबसे 15 ओवर करा लिए थे. You have not even rotated the bowlers, saying that okay, one bowler towards the end who will bowl with the last 3 overs with the old ball and the first 4 overs with the new ball, who will be fresh, who will have fresh legs, who will inject some pace and he will get something. You've not done it. You've not had that thought. They kept Smith out of different. I also think that I hope I'm wrong in saying this, but I would rather say it than not say it. To a large extent, Rahul Dravid being in the dressing room, I think this very defensive mindset that comes, knowing Rahul, here is a guy who just he's like, no, avoid it. I mean, like, the way more I've known Rahul over 20 years, it's all his first call is to, try and see if you can avoid it. Try and see if you don't want to. Always the good boy. Never the one to take a risk. Never the one to walk, kind of where you're not supposed to walk. And instances like these, Anand, you're not going to get anywhere if you're not taking a risk. You have to take a risk. So playing two spinners is a risk in England, especially. See, that's the selection part, no, Shini. But in the field, it is Rohit Sharma's call. How he'll marshal the resources that he has also signed on. Correct? How you will marshal your resources और कैसी फील्ड सेट की. उमेश यादव के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस के भाई साहब वो जैसी आया आपने पीछे फील्ड खोल दी. है ना, आपने फील्ड खोल दी. जैसे आपने फील्ड खोल दी प्रेशर खत्म हो गया. Please understand. इतना कॉन्फिडेंस तक खिलाया क्यों यार उसको. Please understand that this also works on slightly on the lines of the Murphy's Law. When things have to go wrong, they already have gone wrong. As of when when things go wrong, they just go wrong from all fronts. They also say that God helps those, or Lady Luck also helps those who help themselves. So you have also show the intent. No, you also have to go to show the intent. See, one thing I want to ask. One thing I want to ask. Anyway, is it like I was just looking at the weather for the next 5 days. Last 2 days it's going to be cloudy. There are thunderstorms. There are going to be hailstorms. What about the weather? Like, is it the pitch that I know, to read, or the weather? Or the weather? I mean, because when you pitch on the grass, no. Why would one second? Yeah. One second. Whether day 4 पे or day 5 पे कैसे रहने वाला है? Based on that, you're not going to take a call on the first session of day 1. No, first session of day 1, you are going to go by see. Too much emphasis is being put on weather. When weather goes bad and whatever happens, then we will see. You first go with the very basics that are in place. Yeah, sorry. श्रीनी ये हार्डकोर इंडियन फैन है. देशभक्त है, किसी तरह टेस्ट बच जाएगा. उसको लग रहा है 3 दिन खेल लेंगे, 2 दिन बारिश हो जाएगी, मैच ड्रॉ हो जाएगा, कब शेयर कर लेंगे. किस तरह से टेस्ट ये वेदर रिपोर्ट नहीं, ये वेदर रिपोर्ट तो ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा. वो तो डे 4 तक जाने ही नहीं देंगे मैच. या टॉस आप समझो ना, टॉस की अगर कल तक इन्होंने अगर सेकंड सेशन तक भी बैटिंग किया तो इन्होंने 450-500 रन बना लेने.